इसके अंदर मैं आप लोगों को ये बताने की कोशिश करूंगा कि जो लाइक बिजनेस एनालिटिक्स का जो ओवरऑल इकोसिस्टम है ये ऑपरेट कैसे करता है, और इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के रोल्स क्या हैं, जॉब पोजीशंस क्या हैं, हर रोल के ऊपर क्या काम हो रहा था। बिकॉज जनरली फॉर दोज पीपल या स्टूडेंट्स जो कि अभी फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं, या यू आर एक्चुअली न्यू टू दिस फील्ड, या वो पिवट कर रहे हैं टू एक्चुअली दिस डोमेन, इट बिकम्स रियली इनंडेटिंग कि मेरे मतलब इतने सारे रोल्स हैं, इतना सारा जो है ना बेसिकली इट्स अ वेरी वास्ट डोमेन। तो इसको नेविगेट करना जो है ना यूजुअली बिकम्स रियली हार्ड। So my objective would be to actually just explain all the roles to you, or then give you sort of an overview of the entire analytical ecosystem कि ये ecosystem actually operate करता है कैसे, इसमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज हो सकती हैं, किस किस किस्म के डिफरेंट जो है ना एनालिटिक्स होते हैं जो कि आप करते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो किस तरह ग्रेजुएट करती हैं, यू नो आप अ पर्टिकुलर लेडर ऑफ जी जो एनालिटिकल इकोसिस्टम में जो भी उनका फेज है वो दे एक्चुअली सॉर्ट ऑफ ग्रेजुएट अप दैट फेज स्लोली एंड स्टेडीली। तो यानी कि मेरे कहने का मकसद ये है कि कोई ऐसे नहीं हो सकता कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डायरेक्टली जो है वो मशीन लर्निंग और डेटा साइंसेस के ऊपर चली जाए जब तक कि वो जो है ना एक खास किस्म की उसके पास एक खास किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो, या वो ना डेटा को गैदर ना कर रही हो, या उसके ऊपर कोई बेसिक डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स ना कर रही। तो लेट मी नो जब आप लोगों को मेरी स्क्रीन नजर आए या आ जाए। जी सर, नजर आ रही। ठीक है। सो दिस इज अ शॉर्ट प्रेजेंटेशन, कुछ 10-15 के करीब स्लाइड्स हैं, लेकिन ये है कि आई एम गोना जस्ट सिलेक्ट स्लाइड्स आउट ऑफ दिस। ये मैं आप लोगों से जो स्लाइड सेट है ये शेयर भी कर लूंगा। आई पोस्ट इट ऑन दी ये जो हमारा LMS है इसके ऊपर भी। बट ये है कि I'm actually just going to select certain ideas out of it. You're free to actually go through the entire of it. But मैं कुछ sections के ऊपर सिर्फ highlight करूंगा या focus करूंगा। So इकोसिस्टम डेटा एनालिटिक्स किस तरह का होता है, इसमें जॉब रोल्स क्या हैं, डेटा लिटरेसी की क्या इंपॉर्टेंस है। प्राइमरीली जो डेटा एनालिटिक्स का इकोसिस्टम है इसके अंदर जनरली these are the roles that you would come across. There is, of course, the consumer. That's a role which is actually central to everything. Zahiri baat hai, if there is no consumer, then there is no product. But we have the consumers, we have the product managers, हमारे पास data architects होते हैं, we have data engineers, we have QA engineers, we have data analysts, we have data scientists, and we have business stakeholders. What you are learning in this course is primarily going to help you further, मेरा मतलब अगर आपने आगे जाना हो in these two roles as per my understanding, मेरी जितना नॉलेज है, ठीक है, या फिर this role, this is what this course can actually help you. But there are other courses as well जो कि ज़्यादा technical are they are more technical in nature, less commercial in nature, and they would actually help you with other roles as well. But जो हम technologies और methodologies पढ़ रहे हैं, they would definitely get you started on the data analyst part, which you can then use to move on to the data scientist role. Because आप data analyst से data scientist के role में graduate कर सकते हैं. It just takes more studying and more experience, or the product manager part as well. ठीक है? But there are data analysts, there are data scientists, and then there are business stakeholders. How do they actually, इनकी अगर थोड़ी सी definition देखी जाए तो what are these roles exactly? We have consumers which are actually at the center of this ecosystem, as I said. ठीक है ना? They consume the product offerings and receive the benefit of an ever-evolving user experience. They are the gold mine of the world, and their interactions with various digital products translate to raw data which runs through the ecosystem. अब ये consumers जो हैं, of course, to any digital product, even not a digital product, physical product भी हो, consumers are actually at the heart of it. And you do all of this, or companies actually go through all of this pain or effort in order to actually get to a particular consumer. ठीक है ना, जिसको उन्होंने अपीज करना है, या जो बेसिकली उसको अपने अर्निंग साइकिल के अंदर रखना है. No consumer
no product and no revenue, of course. इसी वजह से whenever you are actually designing a new product, I mean, आप कभी भी किसी VC वगैरह में जाएं, प्रोडक्ट को पिच करने के लिए, या ना they would always talk about unit economics. ठीक है ना, यूनिट की इकोनॉमिक्स क्या है, what are the economics of the single unit that you're selling of your product, and at the core of that unit economics is the consumer. ठीक है ना, कि आपने उसकी जेब में से पैसे कैसे निकालने, because that is what's going to decide if whether your actually product is going to be profitable or not. We have recently seen, मेरा मतलब हमने 2-3 बड़े बड़े जो नाम है पाकिस्तान में इन जो स्टार्टअप्स थे, उनको शटर होते हुए देखा है, एंड द मेन रीजन वाज कि उनके यूनिट इकोनॉमिक्स ठीक नहीं थे. ठीक है ना, दे हैड मिसकैलकुलेटेड their unit economics, which actually led to them consuming their cash, या जैसे एसेट रेट कहा जाता है, वो बहुत ज्यादा था, जिसकी वजह से they actually went into a loss very quickly. So consumers are extremely important, and then there are the product managers and the business stakeholders. इनको हमने इकट्ठा इसलिए रखा है कि let's talk about the product manager first. ठीक है, ये लोग they are actually responsible for the commercial and the technical side. Not like really hardcore technical side, लेकिन they need to work in tandem with the commercial side and the technical side. Or product managers or business stakeholders are tasked with continuously creating value for both the consumers and the product organization they work for. So they are actually the men in the middle or the women in the middle, ठीक है, जिनका मकसद जो है वो प्रोडक्ट को continuously evolve करवाना है, ठीक है, so that it can generate value for the consumer, which in turn would create value for the organization. Okay, so they work in tandem to meet the expectations, as I just said, set by the consumers and improve the value propositions that their product offers while optimizing the return on investment of their efforts in achieving organizational targets. आगे हम वैसे ये देखेंगे भी कि ये इसके अंदर क्या स्किल सेट रिक्वायर्ड होता है, but at this role, decision making is actually more critical. They are actually at a more macro level, where they are actually looking at the data at a much, macro level, just to actually execute, or make decisions. ये मैं product managers की बात कर रहा हूँ. एक बहुत critical role है, because जो product manager है, in today's world, there is no such thing as a complete product. ठीक है? Products are continuously evolving, and they never stop evolving, because the day you stop evolving your product, it dies or starts dying. ठीक है, और इसलिए क्योंकि मार्केट इतना तेजी से शिफ्ट हो रही है या होती है, you need to be continuously evolving your product, and the product manager is extremely important in uptaking that task, because the product manager would be the person who would not only get done what's supposed to be done, but he's also responsible कि future जो है product का वो उसकी direction क्या होगी, and he actually sits with the stakeholders in order to actually sift out information कि अच्छा यार, where is this product going to go into the future. ठीक है, क्या हमें इसको फ्यूचर में इसकी फ्यूचर प्रपोजिशंस हैं या नहीं है, इसको पिवट तो नहीं करना पड़ेगा, आगे जाके चेंज तो नहीं करना पड़ेगा, क्या फीचर्स होंगे इसके अंदर, आर वी इन लाइन, जो भी हमारा जो करंट बेसिकली जो हमारा विजन है, व्हाट वी वांटेड टू अचीव फ्रॉम द प्रोडक्ट, आर वी इन लाइन विद दैट और नॉट. अब इसकी मैं एक आपको मिसाल यूं दे सकता हूं कि हम लोग, मैं जहाँ पे I work at Red Market Systems part time. तो I sort of do this, मैं प्रोडक्ट मैनेजर का sort of काम करता हूँ. मेरे पास एक प्रोडक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पहले मेरे पास 4 प्रोडक्ट्स की थी, but now I'm actually just responsible for 1 product. So I was sort of the cook for the product. So what I would do is कि मैं जो basically I would sit with all the stakeholders and then see कि अच्छा यार, इस प्रोडक्ट को हमने क्या लेकर जाना है, क्या फीचर इसके अंदर ऐड होने चाहिए, क्या फीचर्स नहीं ऐड होने चाहिए, एंड ओवर द पीरियड ऑफ लेट्स से द लास्ट 6 मंथ्स जो है ना, हमने एक नया प्रोडक्ट जो है ना डेवलप किया है,
जो कि आई कैन एक्चुअली शो यू एन एग्जांपल ऑफ दैट, होपफुली अगर मुझे अभी घर से जो है ना उसकी एक्सेस हो. This one, sorry. So ये this is like a self-assessment app which is which is a PWA app. I don't know आप लोगों को टेक्नोलॉजी के बारे में कितना पता है नहीं पता, लेकिन a PWA app is a progressive web app जो कि so हम जनरली आदी होते हैं you know of applications जो कि फोन के ऊपर चलती हैं. you know most of the phones in Pakistan are Android phones, तो हमारे पास जनरली Android applications होती हैं. But the PWA app is actually a web-based app. So इसमें खूबी होती है कि you do not need to create a separate web app and a separate mobile app. You can create a web app जो कि मोबाइल पे जो है ना अपना पूरे का पूरा जो एक्सपीरियंस है वो रेप्लिकेट कर सकती है. So I can actually log into this app from the website or the internet on my computer, but I can actually also log into it from my phone, जो कि बेसिकली मेरे फोन में एक ऐप की तरह ये सेव हुई है. सो हमने बेसिकली ये ऐप जो प्रीमाइस था इसके पीछे वो ये था कि वी वुड वांट टू क्रिएट एन एप्लीकेशन जो कि यू नो स्टूडेंट्स को सेल्फ असेसमेंट करने में हेल्प करेगी. ठीक है. अब आई होप ये चल रही हो इस वक्त, बिकॉज ये ना हो कि यू नो इट्स द वीकेंड, तो सर्वर्स जो हैं वो बंद हो जाते हैं अक्सर हमारे, बिकॉज हम अच्छा अब ये दिस लुक्स लाइक अ वेरी यू नो अजीब सा एक्सपीरियंस, बिकॉज यू नो एक आपको लाइक यू नो यहाँ पे ये नजर आ रहा है, बट ऑन द फोन जो है ये टाइल्स जो हैं डिफरेंट किस्म की टाइल्स अवेलेबल होती हैं, और यू नो दीज आर द डिफरेंट सब्जेक्ट्स जिसके अंदर आप क्लिक करके यू नो एक्चुअली गो ओवर देयर एंड यू कैन एक्चुअली सेल्फ असेस योरसेल्फ. सो द यूएसपी फॉर दिस ऐप वाज प्राइमरीली जो है ना वो ये था कि हम लोग जनरली आपने अगर सेल्फ असेसमेंट ऐप्स देखी हो इन द मार्केट, सो दे आर यू नो मोस्टली सेंटर्ड अराउंड एमसीक्यूज. वो एमसीक्यूज यू नो आप लाइक सब्जेक्ट सिलेक्ट करते हैं, यू गेट अ पेपर जो कि एमसीक्यू बेस्ड होता है, यू आंसर देम एंड देन यू गेट अ स्कोर. बट जो यू नो जो रिस्पॉन्स जो लेंथी रिस्पॉन्स क्वेश्चंस होते हैं वो कोई भी ऐप जो है उनका आंसर आपको नहीं देती. सो हमने ये सोचा कि व्हाई नॉट एक्चुअली क्रिएट एन एप्लीकेशन जो कि आपको फैसिलिटेट करे इन यू नो राइटिंग आंसर्स टू लेंथियर क्वेश्चंस एंड देन गेटिंग अ फीडबैक ऑन देम. सो एक होलिस्टिक जो है ना पेपर की जो है ना असेसमेंट या जो है ना आपने आपकी तैयारी की असेसमेंट जो है वो आप इसके ऊपर कर सकते हैं. सो दैट वाज आवर यूएसपी. अब हाउ डिड वी रीच दैट यूएसपी? वी डिड अ सर्वे. ठीक है, दैट वाज लाइक सम टाइम अगो, बट let me actually show you. So we did sorry, this is not it. And why am I actually telling you this? It's because of the fact that I want you to understand कि एक product manager का primarily role जो है ना वो क्या होता है. Because I've done it to a certain extent, so I can actually, you know, sort of walk you through the process. So if this is the, you know, software requirement specification documentation. अब if I am, नहीं यहाँ पर भी नहीं है, सॉरी. या सर्वे खैर ये था, लेकिन उसको फिर हमने एक डॉक्यूमेंटेशन के अंदर एम्बेड किया था. बट दिस सर्वे एक्चुअली टोल्ड अस कि देयर इज अ गैप इन द मार्केट जिसके अंदर जो है ना हम इस ऐप को फिक्स कर सकते हैं, और उसकी यूएसपी ये होगी जो कि मैंने आपको बताई है, यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन. सो इस चीज को बेसिकली हमने कैसे असेस किया? यू नो वी वेंट टू द मार्केट. हमने कोई यू नो 300 के करीब स्टूडेंट्स का जो है ना वी एक्चुअली डिड अ सर्वे. यू नो उसका फिर हमने एनालिसिस किया, तो हमें एहसास हुआ कि अच्छा यार ये यू नो देयर इज अ गैप इन द मार्केट. वी कैन एक्चुअली प्रॉब्ली प्लग दैट बाय यू नो क्रिएटिंग अ प्रोडक्ट जो कि यू नो आपको मेरा मतलब इट विल एक्चुअली अलाउ यू टू गेट योर
लाइक एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स जो क्वेश्चन है उनका जो है ना आंसर्स भी जो है ना वो आपको चेक करने में हेल्प करे। सो एक प्रोडक्ट मैनेजर जो होता है उसका प्राइमरीली जो काम है वो ये होता है। अब इसके अंदर जो है अब दिस इज अ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, दिस इज नॉट एन एमसीक्यू, ठीक है। सो द ऐप एक्चुअली अलाउज यू टू डू दिस ऑन द वेब, ऑफ कोर्स जिस तरह मैं कर रहा हूँ, प्लस इट एक्चुअली वुड अलाउ यू टू डू इट ऑन द फोन एज वेल, कि आप यहाँ पे अपना पूरे का पूरा आंसर लिख सकें। ऑन टॉप ऑफ दैट इट गिव्स यू द एबिलिटी ऑन द फोन कि आप अपना आंसर जो है वो बेसिकली हैंड राइट कर सकें ऑन अ पीस ऑफ पेपर, टेक स्नैप्स ऑफ इट एंड देन सेंड इट, जो कि ऑटोमेटिकली हमारे ऐप में लोड हो जाएगी एंड देन देयर टीचर वुड एक्चुअली चेक इट आउट। सो दैट वाज द यूएसपी, ताकि आपको एक ह्यूमन से जो है ना बेसिकली आपको एक एक ह्यूमन बेस्ड रिस्पॉन्स जो है ना आपको मिल सके from a teacher who is actually a subject matter expert in let's say biology, mathematics or whatever. अब यहाँ तक पहुंचना जो है, इधर तक डायरेक्ट करना, ये सारी जो है बेसिकली डेवलपमेंट करवाना from the technical team while actually having a hand on the pulse of the market कि अच्छा यार एक्चुअल में रिक्वायरमेंट क्या है, ये सॉर्ट ऑफ प्रोडक्ट मैनेजर का काम होता है, ठीक है ना। सो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, इट्स प्राइमरली a कमर्शियल रोल, लेकिन इसके साथ जो है देन यू नीड टू बी a little savvy with technology as well. So then any questions, कोई सवाल यहाँ तक किसी का कोई इस रोल के बारे में? नो सर। Okay, then we have data architects, ठीक है। अच्छा, अब these guys actually work with the product managers to create a foundation of what kind of raw data needs to be generated and how it needs to be consumed. They provide a technical roadmap to the vision of a data ecosystem, and this map facilitates the development of data processing pipelines, business intelligence dashboards, data feeds, and all that. अच्छा, अब ये जो यहाँ पे तो खाली डेटा आर्किटेक्ट का नाम लिखा हुआ है ना, वैसे एक देयर इज अ मोर होलिस्टिक रोल जिसको जो है ना सिस्टम आर्किटेक्ट का नाम कहा जाता है। अब हमारा आई मीन द टीम दैट आई वर्क विद, उधर जो द गाय दैट आई वर्क विद इज एक्चुअली अ सीनियर, ही इज अ वीपी, ठीक हो गया ना, ऑफ इंजीनियरिंग, एंड that person is actually responsible for the data slash system architecture. तो जो भी मेरी रिक्वायरमेंट्स हैं उसके लिए क्या फाउंडेशन डाली जाएगी, what is going to be the technology that's going to be used, what is going to be the solution package, ठीक है, उसके डिप्लॉयमेंट के टीयर्स कितने होंगे, उसके अलावा उसके पीछे जो डीबी चल रही है वो मैंने आप लोगों को आई थिंक दिखाई भी थी, उसका स्ट्रक्चर किस तरह का होगा। अब ये काम जो है ना ये एक डेटा आर्किटेक्ट कर रहा होता है, यानी कि ही इज एक्चुअली लेइंग डाउन द फाउंडेशन ऑफ a particular product कि वो एक्चुअल में फिजिकली कैसे होगा। अब ये दिस इज आई थिंक आई हैव शोन यू दिस अर्लियर एज वेल, बट ये हमारे एक प्रोडक्ट की ईआरडी है या एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम है, एंड दिस एक्चुअली इज सॉर्ट ऑफ अ मैप। अब दिस इज जस्ट डीबी साइड कि डीबी जो है उसका आर्किटेक्चर कैसे है, बट देन देयर इज द ऐप साइड, देन देयर इज द ऐप फ्रंट एंड, ठीक है ना। अब वो सारी चीजें अलग अलग है, इन सारी चीजों ने आपस में मिलके कैसे काम करना है, दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डेटा आर्किटेक्ट, ठीक है ना, डेटा आर्किटेक्ट स्लैश सिस्टम आर्किटेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि फोकस सिर्फ डेटा एनालिटिक्स के ऊपर है तो इसलिए हम डेटा आर्किटेक्ट की बात करेंगे। देन कम्स द डेटा इंजीनियर, ठीक है, ही बिल्ड्स ऑन टॉप ऑफ दिस फाउंडेशन। अब इस बंदे ने जो भी ब्लूप्रिंट डाला है, ही इज एक्चुअली गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल, द डेटा इंजीनियर इज एक्चुअली गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर वर्किंग विद दैट, ठीक है ना, एंड ही इज गोइंग टू सेट अप रिसोर्सेज and he's going to create systems and pipelines and store procedures, ठीक है ना, to support the analytical needs of the stakeholders in the organization. अब data engineers जो हैं, यानी कि this guy actually laid down the foundation and this guy is actually going to use the foundation. Why? ताकि इस funnel के अंदर then there are roles further down the road, जो कि आप कह सकते हैं डेटा एनालिस्ट का रोल है, उसके अलावा जो है आपका मशीन लर्निंग इंजीनियर का रोल है या डेटा साइंटिस्ट का रोल है। इनके फंक्शंस को सपोर्ट करने के लिए डेटा इंजीनियर जो है वो बेसिकली ये सारा काम करते हैं, ठीक है ना। पाइपलाइंस बनाना, डेटा की क्वालिटी को चेक करना, पाइपलाइंस में जो है ना डेटा जो पुश हो रहा है और जो आगे जा रहा है
एनालिसिस के लिए या मशीन लर्निंग मॉडल्स के लिए या डेटा साइंस के किसी भी काम के लिए या एआई के किसी काम के लिए, उसकी क्वालिटी कैसी है, इज इट करेक्ट और नॉट, ठीक है ना, ये सारा काम जो है वो डेटा इंजीनियर का काम होता है. So he's the guy who is actually going to be responsible for the plumbing that exists between the product, यानी कि इसकी जो भी DBs वगैरह हैं over here. Second. So ये जो भी DBs वगैरह हैं, ठीक है, and whatever is required on the analytical side. ठीक है ना, जो भी डैशबोर्ड्स बनने हैं, जो भी बेसिकली उसके ऊपर एनालिसिस वगैरह होना है, वो सो दिस गाय इज एक्चुअली रिस्पांसिबल फॉर ऑल द प्लम्बिंग इन बिटवीन. देन अच्छा, द क्यूए क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर्स जो हैं, दिस इज नॉट अ सॉफ्टवेयर, दिस इज नॉट एन एसक्यूए, वी आर टॉकिंग अबाउट अ डेटा क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर. अब ये काम जो है ना, जनरली डेटा, ये सॉर्ट ऑफ रोल जो है, ये कुछ सेपरेटली आपको जनरली मिलेगा नहीं. ये जो आपका डेटा इंजीनियर है, वही सॉर्ट ऑफ एसक्यूए का काम, वही आप सॉर्ट ऑफ क्यूए का काम भी कर रहा होता है. लेकिन इसका एक्चुअली प्राइमरीली रोल होता क्या है, क्यूए क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल बाय कीपिंग अ चेक ऑन द क्वालिटी of work product that the data engineers produce and making sure that the stakeholders expectations are correctly met. This is not a separate role. Generally, I've not seen this being advertised separately. This is something that is expected out of a data engineer himself, generally. ठीक है ना, जनरली जो मैंने देखा. सो आप ये कह सकते हैं कि ये दोनों रोल्स हैं, ये आपस में जाम हो गए, they sort of combined together. And then there is the data analyst. ठीक है ना, तो डेटा एनालिस्ट प्ले एन इंटरेस्टिंग रोल बिकॉज दे वर्क विद द अननोन, ऑफ कोर्स, बिकॉज यू गेट रैंडम क्वेश्चंस कि यार हमें ये चीज समझ नहीं आ रही, तो दैट इज व्हाई एनालिस्ट एक्चुअली वर्क विद द अननोन. दे वर्क ऑन आंसरिंग क्वेश्चंस दैट एनीवन इन द ऑर्गेनाइजेशंस कम्स अप विद. सो आई मीन, बिकॉज मैं प्रोडक्ट मैनेजर के तौर पे भी काम कर रहा हूँ, बट मेरा काम जो है वो डेटा एनालिस्ट का भी काम है, तो मेरे पास अब बहुत डिफरेंट किस्म के सवाल आते हैं. सो आई व्हाट आई डू इज कि आई देन राइट द क्यूरीज, आई जस्ट सिट डाउन एंड देन व्हाट आई डू इज कि मैं जो है, अब फॉर एग्जांपल, आई डोंट नो इफ आई हैव एक्चुअली टोल्ड यू गाइस और नॉट, बट रिसेंटली हमने एक पैक के साथ असाइनमेंट, पता नहीं मैंने पहले ये मिसाल दी है नहीं दी, हमने पैक के साथ एक असाइनमेंट दी थी, रिसेंटली की थी पंजाब एजुकेशन काउंसिल के साथ. और ये खैर डीबी में इसकी एक्सेस वैसे शायद कर ना सकूं, आई थिंक ये मुझे एरर दे देगा यहाँ से. बट देन आई वाज एक्चुअली आस्क्ड अ सीरीज ऑफ क्वेश्चंस from my boss, and that led me to a situation जहाँ पर फिर जो है ना, मैंने I was actually in order to answer those questions, I extracted the data out. ठीक है, अब the answer to those questions were not known to me, मुझे उनके बारे में बिल्कुल भी मालूम नहीं था, but I started looking through the database. Then what I did was that I actually went ahead and brought in the data into a consumable format ताकि वो Power BI के अंदर आ सके. Once it was over there, so then I actually converted that into reports, जो कि I think मैंने शायद आप लोग को नहीं दिखाई. So these reports that you would see are primarily answering particular questions, ठीक है ना, जो कि मेरे से पूछे गए थे. And those questions, उनका मुझे आंसर पता नहीं था, because they were activity specific questions, and that is where the analyst actually works with the unknown. आपको पता नहीं होता कि यार अच्छा इसका डेटा कहाँ पर पड़ा होगा. You can actually ask the इंजीनियरिंग गाइस के, अच्छा यार इफ यू कुड हेल्प मी, मुझे थोड़ा सा गाइड कर दो. लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो आंसर है टू द क्वेश्चन, यू नीड टू ब्रिंग इन योरसेल्फ, ठीक है ना. फॉर एग्जांपल, आई वाज रिक्वेस्टेड, ठीक है ना, कि हमें ओवरऑल जैसे कहते हैं ना, माइक्रो मैक्रो लेवल पे जो है ना एनालिसिस करके बताया जाए कि मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो है ना, स्टूडेंट वाइज, सॉरी डिस्ट्रिक्ट वाइज, तहसील वाइज, स्कूल वाइज, सब्जेक्ट वाइज, क्लास वाइज जो है ना, इवन ऑल द वे डाउन टू अ पर्टिकुलर स्टूडेंट हम देखना चाहते हैं कि जो है ना क्या हालात है पर सब्जेक्ट, ठीक है.
So that's where I actually brought in the data into Power BI by actually querying the data first. ठीक है, और उसके बाद जो है ना ये इसकी पावर क्यूरी है, पावर क्यूरी के अंदर आई एक्चुअली चेंज द डेटा। ये खैर अभी एरर देगा बिकॉज मैंने जगह चेंज कर दी इसकी, लेकिन ये है कि ये सारी क्यूरीज बनी, उसके बाद फिर अपेंड बना एंड ऑल दैट प्रोसेस। सो आई मीन एज एन एनालिस्ट दैट वाज माय रिस्पांसिबिलिटी कि मैं आंसर्स जो है बेसिकली टू द अननोन में आई एक्चुअली ब्रिंग द आंसर्स टू देम। सो अब दिस इज बिकॉज जनरली a guy who's actually working on the product और एक डेटा एनालिस्ट, दे आर जनरली टू डिफरेंट रोल्स। लेकिन क्योंकि मैं एक स्टार्टअप में काम कर रहा हूँ और मेरा स्किल सेट भी है, तो इस वजह से मैं फिर दोनों जगहों पे काम कर रहा हूँ। मैंने यानी कि प्रोडक्ट मैनेजमेंट का भी रोल अदा कर रहा हूँ सॉर्ट ऑफ, और साथ में मैं डेटा एनालिसिस का काम भी करके देता हूँ। ठीक है ना, उसके अलावा फिर मैं वीडियो एडिटिंग का काम भी कर देता हूँ बिकॉज मुझे वीडियो एडिटिंग वगैरह भी आती है। सो बिकॉज इट्स द नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, एंड बिकॉज इट्स अ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, तो यू हैव टू वेयर मल्टीपल हैट्स at the same time. ठीक है, so data analysts play an interesting role because they work with the unknown. They work on answering questions that anyone in the organizations comes up with. They help in understanding unique user behavior, creating market projections, debugging issues and anomalies, and whatnot. They might work with technical product or business team and address a variety of problem statements. An analyst is that wrench in the toolbox that can be adjusted to screw various sizes of nuts and bolts and provide value beyond that as well. And what I mean by that is कि एक एनालिस्ट जो है ना एक मल्टीपल किस्म की प्रॉब्लम्स के ऊपर काम कर सकता है। वो खाली अब द असाइनमेंट ओवर हियर वाज नॉट द असाइनमेंट ओवर हियर वाज कि यार ये हमने एक एक्टिविटी की है, हमें उनकी जो है ना बेसिकली वी नीड टू डेवलप अ रिपोर्ट ऑन दैट, बट इट कुड हैव बीन कि अच्छा यार हम ये प्रोडक्ट यूजेज एनालिसिस करना चाहते हैं। नाउ an analyst would have been able to actually work on both of the products, both the questions, because of the fact that it's a data problem at the end of the day. ठीक है ना, तो he has to use his business knowledge, his data analysis skills, his knowledge of the technology in order to actually answer the questions जो कि उससे पूछे गए। Any questions this far? सर वो डेटा एनालिस्ट, एक सक्सेसफुल डेटा एनालिस्ट बनने के लिए आपको कौन कौन से टूल्स के ऊपर हैंड ऑन एक्सपीरियंस होना चाहिए? पावर बीआई फॉर एग्जांपल लाइक इज वन ऑफ देम। इसके अलावा मतलब कौन कौन से टूल्स हैं जो यूज कर सकते हैं? यार आई वुड स्टार्ट विद एसक्यूएल एंड पावर बीआई, with Power BI being the first one because that is a very low hanging fruit. वो एक ऐसी चीज है जो कि आप जल्दी से जो है ना लर्न कर सकते हैं। ठीक है, एंड एसक्यूएल ये तो मैंडेटरी है दोनों, ये एज अ पैकेज आते हैं। प्लस अब डेटा एनालिस्ट से एक्सपेक्ट किया जाता है कि उन्हें पाइथन भी आएगी। सो यू वुड सी रोल्स जहां पर दे वुड से कि अच्छा यू शुड नो एसक्यूएल, you should know one of the visualization tools, Power BI or Tableau or Click or whatever. Click is not like a visualization tool, but it could be like some sort of a BI tool. And then आपको knowing Python is a plus, या फिर Python would be mandatory. इसमें CS का बैकग्राउंड होना जरूरी है आपका एज अ कंप्यूटर साइंस? Absolutely not. कोई बैकग्राउंड होना जरूरी नहीं है CS का। Right. बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। You would see सिस्टम एनालिस्ट और डेटा एनालिस्ट में क्या फर्क है? मैम सिस्टम एनालिस्ट का काम जो होता है ना वो सिस्टम की इंट्रिकेसीज को ले डाउन करना होता है। डेटा एनालिस्ट जो होता है यानी कि ही इज एक्चुअली मोर ऑफ अ प्रोसेस स्लैश सिस्टम ऑप्टिमाइजर। एक डेटा एनालिस्ट प्राइमरीली जो है ना वो डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग को फैसिलिटेट कर रहा होता है। एक सिस्टम एनालिस्ट के टूल बॉक्स के अंदर डेटा एनालिसिस की स्किल सेट हो सकती है, but it is not necessary. मेरा इस तरह है ना, मैं आपको जरा सा अपना बताऊं तो मेरे पास CS का बैकग्राउंड नहीं है। एक्सेल के ऊपर मेरा काफी अच्छा एक्सपीरियंस है, हैंड ऑन मतलब उसके ऊपर प्रैक्टिस है, और पावर बीआई की बेसिक्स में जाते हैं। लेकिन आई रियली वांट टू मतलब गेट इनटू दिस डेटा एनालिस्ट वाली फील्ड ना, क्योंकि आई हैव बीन वर्किंग विद एक्सेल थोड़ा बहुत। तो बस वो वही चीजें मैं पूछा था कि इज इट पॉसिबल फॉर मी टू मतलब कि मैं इसको आगे एज अ करियर लेके चल सकूं? Absolutely. मतलब I mean, लेकिन मुझे पाइथन नहीं आता, मतलब मेरा CS का बैकग्राउंड नहीं है लेकिन बिजनेस का बैकग्राउंड है, फाइनेंस का। you don't need a CS background to learn Python. पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं, Python is not that hard of a language
जो कि आपको सीएस का मेरा आई डोंट हैव एनी टेक्निकल बैकग्राउंड, लेकिन मैंने पाइथन मैं आई मीन एटलीस्ट मुझे अभी काफी अर्सा हो गया मैंने क्योंकि इस्तेमाल नहीं की काम पे, लेकिन आई हैव टेकन कोर्सेज ऑफ इट। मैंने उसके ऊपर ट्रांसफॉर्मर्स भी बनाए हुए हैं, मैंने डेटा पाइपलाइंस भी बनाई हुई हैं। इट डज नॉट टेक्निकली रिक्वायर कि आपको आपका सीएस का, यस इट इज एन एडवांटेज कि आपका अगर सीएस का बैकग्राउंड हो, लेकिन डेटा एनालिस्ट के लिए देखिए पाइथन जो है ना इज अ जनरल पर्पस लैंग्वेज। It's a GPL. You could develop a product in it, you could develop a website in it, and you can use it for data analysis as well. As a data analyst, आपका जो scope of work है ना वो एक libraries के set तक limited होता है। अगर आप data analysis का काम कर रहे हैं, आप probably use करेंगे NumPy, Seaborn, Matplotlib, OpenCV को कर लेंगे, उसके अलावा जो है आपका इस तरह की लाइब्रेरीज हैं, तो आपको उन लाइब्रेरीज के बारे में ज्यादा पता होना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात ये है कि आपका अगेन यू डोंट नीड लाइक मतलब आपका सीएस का बैकग्राउंड इज एन एडवांटेज, ऑफ कोर्स इट इज एन एडवांटेज, बट दैट्स नॉट लाइक अ हार्ड कोटेड रिक्वायरमेंट कि यार आप सीएस होंगे तो बेसिकली आप ये कर सकेंगे। ठीक है ना, बल्कि इनफैक्ट आई थिंक कि डेटा एनालिसिस के पर्टिकुलरली रोल के लिए ना मुझे लगता है कि सीएस का बैकग्राउंड माइट बी अ डिसएडवांटेज बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि इंजीनियरिंग का जब आपका बैकग्राउंड होता है तो आप यू आई मीन यू आर मोर ऑन द टेक्निकल साइड, तो आप जो बिजनेस और कमर्शियल साइड जो है ना उसका पर्सपेक्टिव लूज कर जाते हैं। ठीक है ना सर, मेरी बेसिकली डिपार्टमेंट में ना डेटा एनालिस्ट है, एनओसी हेडक्वार्टर्स में मैं काम करता हूँ। आईएससी डिपार्टमेंट है वहाँ पे ना एक, तो वो एग्जैक्टली यही है कि टेक्निकल लोग तो है हमारे पास, लेकिन बिजनेस नॉलेज के लिए वो फिर ऑब्वियसली एमबीएस को इस तरह जो है ना, मतलब हमने मिक्स टीम बनाई है। टेक्निकल लोग भी हैं उसमें और इस तरह बिजनेस एनालिस्ट बैठे, तो ऐसे ही वो बिल्कुल इस तरह ऐसे ही बिल्कुल है। आई मीन और अब बात यह है कि इट्स एक्चुअली आई थिंक इट्स अ ह्यूज एडवांटेज कि अगर आपको कमर्शियल साइड का पता है प्लस यू हैव एक्चुअली दीस स्किल्स, एंड इन एडिशन टू दैट प्लीज डू रिमेंबर कि अभी जो देयर इज अ वेरी स्ट्रांग मूवमेंट टुवर्ड्स नो कोड लो कोड एनवायरनमेंट्स। तो कुछ अरसे में ये जो ये जो कोडिंग की रिक्वायरमेंट्स है आई थिंक दे आर गोना फेज आउट, और बहुत कम पोजीशंस ऐसी रह जाएंगी जिनमें आपको हार्ड कोर कोडिंग की जरूरत होगी। ठीक है, अब लाइक वी हैव टूल्स लाइक नाइम, वी हैव टूल्स लाइक ईएन ब्लिक। ठीक है ना, अभी मैं एसक्यूएल का एक टूल देख रहा था जिसके अंदर जो है ना आप लाइक जनरल लैंग्वेज में क्यूरी लिखें तो वो जो है ना उसको कोड में कन्वर्ट कर देता है। तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि probably down the road you would not be expected to actually write code, you would just be expected to know the tools जो कि आपके लिए डेटा एनालिसिस, एमएल और एआई का काम कर सकते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं आपको 3 टूल्स अभी बता सकता हूँ जो कि जिनके बारे में मुझे पता है। आई नो अबाउट नाइम। आप लोगों में से किसी को नाइम के बारे में मालूम है या नहीं? Does anybody know नाइम? सुना हुआ है लेकिन अब ये ठीक है, अब ये दिस इज अ फ्री टूल। ठीक है, जो कि आपको डेटा एनालिसिस और मशीन लर्निंग की जो है ना वो नो कोडिंग विद नो कोडिंग जो है ना आपको बहुत सारी जो है ना फंक्शनैलिटीज ऑफ द शेल्फ देता है। ठीक है, सो यू कैन एक्चुअली यूज दिस। इसके अंदर जो है ना ये ड्रैग एंड ड्रॉप फंक्शनैलिटीज होती हैं अगर आपने एनालिटिक्स करने हैं डीबी के साथ कनेक्ट करना। अगेन मैंने बहुत ज्यादा यूज नहीं किया बट टू बी ऑनेस्ट मैंने आई प्लान टू डू इट बट आई हैवंट एक्चुअली हैड द टाइम टू डू इट राइट नाउ। ठीक है, बट यू कैन एक्चुअली यूज दिस, सो यू डोंट नीड टू कोड। सो हो सकता है डिसीजन मेकिंग लेवल की जो आपको मशीन लर्निंग या मशीन लर्निंग या डेटा साइंसेस का काम करना है ना वो मोस्ट प्रोबेबली जो है ना नाइम का प्लेटफॉर्म जो है आपको हेल्प कर देगा। फिर देन देयर आर प्लेटफॉर्म्स लाइक लेट्स से हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, या मैं आपको एक यूज केस देता हूँ ऑफ हाउ वुड आई से दैट, ये जो होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर जिसे कहते हैं ना इमेज प्रोसेसिंग। ठीक है ना, सो इमेज प्रोसेसिंग इज एक्चुअली on the roll nowadays, because we are actually looking at self driving cars and all that stuff. अच्छा, फॉर एग्जांपल अब इसके लिए जो टूल है, आई मीन देयर इज अ वेरी पॉपुलर टूल कॉल्ड योलो। ठीक है ना, इसका वर्जन 7 अभी अवेलेबल हो गया है और दिस इज अ फ्री टूल। ठीक है, दिस इज अ फ्री टूल
जो कि बेसिकली आपको इमेज प्रोसेसिंग और आइटम डिटेक्शन की ऑफ द शेल्फ लाइब्रेरीज देता है कि यू वुड गेट मॉडल्स जो कि आप फौरन डिप्लॉय कर सकते हैं, जिनमें ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो ऑलरेडी आइडेंटिफाई हुए हैं कि यार ये दिस इज अ कैट, दिस इज अ डॉग, दिस इज अ कार। तो जो मॉडल्स आपको जीरो से बनाने पड़ते थे, उसमें ऑब्जेक्ट की रिकग्निशन करानी पड़ती थी, वो ऑलरेडी इनके अंदर हुई नहीं। ठीक है ना? एंड यू डोंट नीड टू एक्चुअली डू ऑल ऑफ दैट। ठीक है। अच्छा, फिर इसके अलावा फिर देन वी हैव टूल्स लाइक जो अभी रिसेंटली एक टूल लॉन्च हुआ है व्हिच इज एक्चुअली अ वेरी कूल टूल इन ब्लिक, उसका नाम है, इट्स आई रियली लाइक्ड इट। ठीक है। अब ये दिस इज अ कोलैबोरेटिव टूल। व्हाट इट अलाउज यू टू डू इज कि इट अलाउज यू टू परफॉर्म मशीन लर्निंग डेटा साइंसेस प्रोजेक्ट्स इन अ कोलैबोरेटिव मैनर। सो या आप यूं कह लें कि बिल्कुल आप जो है ना, इट्स लाइक गूगल डॉक्स but it's for machine learning and data science. So you can work in a team online in tandem on machine learning and data science projects. और मजे की बात है कि ये खाली एक वर्क स्पेस नहीं है, it then gives you the ability to deploy auto ML or machine learning के algorithms, drag and drop. So you don't have to code anything. तो यू कैन ड्रैग एंड ड्रॉप अ फंक्शनैलिटी, और जो भी आपका डेटा मॉडल होगा उसके ऊपर जो है ना वो एमएल के जो है ना बेसिकली वो लग जाएंगे। तो आप ये देख रहे हैं, ये जो ऊपर आपको ये नजर आ रहा है, यहाँ पे ये जो नजर आ रहा था, अब ये देखें, दिस इज ये एसक्यूएल लिखा हुआ था, उससे ये रिजल्ट आया। अब ये पाइथन की एक जो है ना प्रॉब्ली डेटा अरे है, एंड दीज टू गाइज आर वर्किंग टुगेदर। सो माय पॉइंट बीइंग कि probably being a hardcore CS graduate is, yes, it's an advantage. It gives you a particular mindset, but then it's not really necessary. This is not a showstopper. Then we have data scientists. ठीक है ना? These guys are who carry the burden of pulling a rabbit out of the hat. Of course they are. Their role revolves around generating deeper insights by analyzing data and using data science and advanced analytic techniques. From predictive modeling to creating recommendation systems, their work remains unstructured but highly valuable. Of course it is. Because now these guys, ये जो लोग हैं, जो हमारे डेटा साइंटिस्ट होते हैं, दे प्राइमरली खैर ये आगे मैं आप लोगों को अभी मैंने ये बतानी है सारी चीजें, लेकिन एनालिटिक्स की 4 लेयर्स होती हैं। देयर इज डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स, देयर इज डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स, सॉरी मुझे ये वाला याद नहीं आ रहा, देन देयर इज predictive analytics, and then there is prescriptive analytics. So these guys are primarily working over here. ये जनरली डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स में और ये जो दूसरा है जिधर क्रॉस लगा हुआ है, इसके अंदर काम नहीं करते। ये दे हेल्प यू प्रेडिक्ट द फ्यूचर। ठीक है। इनका जो स्किल सेट है, दैट्स डिजाइन्ड अराउंड दैट। ठीक है। और दे आर एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर पुलिंग रैबिट आउट ऑफ द फैट। ठीक है। और प्रेडिक्टिव मॉडल्स बनाना, रिकमेंडेशन सिस्टम्स क्रिएट करना। अब ये रिकमेंडेशन सिस्टम्स क्या होते हैं? कैन एनी डिटेल नहीं, किसी ने अगर कोई मशीन लर्निंग के बारे में थोड़ा सा पढ़ा हो? सर मॉडल को ट्रेन करना जो ऑलरेडी Okay, fine. ठीक है, ओके फाइन। नहीं, लेकिन कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज अ रिकमेंडेशन सिस्टम? प्रेडिक्टिव मॉडलिंग में तो यस, मॉडल को ट्रेन करना, देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेडिक्टिव मॉडलिंग। ठीक है ना? देयर आर देयर इज, हाउ वुड आई से दैट, का नाम क्या है? दो किस्म की जो है ना बेसिकली मॉडल्स होते हैं प्राइमरीली। ठीक है। एंड दे आर वी नो अबाउट प्रेडिक्टिव मॉडलिंग, जो कि लीनियर या जो बेसिकली रिग्रेशन बेस्ड प्रेडिक्टिव मॉडलिंग होती है। ठीक है। बट देन देयर इज नॉन रिग्रेशन बेस्ड प्रेडिक्टिव मॉडलिंग एज वेल, जिसमें आपका डेटा जो है वो लेबल्ड नहीं होता। सो यूं कह ले अनलेबल्ड प्रेडिक्टिव मॉडलिंग। ठीक है। व्हाट इज अ रिकमेंडेशन इंजन? वैसे रिकमेंडेशन इंजन क्या चीज होती है, कोई मुझे बता सकता है? दराज किसने यूज किया? हैज एनीबॉडी ऑर्डर्ड एनीथिंग फ्रॉम दराज? यस सर। अच्छा, दराज पे, अच्छा ओके फाइन। ऑनलाइन, चलिए मुझे बताएं, ऑनलाइन शॉपिंग कौन कौन करता है? क्या करते हैं? सारे लोग करते हैं। यस सर।
अच्छा, most of the websites now actually utilize this. ठीक है, what they do is कि when you sign in, तो you start purchasing something ना, तो आपको ना नीचे जो है ना recommendations आना शुरू हो जाती है. यहाँ पर जनरली इधर आ रही होती हैं. मुझे ये देखें यहाँ पर, people who viewed this item also viewed this. अब how does दराज know कि ये जिस बंदे ने ये घड़ी खरीदी थी उसने बेसिकली ये साथ में करी लीफ भी खरीदे हैं और पेयर ऑफ रबर कोटेड डंबल्स भी लिए हैं, एंटी ओपन ड्रॉर लॉक भी लिया और ये भी लिए. हाउ डज दैट हैपन? AI, artificial intelligence. अच्छा, दिस इज नॉट टेक्निकली एआई. आप लोगों में से नेटफ्लिक्स कौन कौन यूज करता है? जी सर. अच्छा, अब नेटफ्लिक्स में व्हेन यू एक्चुअली स्टार्ट सीइंग सर्टेन मूवीज तो नीचे रिकमेंडेशंस आ रही होती हैं. बिल्कुल आती है सर. ठीक है ना. अच्छा, तो दिस इज अब मेरे ज़हन में वो आ गया था, देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ. फिल्टरिंग तो नहीं है? जी सॉरी, कंटेंट बेस्ड फिल्टरिंग तो नहीं है सर? जी कंटेंट ये नहीं, ये कंटेंट बेस्ड फिल्टरिंग नहीं है, लेकिन कंटेंट बेस्ड फिल्टरिंग यहाँ पे अप्लाई हो सकती है कि इफ एल्स के अगर आप रूल्स बना लें. ठीक है ना, इफ एल्स के अगर आप रूल्स बना लें तो कंटेंट बेस्ड फिल्टरिंग भी हो सकती है, लेकिन इट वुड बी टू कम्बरसम, बिकॉज ये इफ एल्स स्टेटमेंट्स लिखने के लिए आपको लॉजिक चाहिए होगी कि अच्छा यार, जब कोई बंदा ये देखे, इफ ही सीज दिस घड़ी, देन make him see this or else make him see this. ऐसे ही है ना, that would be content based filtering. But what if कि अगर आपने ये जो लॉजिक है ये डिटरमिन करनी हो कि जो घड़ी देखता है वो साथ में ये भी देखता है, वो कैसे होता है? Those are called recommendation engines. ठीक है, और ये आई थिंक ये टेलकोज में बहुत ज्यादा यूज होते हैं ये सर. आई डोंट नो सर को पता है नहीं पता है अपना जो सॉरी just give me a second. जो अपना अली इब्राहिम साहब है, शायद इनको शायद मालूम हो कि लाइक टेलकोज हैं वो रिकमेंडेशन इंजन यूज करते हैं. आई मीन मुझे पता, आई नो ऑफ अ कपल ऑफ टेलकोज इन पाकिस्तान जो कि यूज कर रहे हैं. जी बिल्कुल, बहुत सारे हम लोग बिल्कुल करते हैं. तो क्योंकि हमारी जाहिर सी बात है, वो जो डेटा जो हमारा होता है ऑफ डिफरेंट कस्टमर्स, तो दैट इज यूज्ड फॉर अ लॉट फॉर प्रेडिक्टिंग कस्टमर behavior and all, which can then be used to cross sell other products and services. Yes, offer them more services. Exactly. Yeah, because of the बिल्कुल. and exactly, और उसमें ये recommendation engines यूज होते हैं जो कि which is actually unsupervised machine learning. इसको unsupervised machine learning की कैटेगरी में डाला जाता है. And what is happening is कि what you're trying to do is कि what is the probability of a customer purchasing product B if he purchased product A. Yeah. ठीक है, ये this is what is happening in the background. इसके लिए फिर different algorithms होते हैं. there are a priori algorithms, ठीक है ना, फिर then there are ECA algorithms, मुख्तलिफ methodologies होती हैं, लेकिन at the core of it this is what you're doing. And what you do is कि आप threshold लगा देते हैं. आप threshold लगा लेते हैं यार, अच्छा अगर ये probability जो है let's say is greater than let's say 85%, ठीक है, कि जी जिस बंदे ने आप ए लिया था तो उसने बी भी लिया था और कंसिस्टेंटली डेटा में आपको ये पैटर्न नजर आ रहा है, तो यू देन ब्रीड दैट लॉजिक इनटू अ सिस्टम जो कि फिर आपको यहाँ पे रिकमेंडेशंस देना शुरू कर देता है. व्हाई? बिकॉज यू ऑलरेडी नो कि यार अगर इसने डबरोटी लिया तो ये अंडे और दूध जरूर लेगा. ठीक है, एंड व्हेन यू आर ऑलरेडी ऑफरिंग दैट to the customer, so the probability of him first buying this and then moving on to this product is actually much greater rather than कि उसको वो चीज नजर ही ना आ रही हो. ठीक है ना, and that is where recommendation engines are actually extremely useful because they can really kick your sales. ठीक है, तो they're extremely important. और ये जो आपके डेटा इंजीनियर जो डेटा साइंटिस्ट होते हैं, ये primarily they do work with actually creating recommendation engines. ठीक है, इन्होंने इसके लिए जनरली ट्रांजैक्शन लेवल का डेटा चाहिए होता है जिसके अंदर जो है आपको हर ट्रांजैक्शन पे जो आइटम खरीदा गया है उसको आप एनालाइज करते हैं पर ट्रांजैक्शन. बिकॉज ये मैंने बनाया हुआ है, आई एक्चुअली वर्क विद दिस फॉर अ रिटेल ऑर्गेनाइजेशन. जब मैं एडिबल एंड एनिमेशन के लिए काम कर रहा था तो यू वुड रिक्वायर ट्रांजैक्शन लेवल डेटा, यानी कि एक ट्रांजैक्शन और उस ट्रांजैक्शन का ब्रेकडाउन आपको चाहिए होता है कि अच्छा यार, जब इसने एक कस्टमर ने एक ऑर्डर प्लेस किया था तो उसने क्या क्या चीजें ऑर्डर की थी. अब
When you have that data, तो जो ये algorithms मैंने आपको बताए थे, they go inside each transaction and then they give you the probability कि अच्छा यार हर transaction को देखने के बाद हमें महसूस होता है कि with this degree of probability I can say कि product A and product B sell together, product B and C sell together, product C and A sell together. ठीक है? So that is the role of a data scientist. वो data scientist ये काम करते हैं. Business stakeholder, and I'm not a data scientist. मैं like मुझे शौक था, मैं मतलब of course मेरे पास वो skill set completely नहीं है जो कि एक data scientist का होता है. I lack a lot, but ये है कि I was at least able to implement it and recommend it to edible arrangements कि हमें ये चीज deploy करनी चाहिए website के ऊपर, because वो नहीं हुई with user. You would हमारा CEO जो है he would actually complain कि यहाँ पर जो है ना हमारे वेबसाइट के ऊपर अजीब किस्म की रिकमेंडेशंस आ रही होती हैं जो कि बिल्कुल स्टैटिक होती हैं. फॉर एग्जांपल एक बंदा जो है वो किसी को किसी जनरली यूएसए वगैरह में ट्रेंड ये है कि इन ऑर्डर टू शो ग्रीवियंस और ग्रीफ you can send them something as a token of gratitude. ठीक है कि यार मैं फ्यूनरल पे खुद नहीं आ सका तो आई एम जस्ट सेंडिंग दिस बुके फॉर यू. और वो कहता था कि यार एक ग्रीफ रिलेटेड प्रोडक्ट है और उसके नीचे हैप्पी बर्थडे की जो है ना प्रोडक्ट्स की रिकमेंडेशंस आ रही. ठीक है ना. दैट इज एन एक्सट्रीमली बैड मिसमैच अगर देखा जाए तो. ठीक है ना. वो कस्टमर भी कहेगा कि यार क्या है, मुझे जो है ना ऊपर मैं जो है ना किसी को एक प्रोडक्ट भेज रहा हूँ बिकॉज उसके घर में डेथ हो गई और नीचे जो है ना मुझे हैप्पी बर्थडे की रिकमेंडेशंस आ रही. तो इस तरह की जो प्रॉब्लम है वो बेसिकली एक रिकमेंडेशन इंजन सॉल्व कर सकता है. ठीक है ना. आप उसे ट्वीक कर सकते हैं कि अच्छा यार जब एक बंदा है जो कि बेसिकली एक स्पेसिफिक सिनेरियो में एक चीज खरीदने आया था तो वो उसने साथ में और क्या चीजें खरीदी. जब आपके पास ये एसोसिएशन रूल्स क्रिएट हो जाएंगे तो यू कैन ऑलवेज रिकमेंड प्रोडक्ट्स जो कि मोर अप्रोप्रिएट है. उसके बाद then there are business stakeholders who are tasked with continuously creating value for both the consumers and the product organization they work for. They work in tandem. अब again ये ऊपर भी रोल जो है ये सारा मैंने आपको बताया था कि ये इसके साथ मर्ज हुआ हुआ है. ये थोड़ा जो है जो बिजनेस स्टेक होल्डर है वो जरा थोड़ा सा इससे भी ऊपर प्रोडक्ट मैनेजर से ऊपर का रोल है. प्रोडक्ट मैनेजर तो फिर जो है प्रोडक्ट की निटी-ग्रिटी में इन्वॉल्व होता है. बिजनेस स्टेक होल्डर जो है वो प्राइमरीली मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स के पोर्टफोलियोज को देख रहा होगा और उसकी ओवरऑल ओरिएंटेशन ये होगी कि मैं ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिटेबल कैसे बनाऊं. ठीक है ना. सो उसका और भी जरा मैक्रो लेवल का रोल है. सो दे आर टास्क्ड विद कंटिन्यूअसली क्रिएटिंग वैल्यू फॉर बोथ द कंज्यूमर्स एंड द प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन दे वर्क फॉर. They work in tandem to meet the expectations set by the consumers and improve the value proposition that their product या products offers, while optimizing the return on investment of their efforts in achieving organizational targets. अब इसकी मिसाल मैं अगर एक नॉन टेक बैकग्राउंड से दूं या नॉन टेक एग्जांपल दूं तो वो ये है कि लेट्स से कि यू आर वर्किंग फॉर पीटीसीएल एंड अगर इफ आई एम द सीनियर एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट कमर्शियल तो मेरे नीचे जो 7, 8, 9 प्रोडक्ट लाइंस हैं वो बेसिकली वुड बी माय डोमेन ऑफ इंटरेस्ट. मेरी कोशिश ये होगी कि मैं अब उनको ट्वीक करूं, उन सारे प्रोडक्ट्स को ऐसी ऑफरिंग्स निकालूं, ऐसा काम करूं कि वो जो हैं जो प्रोडक्ट लाइन है 7, 8 मेरे नीचे वो जो हैं वो प्रॉफिटेबल हो जाए. they bring back the most amount of profit. Whereas जो president of the organization, he would not only look at what is the portfolio of the आपका जो आपका senior executive vice president commercial, but he would actually be also looking at other investments. ठीक है. वो हो सकता है साथ में यूफोन की एंटिटी को भी देख रहा हो. ठीक है ना. बिकॉज पीटीसीएल का सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर इसी तरह था कि पहले तो ऐसे ही था कि आपका जो प्रेसिडेंट होता था पीटीसीएल का वो ही पहले he used to be the president of the UFON as well, because ये एक like merged entity थी, एक ही entity के अंदर से निकले में. But I think that changed later on. So उसकी जो scope of responsibility है वो is much greater. Whereas एक commercial वाला जो बंदा है वो सिर्फ commercial में जो नीचे 8 products हैं उनको देख रहा है. ठीक है ना. तो जो business stakeholder है वो I would say इसका एक more macro level के ऊपर जो है ना basically scope of responsibility होती है. इसके बाद So any questions this far? कोई सवाल किसी
कोई रोल में confusion, any questions that you guys might have? Okay. Okay, hold on guys, just give me a second. अच्छा, इसके बाद what is the next thing? Yeah, so अच्छा, don't be scared by this. But in any organization जो कि किसी न किसी स्ट्रक्चर में डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग को यूज कर रही है, अब वहां पर जो है ना the overall structure of the organization, the technical side would look something like this. ठीक है ना, it would look something like this. अब यहाँ पर इस पूरे मैप के अंदर मेरा रोल या इस मैप को दिखाने का रोल ये है या मकसद ये है कि I actually tell you the different facets of an organization, और वहां पर ये रोल्स हैं वो कहाँ पर यूज हो रहे होते हैं. For example, you have first of all, you have the consumer application side. This is the front end. ये वो जगह है जहाँ पे consumer जो है आपकी application को use कर रहा है. It could be a mobile app, ठीक है? It could be a web app, ठीक है? And over here you would see the product manager and the consumers the most active, because the product manager would actually have the pulse on the consumer कि अच्छा यार consumer जो है what is he thinking. He would be responsible for ensuring to put processes in place जो कि consumer का जो behavior है उसको capture करेंगे. अब for example, मैंने आपको अभी जो product दिखाया है ये अभी commercialize नहीं हुआ. This has not been sent into the market. ठीक है, ये जो मैंने आपको RSS दिखाया था. अब इसमें हम लोग अभी रिसेंटली डिसाइड कर रहे थे कि अच्छा यार ये हमने जो प्रोडक्ट एनालिटिक्स जो बेसिकली कंडक्ट करने हैं अगर, और कंज्यूमर एनालिटिक्स कंडक्ट करने हैं, तो उसके लिए हम क्या करें, व्हाट शुड वी डू. अब एक तरीके कार तो ये है कि मैं जो हूँ इवेंट फनल्स बनवाऊं और उनको हार्ड कोड करवाऊं डीबी के अंदर जाके कि यार जब भी कोई कंज्यूमर जो है ना मेरी वेबसाइट के ऊपर आता है यहाँ पर, ठीक है, या मेरी ऐप के ऊपर आता है, तो इन सर्टेन इवेंट्स को जो है ना आपने डीबी के अंदर जो है ना मॉनिटर करना. Another way to do this could be to use off the shelf products like मैं जो आजकल जिनको बेसिकली एनालाइज कर रहा हूँ, जो कि मैं सोच रहा हूँ कि डिप्लॉय करूँ, और हमने एक सॉर्ट ऑफ डिसाइड भी कर लिया है, दैट इज Matomo. ठीक है, सो Matomo इज बेसिकली एन एनालिटिक्स it's a web-based application, and it works very like Google Analytics. So what you do is you take a piece of code and you insert it into the code that is running on your application. And the beauty of this product is कि आपको you don't have to then hard code any sort of events that you want to capture in the DB. You can use the web-based application to design your own events on the go. That would save me a ton of time. Because अगर मैंने हर दफा जाके इवेंट्स को हार्ड कोड करवाना है, तो मुझे पहले आर्किटेक्चर के बंदे से बात करना पड़ेगी. वो कहेगा अच्छा यार ये चेंज हो सकती है, नहीं हो सकती. फिर वो जो है ना नीचे बैठे हुए इंजीनियर को कहेगा कि अच्छा यार इन चीजों को डीबी के अंदर जो है ना ये नए कॉलम बनाओ और यहाँ पर जो है ना इस इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करो. पेनफुल टाइम. मेरा जो ओवरऑल प्रोडक्ट एनालिटिक्स का जो पूरा टर्न अराउंड टाइम है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर जाएगा. वेयर एज इफ आई यूज टूल्स लाइक Matomo या मिक्स्ड पैनल भी एक और टूल है. इफ आई शो यू दिस मिक्स्ड पैनल, ठीक है, मिक्स्ड पैनल एक और टूल है. अगर मैं इसको यूज करूं या मैं गूगल एनालिटिक्स को भी यूज करूं, तो आई वुड एक्चुअली वेरी इजीली बी एबल टू डिजाइन दीज इवेंट्स, डू A/B टेस्टिंग ऑन द गो. ठीक है, और उससे मेरा जो डिसीजन मेकिंग टाइम है वो बहुत ज्यादा तेज हो जाएगा. मेरी प्रोडक्ट मैट्रिक्स जो है वो बहुत ज्यादा एजाइल हो जाएंगी. हाउ वुड आई से, दैट्स हाउ वुड आई पुट इट. मैं इस तरह इसको बोलूंगा. ठीक है, तो आई वुड बी एक्चुअली डूइंग एजाइल प्रोडक्ट मैनेजमेंट. सो एज अ
product manager, मैं in order to get a good pulse on my consumer, I would then put in place a layer of a product analytics जो कि capture करे, ठीक है, and only for the consumer, ताकि मुझे पता लग सके कि यार consumer मेरी ऐप के ऊपर क्या कर रहा है, ठीक है. फिर then there are the back end services, जहां पर यूजर इंटरफेस की सर्विसेज होती हैं, यूजर मैनेजमेंट की सर्विसेज हैं, अगर कोई रिकमेंडेशन इंजन चल रहा है तो उसकी सर्विसेज हैं, कंटेंट की कोई सर्विसेज हैं और बिलिंग की कोई सर्विसेज. अच्छा, अब मजे की बात ये है कि अगेन सिंस आई एम एक्चुअली वेयरिंग अ लॉट ऑफ हैट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, तो आई हैव बीन वर्किंग विद द यूआई सर्विसेज, द यूजर मैनेजमेंट सर्विसेज, ठीक है, बिकॉज हम ये अभी इन प्लेस कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट के लिए. कंटेंट सर्विसेज, ठीक है, रिकमेंडेशन की सर्विसेज नहीं है अभी हमारी, और बिलिंग की सर्विसेज. अच्छा, अब RSS फॉर पर्टिकुलरली फॉर RSS, अगर मैं RSS की बात करूं, तो अगर मैं कंटेंट की बात करूं तो मेरा कंटेंट जो है वो हमारा ही एक और प्रोडक्ट है जहां से जनरेट होकर आता है. अब ये जो सवालात मैंने आपको बताए थे जो कि आप यूज करेंगे इन ऑर्डर टू सेल्फ असेस योरसेल्फ, वेयर आर दे कमिंग फ्रॉम? दैट इज द कंटेंट ऑन माय एप्लीकेशन, ठीक है. सो दोस कम फ्रॉम अ डिफरेंट प्रोडक्ट which is called Artisan, ठीक है, which is a different product. Just give me a second. Marker 11 IW. This is a different product, ठीक है. अच्छा, अब ये प्रोडक्ट क्या है? ये बेसिकली प्रोडक्ट आपको कंटेंट क्रिएट करने में हेल्प करता है. ये हमने एक एज अ सेपरेट प्रोडक्ट बनाया था. Teachers could log into this product and create questions. For example, I could actually say कि अच्छा यार मैंने ग्रेड 10th के बायो का ये भी ऑल रहने दें, मल्टीपल चॉइस का एक सवाल या CRQ का क्वेश्चन बनाना है, ठीक है, और ये इसके अंदर बिकॉज ये जो हमारा सिंगल नेशनल करिकुलम है उसको यूज कर रहा है, तो मेरे पास ये टॉपिक्स जो हैं और सब टॉपिक्स जो हैं वो ऑलरेडी हमने DB के अंदर पॉपुलेट करे हुए हैं, तो आप ड्रैग एंड ड्रॉप से इनको सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है. इसको होमोस्टेसिस बेंचमार्क, ठीक है, लर्निंग आउटकम मम होगी, इसको एप्लीकेशन इसको मॉडरेट कर लें, 1 मिनट, ठीक है, 1 मिनट, ठीक है, सोर्स को सेल्फ क्रिएटेड डिस्क्रिप्शन कर दें ABC, एंड इफ आई प्रेस नेक्स्ट तो ये मुझे कैनवस के ऊपर ले जाएगा, वेयर आई कैन एक्चुअली देन ऐड अ क्वेश्चन, ऐड पिक्चर्स टू इट, and then I can actually, now that question would go into the DB. वो एक प्रोसेस में से गुजरता है, वेरीफाई होता है कि ये सवाल legit भी है या नहीं है, there is a whole process जो कि इस प्रोडक्ट के पीछे चल रहा है, and then it drops into the DB and it actually becomes content for my other product. अब इन सवालों को मैनेज करना, इस कंटेंट को मैनेज करना, इसको अवेलेबल करना, now that is my, again as a product manager, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. एंड अभी मैंने रिसेंटली 2000 के करीब सवाल जो हैं वो ऐड करवाए, और अभी हम तकरीबन 21,000 सवाल और ऐड करवाएंगे इस ऐप के लिए खाली, which is going to be consumed by the user जो कि इस RSS को यूज करेगा, ठीक है. देन देयर आर बिलिंग सर्विसेज. अच्छा यार, मैंने कंटेंट तो डाल दिया है, मेरा जब यूजर है वो आएगा और उसको मैंने जो भी फ्रीमियम मॉडल दे दिया शुरू में, और उसके बाद फिर मैंने उससे पैसे चार्ज करने हैं, तो बिलिंग की सर्विसेज ऐसे चलेंगी. व्हाट वुड बी द प्रोसेसेस इन प्लेस? मैं कैसे चार्ज करूंगा उसको? हाउ एम आई गोइंग टू डू इट? ठीक है. फॉर अगर मैं पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव की बात करूं तो हम सीरियसली कंसिडर कर रहे हैं कि हम टेलकोस के साथ चले जाएं, बिकॉज एंड वी आर ऑलरेडी इन टॉक्स विद लाइक अ कपल ऑफ टेलकोस, और उसका हमें फौरन एक एडवांटेज ये है कि टेलकोस हैव एन ऑलरेडी वेरी ह्यूज यूजर बेस जिनकी एक्सेस जो है हमें अवेलेबल होगी, ठीक है. और उसमें देन देयर आर डिफरेंट मॉडल्स जो कि टेलकोस यूज करते हैं. जनरली इट्स अ 60-40 रूल या 70-30 रूल, और अ 50-50 रूल, जिसके अंदर जो है ना टेलकोस जो है वो आपको क्योंकि एक्सेस दे रहे होते हैं, देन रिस्पॉन्सिबल फॉर द मार्केटिंग, तो वो जो है ना 60-50-40, नॉट इट्स नेवर लेस देन 50% एज पर माय अंडरस्टैंडिंग, बट इट 60-70% या 50% जो है वो आपका रेवेन्यू, यानी या जो यूनिट के ऊपर जो रेवेन्यू आ रहा है, जो कि एक यूनिट जो आप सेल करते हैं वो रख लेते हैं, बाकी जो आपकी जेब में चले जाते हैं, ठीक है. सो एनी क्वेश्चंस दिस फार? यहां तक किसी का कोई सवाल? आई होप इट्स नॉट दैट कंफ्यूजिंग.
ओके, सो जो प्रोडक्ट मैनेजर, यूनिट का दोबारा बताएंगे? अच्छा देखिए, यूनिट इकोनॉमिक्स, सॉरी क्या हो गया भाई, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, अच्छा, I have actually talked about unit economics. So it only simply means कि एक यूनिट ऑफ माय प्रोडक्ट, वन यूनिट जो कि मैं सेल करूंगा, हाउ एम आई गोइंग टू प्राइस इट एट अ पॉइंट, प्राइसिंग पॉइंट इसका ऐसा हो कि इट एक्चुअली नॉट ओनली हेल्प्स मी ब्रेक इवन, but it actually allows me to earn a profit on that as well. That is, so essentially यूं कह लें कि आप, अगर मैं एक यूजर जो है मेरा RSS का, जब वो ऐप के अंदर लॉग इन करता है, ठीक है, तो व्हाट एम आई गोइंग टू चार्ज हिम, व्हाट आर गोइंग टू बी द बेसिस जिसकी बेसिस पे मैं उसको चार्ज करूंगा, दैट इज गोइंग टू ले द फाउंडेशन फॉर माई यूनिट इकोनॉमिक्स। डज दैट मेक सेंस? जी सर, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आई यूज्ड टू वर्क इन अ डिटर्जेंट मल्टीनेशनल, तो अगर मैं वहां पे डिफरेंट वेरिएंट्स, डिफरेंट वॉल्यूम देख रही हूँ, तो उसमें मैं यूनिट कैसे वो करूंगी? आपकी जो पर SKU जो यूनिट प्राइस है, उसके जरिए, जो आपका स्टॉक कीपिंग यूनिट है, रिटेल में SKUs यूज होती है ना। यस सर। आपका जो, लेट्स से कि आपके डिटर्जेंट की कैटेगरी में कितने ब्रांड्स हैं? एक ही ब्रांड है। यस सर। एक ब्रांड के अंदर 3 SKUs हैं, आई कॉल देम स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज। ओके, ठीक है, अब Yes, उस एक SKU की ब्रेक इवन प्राइस क्या है? ये एक मेथोडोलॉजी है, ठीक है ना, ये जो मैं प्राइसिंग, हाँ जी, ये मैं आपको एक मेथोडोलॉजी बता रहा हूँ, वैसे तो 3-4 तरीके हैं प्राइसिंग करने के। ठीक है, आप ये निकाल लें कि अच्छा यार, मेरी जो फिक्स्ड कॉस्ट है और जो मेरी वेरिएबल कॉस्ट है, बिकॉज आपकी क्योंकि प्रोडक्शन लाइन है, तो आपकी फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट दोनों होंगी। Yes, sir. ठीक है, हाउ डू दे बेक इनटू माय यूनिट फॉर दैट पर्टिकुलर SKU, and then on top of that how much margin would I need to earn? Okay. ठीक है, ये एक तरीका है, दिस इज वन ऑफ द मेथोडोलॉजीज जो कि रिटेल में इस्तेमाल होती है। देयर आर 2 और 3 मोर अदर्स एज वेल। Okay. ठीक है, देयर इज कंपैरेटिव प्राइसिंग, नेचर ऑफ द प्रोडक्ट के ऊपर जो है ना आप डिपेंडेंट होते हैं। अब आप मुझे ये बताएं कि जो आपका एक सर्फ का डब्बा जिस तरह प्राइस होता है, क्या एक बुगाटी उस तरह प्राइस हो सकती है? सर दोबारा पूछें। जो एक सर्फ का डब्बा है, Yes. वो जिस तरह प्राइस होता है, क्या एक बुगाटी भी या फरारी भी उसी तरह प्राइस होती है? No, sir. नहीं होती ना, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि उसकी एक प्रोडक्ट जो है वो आपका कंज्यूमर प्रोडक्ट है जो डेली बेसिस पे यूज हो रहा है, दूसरा एक प्रेस्टीज प्रोडक्ट है Yes, sir. जिस गाड़ी के अंदर बैठने की एक अपनी वैल्यू है। Yes, sir. इनकी जो प्राइसिंग जो टेक्निक्स हैं वो डिफर करेंगी। Yes, sir. ठीक है ना, तो ये अगेन जब हम प्राइसिंग पढ़ेंगे तो ये चीजें मैं कवर करूंगा, लेकिन ये जस्ट टू गिव यू अ फ्लेवर। आपके क्योंकि केस में लेट्स से कि आपने जो एग्जांपल दिया क्योंकि वो रिटेल थी, तो रिटेल जो है ना वो प्रोडक्शन सेंट्रिक होती है। और जो प्रोडक्शन सेंट्रिक जो बिजनेसेस होते हैं वो जनरली जो है वो ये करते हैं कि दे हैव सम सॉर्ट ऑफ एन अकाउंटिंग कॉस्ट जो कि पर प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट हुई होती है कि अच्छा यार हमें एक डब्बा इतने का पड़ता है और हेल्दी मार्जिन मेंटेन करने के लिए हम इतना परसेंटेज उसके ऊपर चार्ज करेंगे। तो सर वो डिफरेंट SKUs पे डिफरेंट प्राइसिंग का वो स्ट्रेटेजी लगा रहे होते हैं, या उसको एक स्ट्रेटेजी पे लेके आते हैं कि प्राइस पर वॉल्यूम इतना होना चाहिए? नहीं, देखें, अगर आपकी एक ब्रांड लाइन के अंदर मल्टीपल SKUs है ना, तो प्राइसिंग की स्ट्रेटेजी एक ही लगेगी, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है। लेट्स से कि आपका डिटर्जेंट ABC है, यस सर, जो कि बेसिकली लेट्स से कि यू नो इज अ लो कॉस्ट प्रोडक्ट, बट देन you go ahead and launch a different brand डिटर्जेंट ही का, जो कि आप एडवर्टाइज करते हैं या प्लेस करते हैं इनटू द मार्केट एज अ प्रीमियम
जिसे कहते हैं ना डिटर्जेंट ब्रांड, जिसकी खुशबू भी बड़ी अच्छी है और वो कपड़े भी खराब नहीं करता और स्टफ लाइक दैट. Now Yes, you have the opportunity to employ a different pricing strategy for that. ठीक है ना? It Yes, could sir. be premium pricing or it could be anything else. But the placement in the market would really matter. Okay. अब ये बिल्कुल उसी तरह ही है कि आप मतलब ब्रेड, everybody uses the bread. ठीक है? There is simple white bread. और उस सिंपल व्हाइट ब्रेड के जो है ना वो 3 या 4 SKUs है. देयर इज दिस वेरी लार्ज ब्रेड, ठीक है ना, देन देयर इज लार्ज ब्रेड, देन देयर इज मीडियम. और अब मैंने देखा है कि ब्रेड के भी छोटे टिकी पैक्स आ गए. Yes, sir. Has anybody sees those? Yes, sir, कि पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है, इन्फ्लेशन बढ़ गई है, परचेजिंग पावर रिड्यूस हुई है. Yes, sir. उस वजह से जो है ना कंपनीज ने ब्रेड की टिकी पैक्स जो है ना लॉन्च कर दिए हैं, जिनके अंदर 4 स्लाइसेस बंडल हुए हुए होते हैं. Exactly. ठीक है ना? तो उसमें अब मैं इसे इंतजार कर रहा हूँ कि अंडों के साथ का भी होगा. तो आई वाज एक्चुअली कैलकुलेटिंग दी अदर डे कि 28 रुपए का एक अंडा पड़ता है हमें. ठीक है ना? तो आई एम एक्चुअली जस्ट वेटिंग फॉर कि अब वो 4 अंडों का पैकेट कब आएगा. ठीक है ना? कब सर्विस प्रोवाइडर्स जो हैं, बिकॉज होगा ये कि इफ ऑर्गेनाइजेशंस डू नॉट अडॉप्ट टू दिस, पीपल विल स्टॉप ईटिंग एग्स. they've already started doing that. ठीक है ना? लोगों ने अंडे खाना छोड़ दिए बिकॉज एक अंडा अगर आपको 28 या 32 रुपए का पड़ा तो आप क्यों खर्च करेंगे? आप सिंपली चाय में ब्रेड बो के खा लेंगे. ठीक है ना? तो वो 6 अंडों का आ जाता है ना. अब 6 अंडों का मिनिमम पैकेट आ जाता है. फिर बंदा वो एस्टिमेट करता है कि मुझे जाके लाने में 1 अंडा जितना लगेगा, तो इससे अच्छा मैं 6 स्टॉक करके रखूं. 6 अंडे ले लो. एग्जैक्टली. लेकिन अभी तक मार्केट में 6 अंडों के पैकेट नहीं आए. जो बड़े आउटलेट्स पे तो है ना. अच्छा, हाँ, बड़े पे मैंने देखे, मैंने छोटी आउटलेट्स पे नहीं देखे. मैं अभी भी 12 अंडे पे हाफ डजन का होता है, 6 का. ठीक है, बिल्कुल ठीक है. मैंने अभी तक मैंने जो है 4 या 6 के मैंने जो है छोटी आउटलेट्स में नहीं देखे. और उसकी प्राइमरीली और ये बड़ी अच्छी बात है कि उन्हें ऑर्गेनाइजेशन ने अडॉप्ट करना शुरू कर दिए. बिकॉज अगर दे वुड हैव नॉट अडॉप्टेड, दे वुड हैव बीन फेज्ड आउट, बिकॉज लोगों ने अंडे खाने छोड़ दिए. बिकॉज आपकी जो ओवरऑल 12 अंडों की ट्रे है, दैट इज एक्सट्रीमली कॉस्टली नाउ. ठीक है ना? नॉट एवरीबडी कैन अफोर्ड इट. लेकिन सर जो कारफोर जा रहा है और वहां से बल्क शॉपिंग कर रहा है, जी, वो 6 अंडे की जगह वो 12 अंडे भी ले सकता है. बिल्कुल, ये बात भी आपकी सही है. इसी वजह से जरूरी है कि आप अपनी सप्लाई को बिल्कुल रिटेल के एंड तक पहुंचाएं. वो जगह जहां पर ये बेसिकली अभी अवेलेबल इन्होंने नहीं किया, इन्हें करना चाहिए. जी. ठीक है ना? जिस खाली कारफोर पे नहीं पड़ा होना चाहिए. वो शॉपकीपर्स जो छोटे एरियाज में जाते हैं, हो सकता है वहां से लेके आ जाए. एब्सोल्युटली. अच्छा, ये भी गेम है. बहुत सारे शॉपकीपर्स जो हैं वो रादर देन गोइंग डायरेक्टली टू द रिटेलर, वो आप कारफोर वगैरह चले जाते हैं. यस सर. वहां से जाके बल्क बाइंग कर लेते हैं. यस सर. ठीक है ना? तो अगेन दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, थोड़ा सा हम डाइग्रेस करके. बट ये इस तरह जो है ना बेसिकली आप ये सेटअप करेंगे. ठीक है? और यहाँ पर भी आप ये देख रहे हैं कि जो प्रोडक्ट मैनेजर है आपका, ही वो पेश है. ठीक है? एंड देन यू हैव द डेटा आर्किटेक्ट्स, बिकॉज ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लेइंग डाउन द फाउंडेशंस ऑफ एवरीथिंग दैट्स रनिंग ओवर, जिस तरह कि मैंने पहले जिक्र किया था आप लोगों से. ठीक है? Sorry guys, sorry about that. ठीक है? So these guys would actually work together over here. And then comes the part जहां पर इससे जनरेट होने वाला डेटा जो है किसी पाइपलाइन को इस्तेमाल करते हुए जाएगा आपके. अच्छा, इधर एक चीज मिसिंग है यहां पर इन द मिडल ना. देयर हैज टू बी सम सॉर्ट ऑफ अ रॉ डीबी, आरडीबी. ठीक है? और आपके जो एनालिटिकल वेयर हाउस है या स्टोरेज हाउस है वो सेपरेट होता है जनरली. एनी बिग ऑर्गेनाइजेशन वुड नेवर जो है ना वो कभी भी ऐसे नहीं करेगी कि जो आपकी प्रोडक्ट की प्रोडक्शन की डीबी चल रही है और जो आपकी एनालिटिकल फंक्शंस के लिए जो डीबी चल रही है वो एक हो. दैट इज नेवर द केस इन माय ऑर्गेनाइजेशन. अनफॉर्चुनेटली ये अभी ऐसे ही हो रहा है. इसलिए हो रहा है क्योंकि हम एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन है. ये जो मैं यहाँ पर ये जो मुझे डीबीज नजर आ रही है, ये एक्चुअल में प्रोडक्शन की डीबीज है. ये एक्चुअल प्रोडक्ट की जो डीबी है ये उसकी एक्सेस है. ऐसे कभी भी नहीं होता. जनरली एक प्रोडक्ट है ना, अगर आर मार्कर के नाम से, इस प्रोडक्ट का नाम है आर मार्कर.
एक अगर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास ऑफ कोर्स रिसोर्सेज ज्यादा हो, तो वो ये करेंगे कि इसकी एक्सेस कभी भी डेटा एनालिस्ट को नहीं देंगे. दे वुड क्रिएट व्यूज एंड प्रोसेसेस जो कि डिजायर्ड इंफॉर्मेशन एक सेपरेट डीबी के अंदर अपलोड करेंगे, जिसका मैंने नाम लिया आरडीबी. सॉरी, नॉट एनालिटिकल डीबी, सॉरी एनालिटिकल डीबी. ठीक है, एनालिटिक्स ही आप डीबी कह लें. और जो एनालिस्ट होता है वो हमेशा इसको एक्सेस कर रहा होता है. एनालिस्ट यूजुअली एक्सेसेस दिस डीबी. अब this DB, ADB is a subset of the RDB, because जब आप डेटा एनालिसिस कर रहे होते हैं तो आपको सारी रॉ इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए होती. तो जो प्रोसीजर्स लिखे जाते हैं वो फनल करते हैं इंफॉर्मेशन, ओनली द यूजफुल इंफॉर्मेशन जो कि यहां पर आती है और पॉपुलेट होती है इनटू टेबल्स. एंड देन एज एन एनालिस्ट और एन एमएल गाय और एन इंजीनियरिंग गाय और डेटा इंजीनियरिंग गाय, यू एक्चुअली एक्सेस दीज टेबल्स. ठीक है ना, आप डायरेक्टली कभी भी इसको नहीं करते. ये तो एक्चुअली क्योंकि वी आर एक्चुअली अ मच स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग ऑन अ मच स्मॉलर बजट, so we don't have that analytical function separate. ठीक है, but it usually happens in larger organizations. There is actually a raw DB over here. और ये मैं आगे आपको दिखाऊंगा अभी एक पिरामिड डायग्राम के जरिए कि ये लेयर्स कौन कौन सी. तो उस RDB से जनरली डेटा इंजेस्ट होता है इनटू सम सॉर्ट ऑफ एन एनालिटिकल स्टोरेज डेटा वेयरहाउस. उसके ऊपर फिर ETL के प्रोसेसेस लगती हैं, थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन अगर आपने कोई करनी है, मैंने कोई मोटोमो लगाना है, स्टफ लाइक दैट, वो मैं यहाँ पे लगाऊंगा. और फिर उसकी बेसिस के ऊपर मैं जो ना रिपोर्टिंग डैशबोर्ड्स क्रिएट करूंगा. डेटा साइंस के प्रोजेक्ट्स अगर मैंने सेटअप करने में करूंगा या एनालिसिस करना तो मैं करूंगा. अब जनरली एज एन एनालिस्ट आप इस जगह पर ऑपरेट कर रहे हो जनरली. ठीक है ना, यूर जनरली वर्किंग ओवर हियर एज एन एनालिस्ट. दैट्स वेयर यू वर्क. आपका काम यहाँ पर होगा. तो आप ये देखिए, पूरा एक दुनिया है आपके रोल से बाहर जो कि चल रही है इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट. ठीक है, अब इस लेवल के ऊपर यू हैव द प्रोडक्ट मैनेजर, यू हैव द डेटा आर्किटेक्ट, यू हैव द डेटा इंजीनियर्स वर्किंग, यू हैव द क्यू इंजीनियर जो डेटा इंजीनियर जो कि टेक्निकली एक ही रोल है, यू हैव द डेटा एनालिस्ट एंड यू हैव द डेटा साइंटिस्ट वर्किंग टुगेदर. ठीक है जी. देन इज द प्रोडक्ट मैनेजमेंट, जो कि is again the responsibility of the analyst and the product manager. And what do I mean by the product management? ठीक है ना, प्रोडक्ट को मैनेज करना, इसके फीचर्स का एनालिसिस करना, यूजर के एक्सपीरियंस को जज करना, इवेंट्स के फनल्स बनाना जिसका मैंने जिक्र किया था, A/B टेस्टिंग करना, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का कोई अगर प्रोडक्ट चल रहा है एसोसिएटेड विद दिस योर ओवरऑल प्रोडक्ट, उसको मैनेज करना, प्रोडक्ट की हेल्थ को इंश्योर करना. ये सारे काम जो है प्रोडक्ट मैनेजमेंट के अंदर हो रहे होते हैं. एंड दिस इज मोर ऑफ अ एरिया जहां पर डिसीजन मेकिंग और एनालिसिस और डिसीजन मेकिंग का काम हो रहा है. ठीक है, सो एनालिसिस और उसके बाद फिर डिसीजन मेकिंग. ओके फाइन यार, ये फनल नहीं चल रहा, कस्टमर यहाँ पर आके फंस रहा है, यहाँ पर आके बाउंस कर रहा है, ये फीचर चल रहा है, ये फीचर नहीं चल रहा, इस फीचर का फायदा नहीं हुआ हमें इंक्लूड करने का, इस फीचर का इंक्लूड करने का हमें फायदा हुआ है. ओवरऑल आपका नेट प्रोमोटर स्कोर क्या है, NPS जिसे कहा जाता है, यूजर एक्सपीरियंस उससे जज किया जा सकता है, उसको कलेक्ट करना, उसके साथ जो कमेंट्स आ रहे हैं उनको सिंथेसाइज करना, उसमें से फीचर्स निकालना, देखना कि यार अच्छा मेरा मतलब जो है मेरा मतलब कौन से फीचर्स यूजफुल हैं, कौन से फीचर्स नहीं है. उसके अलावा अगर आप कोई यूजेबिलिटी स्टडीज करवा रहे हैं, उनका एनालिसिस करना, उनके अंदर से बेसिकली सिंथेसाइज करना कि अच्छा यार व्हाट इज यूजफुल और व्हाट इज नॉट यूजफुल, क्या हम फीचर सेट में ले जा सकते हैं, क्या नहीं ले जा सकते. टेक्निकली प्रोडक्ट मैनेजमेंट के अंदर ये काम हो रहा था. और अगेन इधर एनालिस्ट का रोल इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एक एनालिस्ट वो आपको डेटा फीड कर रहा था जिसके बेसिस पे आपने प्रोडक्ट मैनेजमेंट करनी होती है. और इसी वजह से आई वुड से कि मुझे बहुत बड़ा एडवांटेज हुआ जब मैं प्रोडक्ट मैनेजमेंट का काम भी कर रहा था, बिकॉज मैं प्रोडक्ट भी मैनेज कर रहा हूँ टेक्निकली. ठीक है, सो आई एम सॉर्ट ऑफ द प्रोडक्ट मैनेजर एंड दी एनालिस्ट एज वेल, बिकॉज और मुझे बहुत बड़ा एडवांटेज हुआ जबकि मुझे भागना नहीं पड़ता था लोगों के पीछे कि अच्छा यार मुझे फलान रिपोर्ट निकाल दो, फलान रिपोर्ट निकाल दो. मैं सिंपली जो है ना डीबी के अंदर लॉग इन करता था, अपनी मर्जी की क्यूरी लिखता था, एंड आई वुड एक्चुअली जस्ट सिंपली ड्रैग आउट द इंफॉर्मेशन एंड मेक डिसीजन ऑन दैट.
कि अच्छा यार हमें ये चीज इस्तेमाल करनी चाहिए, ये नहीं करनी चाहिए, ये करनी चाहिए, ये नहीं करनी चाहिए। ठीक है, एनी क्वेश्चंस दिस फार? उसके बाद जी देन कम्स द लेयर जहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग हो रही होती है। अगर आपने इफ यू डन द प्रोडक्ट मैनेजमेंट करेक्टली, अगर आपने इस पूरे फनल को इस्तेमाल किया है, आपने फीचर्स निकाले हैं, देन यू नीड टू प्रमोट देम, यू नीड टू प्रमोट योर प्रोडक्ट। अब यहाँ पर भी द प्रोडक्ट मैनेजर, द एनालिस्ट एंड द स्टेक होल्डर्स कुड एक्चुअली कम इनटू प्ले, बिकॉज the analyst comes into play because he is again analyzing and synthesizing the data in order to tell you कि अच्छा यार जो आप डिजिटल मार्केटिंग की कैंपेन्स रन कर रहे हैं या मार्केटिंग कर रहे हैं, what is the ROI on that? What is the return on investment on that? पर डॉलर जो आपका स्पेंड है ऑन मार्केटिंग, वो आपको कितने डॉलर्स इन रिटर्न लाके दे रहा है? ठीक है, व्हाट इज द परफॉर्मेंस ऑफ योर कैंपेन? व्हाट आर योर मार्केटिंग एनालिटिक्स? व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट केपीआई जो कि यूजर एक्विजिशन है, वो कैसी जा रही है? और अगेन, analyst is important over here, the product manager is also important over here, because analyst would provide the information to the product analyst and the stakeholder जिसकी बेसिस के ऊपर डिसीजन मेकिंग at the end of the day. ठीक है, and then we have the business and the market, जहाँ पे again the analyst helps you, helps the product manager, helps the stakeholder in actually ensuring कि जो है ना he is more of a facilitator in this part, जहाँ पे प्राइसिंग और रेवेन्यू को अगर आपने एनालाइज करना हो, ओवरऑल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को आपने एनालाइज करना हो, बिजनेस एनालिसिस जो है ना अगर आपने करनी है, ओवरऑल कि ओवरऑल हेल्थ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, कंटेंट की अगर आपने परफॉर्मेंस देखनी है, कंटेंट आपका कैसा परफॉर्म कर रहा है, ये सारे काम अगेन दिस कम्स अंडर द बिजनेस एंड द मार्केट। और अगेन यहाँ पर जो एनालिस्ट इज एक्चुअली एन इम्पॉर्टेंट रोल, बिकॉज देयर आर स्टिल नंबर्स इन्वॉल्व। सो अगर हम इन दोनों रोल्स को आपस में मर्ज कर दें, तो दैट इज अ वेरी डेडली कॉम्बिनेशन। आप देखें ना कि ये जो रोल्स कहाँ पर नहीं इस्तेमाल हो रहे। सो यू कुड थिंक कि दिस इज दिस a product manager who would have who has actually access to the tools and the techniques जो कि एक एनालिस्ट के पास होती हैं, डेटा एनालिस्ट के पास होती हैं, तो आप खुद सोच लें कि वो कितनी पावरफुल एक कॉम्बिनेशन बन जाती है। यानी कि these two roles are present in most of the majority of the roles of the sections of this whole ecosystem. ठीक है, अच्छा, एनी क्वेश्चंस फॉर? कोई सवाल गाइस? अच्छा, मुझे कोई ये बताए कि जी एक बिजनेस एनालिस्ट में और डेटा एनालिस्ट में क्या फर्क होता है? What is the difference between a data analyst and a business analyst? तो डेटा एनालिस्ट जो है वो बेसिकली डेटा को एनालाइज करता है, और बिजनेस एनालिस्ट जो है वो बिजनेस में कैसे बेनिफिट करेगा उसमें ट्रांसफॉर्म करता है। तो इनकी जो है बेसिकली कोई ओवरलैप है, आई मीन स्किल सेट का, या नहीं? यस सर, ओवर एनालिसिस तो दोनों का ही है, लेकिन बिजनेस वुड बी मोर ऑन द बिजनेस साइड के हाउ इट वुड बेनिफिट द बिजनेस, एंड डेटा एनालिसिस वुड बी व्हाट द डेटा इज एक्चुअली शोइंग। बिजनेस एनालिस्ट बेसिकली डेटा से इन्फ्रेंस निकाल सकता है ना, कंक्लूजन्स दे सकता है, ट्रांसफॉर्म कर सकता है उसको। ठीक है, आई थिंक सर जो डेटा एनालिस्ट है वो ज्यादा टेक्निकल साइड पे फोकस्ड होता है, बिजनेस एनालिस्ट ज्यादा बिजनेस स्लैश टेक्निकल, लेकिन टेक्निकल भी थोड़ा कम होता है। और जो डेटा एनालिस्ट होता है बिजनेस नॉलेज वैसी नहीं होती, और जो बिजनेस एनालिस्ट होता है उसके पास उस लेवल की टेक्निकल नॉलेज नहीं होती जैसे डेटा एनालिस्ट के पास होती है। एग्जैक्टली, लेकिन बिजनेस एनालिस्ट के पास बिजनेस नॉलेज ज्यादा होती है। I think it's most one thing that sets them apart is कि जो business analyst है, he's or she is also a decision maker based on the analysis that is provided. तो I think decision जो data analytic है वो data को तो पूरा dissect करके सब कुछ कर लेगा analysis वगैरह, but at the end of the day they will not be making any kind of decisions. फोरकास्टिंग कर रहा होगा सर, डिसीजन मेकिंग तो नहीं, फोरकास्टिंग कर रहा होगा। अब फोरकास्टिंग का आप हाँ कर सकता है वो, लेकिन
आप यूं कह रहे हैं कि उसका डिसीजन मेकिंग के अंदर एक बहुत बड़ा पार्ट होता है. So I think influencing both are influencing the decision making. जी, because he has the domain knowledge in order to influence, na? He might have so I think both are team members and both are just complementing each other, working as a unit. Both are बिल्कुल, essential. एब्सोल्युटली. ये हो सकता है कि एक बिजनेस एनालिस्ट जो है उसके पास एक टूल सेट हो डेटा एनालिसिस का, ठीक है, कि उसके पास डेटा एनालिसिस की टेक्निक्स और मेथोडोलॉजीज हैं, लेकिन एक बिजनेस एनालिस्ट जो है ना, आई वुड से एक बहुत बड़ा रोल है, ठीक है, इन कंपैरिजन टू अ डेटा एनालिस्ट. इट्स अ मच बिगर रोल, ठीक है, जिसमें कमर्शियल साइड जो है, या जो आपकी जो कमर्शियल साइड है, उसका जो एस्पेक्ट है वो प्रेसिडेंस लेता है ओवर आपके टेक्निकल स्किल्स के ऊपर, ठीक है. अच्छा, इसके बाद tasks of data analytics ecosystem क्या क्या होते हैं? There is data engineering, there is data preparation, there is data analytics, ठीक है. और जो data engineering का पार्ट है, that जो कि एक डेटा आर्किटेक्चर के ऊपर डेटा इंजीनियरिंग हो रही होती है, या किसी भी किस्म के प्रोडक्ट आर्किटेक्चर के ऊपर डेटा इंजीनियरिंग हो रही होती है. तो डेटा इंजीनियर का जो काम है वो डेटा को क्लीन करना है, उसकी कन्फॉर्मिटी चेक करना है, इसको अगर आपने ट्रांसफॉर्म करना है, उसको ट्रांसफॉर्म करना उसका काम है, उसको शेप करना उसका काम है, उसको फिर इंजेस्ट करवाना, यानी कि इनटू अ पाइपलाइन, जो कि मैंने आपको पाइपलाइन दिखाई थी यहाँ पर, ये इसका दैट इज प्राइमरीली द रोल ऑफ अ डेटा इंजीनियर, ठीक है. ये डेटा इंजीनियरिंग की डोमेन के अंदर आता है. बट देन देयर इज डेटा प्रिपरेशन फॉर ताकि आप उसके ऊपर जो ना फर्दर एनालिटिकल प्रोसेसेस लगा सके. तो द प्रोसेस ऑफ रिफाइनमेंट, द ऑर्केस्ट्रेशन ऑफ द डेटा, उसको विजुअलाइज करना, उसकी अगर ब्लेंडिंग करनी है, उसकी रैंगलिंग करनी है, उसको प्रिपेयर करना है, ये सारा काम डेटा प्रिपरेशन के अंदर आ रहा होता है. एंड देन बिल्डिंग, स्कोरिंग, मॉडल बिल्डिंग, विजुअलाइजेशन, एनालाइजिंग करना डेटा की, ये डेटा एनालिटिक्स के अंदर आ रहा होता है. And then there are roles like managing of and automation of the pipeline. ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम इसके अंदर आता है. सिक्योरिटी आपके पाइपलाइंस की, डेटा की लाइफ साइकिल का मैनेजमेंट, डेटा गवर्नेंस, प्रोवेनेंस, डायनामिक डेटा पाइपलाइन को मैनेज करना, अगर डायनामिक है, एसक्यूएल, नो एसक्यूएल इन्वायरमेंट्स को मैनेज करना, उसको मॉनिटरिंग करना उसकी, या डेटा जो आ रहा है इन इन्वायरमेंट से, is it scheduled the correct way, is it coming at intervals जो के डिजायर्ड हैं, और इस पूरे प्रोसेस को ऑटोमेट करना, वो मैनेजिंग एंड ऑटोमेशन ऑफ द पाइपलाइन के अंदर के रोल के अंदर आता है. और अच्छा, पावर बीआई साइड के अंदर एक जो पावर बीआई एनालिस्ट होता है, उससे एक्सपेक्ट की जाती हैं ये चीजें कि वो एडमिनिस्ट्रेशन, सिक्योरिटी, लाइफ साइकिल मैनेजमेंट और ये सारे काम खुद कर रहा हो, because he is residing inside a particular tool, ठीक है ना, because he is a power BI specialist. तो उस टूल की जो ये इंट्रिकेसीज हैं, ये उससे एक्सपेक्ट की जाती हैं. बट दैट इज नॉट ऑलवेज द केस इफ यू मूव आउटसाइड अ पर्टिकुलर टूल. अगर लेट्स से कि आपकी एक डेटा इकोसिस्टम है जिसके अंदर मल्टीपल टूल्स और टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, यानी कि आप पाइथन भी यूज कर रहे हैं, पावर बीआई भी यूज कर रहे हैं, नाइन भी यूज कर रहे हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन, सिक्योरिटी, लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, ये सारे काम जो है ना, ये मल्टीपल किस्म के डिफरेंट लोगों के पास हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल, आई हैव बीन वर्किंग विद एन ऑर्गेनाइजेशन इन ऑस्ट्रेलिया, एको जिसका नाम है, जिसकी मैंने आपको एग्जांपल वगैरह भी दी थी. अब वो वहां पर जो ये रोल है वो प्राइमरीली डिवाइड हुआ है मल्टीपल लोगों के दरमियान, जहां जिसके अंदर जो है ना, जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है, डीबीए, पावर बीआई स्पेशलिस्ट जो है, वो बंदे वो मिल के इस सारी चीज को जो है ना इंश्योर करते हैं, इस पार्ट, ठीक है. बिकॉज वहां पर एक टूल नहीं चल रहा, वहां पे एसक्यूएल भी चल रही है, वहां पे नो एसक्यूएल भी चल रही है, वहां पे साप हाना भी चल रहा है, ठीक हो गया ना. तो वो एक बंदा जो है ये सारा काम नहीं कर सकता, और एक बंदे की एक्सपर्टीज भी नहीं होती. तो ये जो रोल्स हैं फिर ये डिवाइड कर दिए जाते हैं अमंग पीपल, ठीक हो गया. और फिर पर्टिकुलर एनवायरनमेंट और टूल के हिसाब से भी ये रोल्स डिवाइड हो सकते हैं. अगेन, इफ यू आर अ पावर बीआई बिल्डर, तो वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन और सिक्योरिटी एक डिफरेंट तरीके से हो रही है इन कंपैरिजन टू अ डीबीए, जिसकी एडमिनिस्ट्रेशन और सिक्योरिटी का जो स्कोप ऑफ वर्क है वो मच ग्रेटर होगा, इट वुड बी मच बिगर.
ठीक है। उसके बाद अच्छा कैसे एक छोटी सी ब्रेक ना ले लें 15 मिनट की। जस्ट टेक 15 मिनट ब्रेक because I just need to drink some water or we can come back and then start from over here inshallah. Let's take a 15-minute break. Okay. ठीक है जी? ओके ओके Sure, Thank sir. you very
जी, अस्सलाम वालेकुम. Is everyone back? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा. So let's move further ahead. जनरली वैसे ये इकोसिस्टम हमने पहले भी थोड़ा सा डिस्कस किया है, लेकिन जस्ट टू गिव यू अ मोर ग्रैनुलर व्यू ऑफ के जी इस जो एक्चुअली आर्किटेक्चर साइड है उसके अंदर काम हो कैसे रहा होता है. तो जो है बेसिकली देयर इज यू हैव दिस लेयर जहाँ पर एक्चुअली आपके प्रोडक्ट्स चल रहे होते हैं. ठीक है. देन दे आर बीइंग ईदर लॉग्ड या इनकी लाइव स्ट्रीमिंग हो रही होगी, डिपेंडिंग अपॉन कि किस नेचर का आपका प्रोडक्ट है, आपने उसके ऊपर किस किस्म के एनालिसिस वगैरह करना है. Then these actually get dumped into some sort of a data lake. अगर आपका NoSQL structure है, यानी कि it's not a structured DB, but if it's a structured DB then it actually goes into it can actually go into a data lake. Sorry, of course warehouse का structure या non structure के साथ actually में ताल्लुक नहीं है. What happens is कि और ये ETL भी यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, should not be over here. ठीक है ना. there is no ETL over here technically. ETL actually यहाँ पर हो रही होती है primarily. So either it actually goes into your data lake or it goes into a warehouse which can actually host structured यानी कि SQL या non structured या no SQL MongoDB टाइप की चीजें जो है ना, वो बेसिकली इनको आप warehouse के अंदर होस्ट कर सकते हैं. Now this can be on premises or this can be on in cloud as well. And हम लोग जनरली जो है ट्रेडिशनली हम बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो ऑन प्रेमिसेस के ऊपर जो है ना बहुत ज़्यादा फोकस करती हैं. लेकिन अब आई हैव एक्चुअली सीन लाइक इन रिसेंट टाइम्स एक बहुत ज़्यादा ट्रेंड शुरू हुआ है कि आपकी बहुत सारी जो स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज और नॉन स्ट्रक्चर्ड क्यूरी दोनों की जो इन्वायरमेंट्स हैं वो क्लाउड में जाना शुरू हुई. ठीक है. इट्स एक्सट्रीमली कन्वीनियंट एंड वेरी स्केलेबल बिकॉज जब आप प्रेमिसेस के ऊपर कोई भी हार्डवेयर लगाते हैं तो ऑफ कोर्स क्लाउड की सिक्योरिटी की ऑलवेज कंसर्न है. There are concerns associated with the cloud and the security surrounding it. लेकिन just to let you know, like organizations like CIA जो है वो भी अब क्लाउड के ऊपर चली गई है. वो अब AWS यूज करते हैं, Amazon Web Services अगर मैं गलत नहीं. तो दूसरी बात ये है कि जो आपका इट्स एक्सट्रीमली स्केलेबल. सो स्केलेबल से मेरी मुराद ये है कि अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ छोटी सी ना कि स्केलेबल से मेरी मुराद क्या है. हमने हम आई मीन लाइक फॉर द कंसल्टिंग फर्म जिसके लिए मैं काम करता हूँ, वी हैड अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम. ठीक है. हमारा प्रॉब्लम ये था कि हम टाइम शीट्स जो है ना वो मैनेज करते थे ऑन एक्सेल की फाइलें, और वो देवर मेसी बिकॉज हमारी लाइक वर्कफोर्स है 10-15 लोग हैं. वो हर 2 हफ्ते बाद कोई 2 हफ्ते बाद एक एक्सेल की शीट भेज रहा होता था, कोई 2 महीने के बाद भेज रहा होता था. तो it becomes very hard to actually manage it. तो what we decided was कि यार हम एक काम करते हैं, हम ऐसे करते हैं, हम एक ऐप बनाते हैं. ठीक है. जो कि हमें टाइम शीट की इस प्रोसेस को मैनेज करने में हेल्प करे. अच्छा, अब ऐप किसमें बनाएंगी? अब थॉट किया हम पावर एप्स में बना लेते हैं. पावर एप्स एक डिफरेंट पावर प्लेटफॉर्म का हिस्सा है. आप इसमें बहुत जल्दी एप्स बना सकते हैं मुख्तलिफ किस्म. तो व्हाट वी डिड वाज कि हम अभी एक्चुअली क्रिएटेड दिस टाइम शीट ऐप. ठीक है. और ये छोटी सी मिसाल है, लेकिन ये कि आई एम जस्ट टेलिंग यू द स्कोप ऑफ हाउ यू कैन एक्चुअली डू दिस. मेरा मतलब आप इसको कितना बड़ा कर सकते हैं. अभी एक टाइम शीट की छोटी सी ऐप है, ये 2 हफ्ते भी नहीं लगे इसे बनाने में. व्हाट इट डज इज कि अगर हमने टाइम शीट एंटर करनी हो तो आप यहाँ पे जाते हैं, एंटर द डेट. अगर आपकी एक्टिव डायरेक्टरी चल रही है क्योंकि दिस इज माइक्रोसॉफ्ट, तो आई हैव ऑल द पीपल फ्रॉम माय ऑर्गेनाइजेशन जो कि यहाँ पर मुझे यहाँ पर अवेलेबल होंगे इन द डायरेक्टरी. ठीक है. सो आई हैव माई सेल्फ. अगर कोई और कुलीग है, अगर मैंने उसके बिहाफ पे डालनी है, ठीक है ना, लेट्स से, तो मुझे ये सारे यहाँ पे नाम नजर आएंगे. देन आई कैन एक्चुअली सिलेक्ट द प्रोजेक्ट. आई कैन डिसाइड कि अच्छा स्टार्ट टाइम क्या था, एंड टाइम क्या था. ये तो टोटल आवर्स जो है ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाते हैं. कैटेगरी जी, नेचर ऑफ द वर्क की कैटेगरी थी क्या थी, डिस्क्रिप्शन आपने यहाँ पे डाली, एंड देन यू कैन सिंपली सेट सबमिट. ठीक है. अब व्हाट आई वांट टू शो यू इज कि दिस इज नॉट एग्जैक्टली a DB. This is
इस छोटी सी ऐप की एक पीछे से जो है ना एक डेटा स्ट्रक्चर है, ये डीबी का स्ट्रक्चर है जो कि चल रहा है, डीबी कह लें। इफ आई गो टू शेयर पॉइंट, तो शेयर पॉइंट के अंदर ना बेसिकली इस ऐप का बैकएंड चल रहा है, ये इट्स ऑन द क्लाउड। डायनामिक्स है, माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स है। नहीं, ये डायनामिक्स नहीं है, ये माइक्रोसॉफ्ट पावर प्लेटफॉर्म के ऊपर पावर एप्स एक इसका सेक्शन है, उसमें आप एप्लीकेशंस बना सकते हैं अपनी मर्जी की। डायनामिक्स 365 एक डिफरेंट चीज है, वो आई वुड कंसिडर इट प्रॉब्ली एन ईआरपी सॉर्ट ऑफ थिंग। ठीक है, ये पावर प्लेटफॉर्म का ऐसा, पावर प्लेटफॉर्म में पावर बीआई आता है, पावर एप्स आता है, पावर ऑटोमेट आता है, और एक दो सॉफ्टवेयर हो रहे हैं वेब बेस्ड। अच्छा, अब अगर हम शेयर पॉइंट में जाए ना, तो आप ये देखें टाइम शीट की ना पीछे की ये एक सेक्शन है शेयर पॉइंट में, इसके अंदर इफ आई गो ओवर हियर तो आई कैन एक्चुअली सी द डेटा स्ट्रक्चर जो कि पीछे बना हुआ है। अब ये सारी इंफॉर्मेशन जो मैं यहाँ डाल रहा हूँ ये यहाँ पर डंप हो रही है, लाइक एसक्यूएल के अंदर भी अगर आपकी स्ट्रक्चर क्यूरी है, सॉरी आपका जो स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस है या रिलेशनल डेटाबेस है, आप ये समझ लीजिए ये उसका एक टेबल है। ठीक है, दिस इज द टेबल, यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन डलती है वो इसके अंदर डंप होती जा रही है। इसके अंदर प्रोजेक्ट्स की एक अलग लिस्ट है, यू नो, एडमिन की लिस्ट अलग है, अप्रूवर की लिस्ट अलग है, करेंसी लिस्ट अलग है, साइट का कंटेंट अलग है, यू नो, ऑल दैट इज ओवर हियर। नाउ व्हाट आई कैन डू इज कि अगर मैंने इसके ऊपर किसी किस्म की रिपोर्टिंग करनी है तो मैं इस डेटा को यहीं से उठाऊंगा, आई एक्चुअली पिक दिस डेटा अप एंड आई टेक इट इनटू पावर बीआई। अगर हमने ये रिपोर्ट पब्लिश की हो तो पावर बीआई सर्विस में ले जाऊंगा, लेकिन मैं इसको पावर बीआई डेस्कटॉप पे जाऊंगा, वहां पे मैं रिपोर्ट बनाऊंगा। और अब फॉर एग्जांपल ये देखें, इसी टाइम शीट की ऐप के ऊपर हमने एक आगे डैशबोर्ड बनाया, ठीक है, जो कि हमें बेसिकली ओवरव्यू दे रहा है, यू नो, जो भी हम रिपोर्ट करवाना चाह रहे थे। अब ये सारा डेटा कहाँ से जनरेट हो रहा है? इस ऐप से। मेरा ये बताने का मकसद ये था कि इट्स एक्सट्रीमली स्केलेबल। अगर आप कोई मतलब क्लाउड बेस्ड कोई सोल्यूशन यूज करते हैं, बिकॉज मैंने जैसी स्टोरेज बनानी है मैं पैसे दूंगा तो मेरी स्टोरेज बढ़ जाएगी, रादर देन मी एक्चुअली वेटिंग फॉर कि अच्छा यार मैं पहले आरएफपी दूंगा और फिर उसके बाद जो है मेरा जो है ना आरएफपी अप्रूव होगी, और फिर जो है ना मेरा आई विल एक्चुअली यू नो कम द इक्विपमेंट इज गोइंग टू कम इन, फिर वो मतलब लगेगा और फिर उसकी टेस्टिंग होगी। आई जस्ट पे द मनी एंड आई कैन सिंपली एक्सपैंड वेरी क्विकली। सो इसका ये बहुत बड़ा एडवांटेज, ह्यूज एडवांटेज। ठीक है, सो दिस वाज जस्ट अ स्मॉल एग्जांपल, मैंने कहा ये मैं आपको बता दूं। अब सो यू नो फिर ऑन टॉप ऑफ दैट देन यू हैव दिस एनालिटिक्स की डीबी इफ यू हैव एनी। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि प्रोडक्शन की डीबी एक और चीज होती है, एनालिटिक्स की डीबी और चीज होती है। एंड देन ऑन टॉप ऑफ दैट एनालिटिक्स डीबी यू हैव योर विजुअलाइजेशन इनसाइड एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की जो भी आपके मॉडल्स हैं वो यहाँ पर चल रहे होते हैं। ठीक है, एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस? इस पूरे प्रोसेस से रिलेटेड किसी का कोई सवाल? ओके, सर स्किल ये सेट कॉन्ट्रीब्यूट। जी जी। एक क्वेश्चन, ये सारा प्रोसेस आपने ईटीएल का एक्सप्लेन किया बेसिकली? नहीं, इस ये पूरे प्रोसेस नहीं, ईटीएल यहाँ पर हो रहा होता अच्छा, so इसको जरा ईटीएल को जरा काइंडली ज्यादा एक्सप्लेन कर सकते हैं? है। हाँ जी, डेटा की एक्सप्लोरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और लोडिंग, ठीक है, इन अ मैनर कि वो कंज्यूमेबल बन जाए और उसमें से विजुअलाइजेशंस, इनसाइट्स और एआई और एमएल के मॉडल्स निकाले जा सकें, उसके लिए ईटीएल करना जरूरी होता है। राइट सर, थैंक यू सर। ठीक है, हाँ, तो उसमें होता ही है कि आप डेटा की क्लीनिंग, प्रीनिंग, प्रूनिंग, रैंगलिंग वगैरह करते हैं। अच्छा, अब ये जरूरी नहीं है कि ये यहीं पर हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये इसके बाद भी हो सकता है। आई कैन एक्चुअली डू दिस एट अ डीबी लेवल। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूँ। आई गिव यू अ क्विक एग्जाम्पल। मैं अली मोहम्मद से ही हुआ हूँ लॉगिन, तो ये बहुत अच्छी बात है। मैं जाता हूँ एडीजी फोरकास्टिंग। अब ये दिस इज अ रिपोर्ट जो कि हम एक अपने क्लाइंट के लिए बना रहे हैं या मेंटेन कर रहे हैं राइट नाउ।
लेट इट लोड। अभी थोड़ी सी बड़ी रिपोर्ट है, थोड़ा सा टाइम लेगी। इसमें आई जस्ट क्विकली गो, इंस्टेड ऑफ शोइंग यू द रिपोर्ट फ्रंट एंड, मैं रिपोर्ट के बैक एंड में चला जाता हूँ। बल्कि इनफैक्ट डेटा सोर्स में दिखाता हूँ। आप ये देखें, इसमें डेटा सोर्स जो है वो अच्छा, ये अगर आप ये देखें ना, तो दिस इज एन एक्चुअल डेटाबेस जिसके साथ हमने डायरेक्ट कनेक्शन किया हुआ है डीबी के साथ। ठीक है, इसको इसके साथ कनेक्ट करने के लिए मुझे पहले वीपीएन चलाना पड़ता है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ठीक है, सेकंड ये भी मैं ऑन करता हूँ। ऑलरेडी कनेक्टेड है, हम ग्लोबल प्रोटेक्ट यूज करते हैं। एंड इफ आई देन गो टू ट्रांसफॉर्म डेटा, या मेरी पावर क्यूरी के अंदर अगर मैं चला जाऊं, तो मैं डायरेक्टली जो है पिंग कर सकता हूँ उस डीबी को। आई कैन पिंग द डीबी। फॉर एग्जांपल मैं आई वांट, अब ये डायरेक्टली पिंग हो रही है डीबी से। ठीक है, अच्छा अब अगर लेट्स से कि मैंने नए को टेबल लाने हैं, आई वांट टू गो टू एसक्यूएल सर्वर, सो ये मैं यहाँ पे क्रेडेंशियल्स डालूंगा और आई एक्चुअली डायरेक्टली स्टार्ट पेइंग द डीबी। मैं एक्चुअली आपको दिखाना ये चाह रहा हूँ, आई वांट एक्चुअली शो यू द क्यूरी, बिकॉज उससे आपको पता लगेगा कि ईटीएल का काम जो है ना वो कहाँ पर हो रहा है और क्यों हो रहा है, पावर बीआई के अंदर कहाँ पर। सर हम पावर बी लास्ट 2 वीक्स में करेंगे। जी जी, लास्ट 2 वीक्स। इसके लिए मुझे वो डालना पड़ेगा, सारे क्रेडेंशियल्स डालने पड़ेंगे। Just give me 1 second, guys. I just really want to show you this because ये आपकी अंडरस्टैंडिंग को जो है ना बहुत ज्यादा कंक्रीट करेगा। Just want to show this. Just thinking कि मैं वो कहाँ से खोल सकता हूँ। नहीं, यहाँ पर भी नहीं आ रहा। अच्छा खैर, what I wanted to actually show you is कि जब आप basically if you are in the power query, ठीक है, तो यहाँ पर जब आप डेटा सोर्स के साथ कनेक्ट करते हैं
तो व्हाट इट स्टार्ट शोइंग यू इज कि वो आपको डीबी दिखाना शुरू कर देता है। डीबी के अंदर जो टेबल पड़े हुए हैं वो दिखाता है, फिर आप वहां से टेबल्स को एस क्यूरीज इंपोर्ट करते हैं। और यहाँ पर पावर बीआई की सबसे अच्छी बात ये है, और मुझे टैबलू के मुकाबले में ये ज्यादा अच्छा इस वजह से लगता है बिकॉज जो ईटीएल का टूल है, ये एक्सप्लोरेशन, डेटा को एक्सप्लोर करना, इसको ट्रांसफॉर्म करना, ये मैंने ट्रांसफॉर्मेशन की भी है यहाँ पे, ये भी मैं जब पावर बीआई कराऊंगा तो उसमें बताऊंगा आपको। और डेटा को लोड करना फॉर फर्दर एनालिसिस, ये लोड करना फ्रंट एंड पे ताकि मैं इसके ऊपर फर्दर एनालिसिस कर सकूँ, ये सारा काम पावर बीआई के अंदर होता है। और डेस्कटॉप वर्जन में ये फ्री टूल है, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे ये जो आपको ये टेबल्स नजर आ रहे हैं, ये एक्चुअल में डीबी से टेबल हमने डाउनलोड किए हुए हैं यहाँ पावर क्यूरी के अंदर, ठीक है ना। और उसका फायदा ये है कि आप इस टूल के अंदर ही बैठ के ईटीएल परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि इट्स नॉट नेसेसरी कि यहाँ पे हो रहा हो, ये हो सकता है कि एनालिटिक्स की जो डीबी है आपकी उसके ऊपर जो है ना ईटीएल हो रहा हो और आप विजुअलाइजेशन और इनसाइट्स निकाल रहे हैं, ठीक है। तो इट डिपेंड्स, ये स्ट्रक्चर ऊपर नीचे हो सकता है। एनी क्वेश्चंस दिस फार? अच्छा, इसके बाद जो स्किल सेट कंट्रीब्यूशन चाहिए आपको हर रोल के अंदर ना, वो अगर आप ये चार्ट थोड़ा सा गौर से देख लें, मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा इसको, लेकिन ये बहुत क्लियर कर देगा आपको चीजें कि किस किस रोल के अंदर आपको किस किस लेवल का स्किल सेट चाहिए। आपके एक्स एक्सेस के ऊपर जो है वो, आपके वाई एक्सेस के ऊपर जो है ना आपके रोल्स एंड स्किल्स हैं, एक्स एक्सेस के ऊपर आपकी जो है ना वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्किल सेट है, ठीक है ना। हमारे पास जो है ना एडवांस एनालिटिक्स, बिजनेस एक्यूमेन, डेटा विजुअलाइजेशन, कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन, सॉफ्टवेयर के जो स्किल्स हैं वो कितने आपको चाहिए होते हैं। डेटा एनालिस्ट के लिए यू रिक्वायर दीज इन दीज प्रोपोर्शंस, these are not very exact but the point is कि give you a fair idea, और ये in comparison to each other है। तो बिजनेस एनालिस्ट के लिए इट्स द अदर वे अराउंड, डेटा साइंटिस्ट के लिए डिफरेंट स्किल सेट है, डेटा आर्किटेक्ट के लिए डिफरेंट है, डेटा इंजीनियर के लिए अलग है, डेटा विजुअलाइजेशन इंजीनियर के लिए अलग है, डेटा विजुअलाइजेशन का जो आप जैसे बीआई डेवलपर कहा जाता है उसके लिए एक अलग है ना मेरा मतलब स्किल सेट होता है। अब वैसे बीआई डेवलपर जो है और डेटा एनालिस्ट सॉर्ट ऑफ मर्ज हो गए हैं रोल्स, ये अब सेपरेटली नहीं नजर आएगा आपको, जनरली दे हैव एक्चुअली सॉर्ट ऑफ मर्ज टुगेदर। इसके बाद इसी तरह ना स्किल सेट कंट्रीब्यूशन इन ईच रोल, अगेन मतलब ये भी दिस इज एन इम्पोर्टेंट ग्राफ और विजुअल जिसे आप यूटिलाइज कर सकते हैं। आई वुड वांट यू टू गो थ्रू दिस व्हेनेवर यू हैव टाइम, इससे आपको भी अंदाजा हो जाएगा थोड़ा बहुत कि हर रोल के अंदर जो है हाउ व्हाट आर द डिफरेंट स्किल सेट्स जो कि रिक्वायर्ड है। ये थोड़ा सा इससे ज़रा डिफरेंट है, ठीक है ना, ये ज़रा ज़्यादा डिटेल्ड है, लेकिन इट एक्चुअली गिव्स यू अ फेयर आइडिया ऑफ कि अगर आप इफ यू वांट टू अडॉप्ट अ पर्टिकुलर रोल तो क्या स्किल सेट आपका होना चाहिए, और फिर देन ऑन टॉप ऑफ दैट देन यू कैन एक्चुअली इन्वेस्ट टाइम इनटू डेवलपिंग योर स्किल सेट इन दैट डोमेन, ठीक है। कि अच्छा यार अगर मैंने डेटा साइंटिस्ट बनना है और ऑर्गेनाइजेशन और स्ट्रक्चरिंग करनी है मैंने डेटा की, तो क्या टूल्स क्या टेक्निक्स इस्तेमाल होंगी, एक्सप्लोरेशन और प्रोफाइलिंग करनी है डेटा की तो मैं क्या करूंगा, ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, मॉडल बिल्डिंग करना है, ऑपरेशनलाइज करना है डेटा को, मैंने मॉडल बना दिया अब उसको डिप्लॉय करना है कहीं पे तो मैं कैसे करूंगा, कंज्यूम करना है डेटा को मैं कैसे करूंगा। तो फिर स्पेसिफिक स्किल्स हैं और टूल्स हैं जो कि इस हर स्किल सेट के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है ना। डेटा एनालिस्ट के अलग हैं, तो जिनमें से कुछ जो है वो हम इस कोर्स के अंदर कर रहे हैं, ठीक हो गया। उसके अलावा जो है स्किल सेट्स कंट्रीब्यूशन इन ईच रोल के बारे में अगर अगर इसको डिवाइड कर दें बिजनेस स्ट्रैटेजी और टेक्निकल एक्सपर्टीज के दरमियान में, तो आई वुड एक्चुअली जस्ट टॉक अबाउट दीज 3 sections. Somebody who is high on technical expertise and high on technology strategy, not very high on technology strategy, वो sort of इस quadrant के अंदर गिरेगा, ठीक है ना, solution design और data engineering. Whereas somebody who is not very high on technical expertise but high on technology strategy and business expertise would actually become data analyst and data scientist. So again, you don't need like a world of technical expertise, ठीक है ना, in order to be a data analyst or data scientist. Yes, you do need technical expertise, लेकिन इनको बहुत ज्यादा नहीं चाहिए होती, बहुत ही कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। There are specific tools, there are specific libraries, and then most importantly there is a specific mindset जो कि आपने अडॉप्ट करना होता है एज एन एनालिस्ट,
ठीक है। उसके बाद if we talk about कि जनरली हम कोशिश ये करते हैं कि आई मीन व्हेन यू आर लर्निंग मोहसिन, सॉरी, आई जस्ट हैड अ क्वेश्चन। अगर आप वो जो अभी वो दिखा रहे थे ग्राफ जो टेक्निकल और बिजनेस एक्सपर्टीज वाली, या दिस वन, इसमें एक क्वेश्चन ये है कि वाइल डेफिनेटली जो आपकी एक्सपर्टीज वगैरह होती है, बट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ making these people work together is also people skills as well, right? So how would you like to address that? Because you might be an expert in any particular domain, whether it's technical or business expertise वगैरह, but if you're not talking or if you do not have those people skills, then I think at the end of the day you will not succeed, and so will the organization. उसको हम किस तरह से address करते हैं, or is it then where the management comes in then? सर उसमें इस तरह है कि एक तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ वेरी पर्टिनेंट पॉइंट जो कि आपने रेज किया, बिकॉज पर्सनली और एट एन ऑर्गेनाइजेशन लेवल, इफ यू आर नॉट कम्युनिकेटिंग correctly, of course you will neither be of no value to the organization, neither will you grow from one role to another. ठीक है, ये हम एक सेट असाइड कर लेते हैं, दिस इज अ फैक्ट। दूसरी बात ये है कि इट्स नॉट only about communicating effectively, it's actually about communicating in the language that is understood by all the stakeholders. ठीक है ना। अब इससे मेरी मुराद क्या है? फॉर एग्जांपल, अगर मैं आई एम अ वेरी गुड मशीन लर्निंग इंजीनियर, या मैं एक बहुत अच्छा डेटा साइंटिस्ट हूँ और मैंने एक बहुत ही कमाल का रिकमेंडेशन इंजन बना लिया है और उसके अंदर मैंने पता नहीं कोई बहुत ही अच्छे एल्गोरिथम्स यूज कर दिए हैं, if I am not able to communicate, first of all, if I am not able to communicate, what have I done? Secondly, if I am not able to justify कि जो भी चीज हमने बनाई है उसका जो इम्पैक्ट है on the organization's bottom line, if I'm not able to justify that, nobody would adopt it. ठीक है ना, वो मेरा मतलब सद खाने का हिस्सा बन जाएगी। तो इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप बेसिकली इफ यू आर एक्चुअली इन अ पोजीशन जहां पर आपने कम्युनिकेट करना है, तो डोंट गेट बॉग डाउन बाय द टेक्नोलॉजी एंड बाय द फैंसी एल्गोरिथम्स। द बिजनेस डज नॉट रियली केयर अबाउट दैट, द बिजनेस एक्चुअली रियली केयर्स अबाउट कि यार इससे मुझे क्या बेनिफिट होगा। एंड व्हाट आई हैव सीन इज कि इफ यू आर एक्चुअली एबल टू डू दैट इफेक्टिवली, only then you sort of can grow from, like, let's say एक data engineer से आप move कर सकते हैं to some sort of a senior position, because the missing link between that senior position and a data engineer or an analyst is actually communication. Or there are two ways of actually ensuring कि जना ये जो रोल है ये सही तरह अदा किया जाए। एक तो ये है कि यू एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल हायर पीपल जिनके पास पर्सपेक्टिव हो टेक्निकल साइड का भी, और दे आर गुड कम्युनिकेटर्स एज वेल, और उनको बिजनेस एक्यूमेन भी हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में आपको, मैंने ये देखा है कि आपको टेक्निकली बहुत साउंड लोग मिलेंगे, लेकिन उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स और एक्यूमेन जो है वो बहुत अच्छा नहीं होता, or that is where the organization can probably step in and then educate them कि अच्छा यार how to communicate effectively and what is the business perspective that they are missing. Because then if the company actually invests into doing this, only then they would see कि अच्छा यार इन 50 लोगों में से 2 या 3 ऐसे लोग हैं जो कि elevate हो सकते हैं to a position which can serve as a bridge between the organization, the technical side and the commercial side. तो ये मेरा take है इसके ऊपर। I mean that's how I feel. Thank you so much. You're welcome. अच्छा, इसमें इसके अलावा जो है what I was about to say over here is to try to get some basic data literacy level before choosing a career. अच्छा, हम we as
लाइक लर्नर्स हमारे लिए ना बहुत फैसिनेटिंग होता है कि हम जल्दी से टेक्नोलॉजी के अंदर घुस जाते हैं कि अच्छा यार मैं ये भी सीख लूँ, वो भी सीख लूँ, मुझे पाइथन भी आनी चाहिए, मुझे एसक्यूएल का कोड भी लिखना आना चाहिए, एक्सेल भी मुझे बहुत अच्छी आनी चाहिए, मैं मैक्रोस भी लिख लूँ, पावर बीआई में मुझे डैक्स भी आनी चाहिए। बट बिफोर यू डू दैट, डेटा लिटरेसी के कुछ फाउंडेशन है, ठीक है ना, एंड यू नीड टू इन्वेस्ट टाइम इनटू एक्चुअली absorbing those foundations first. ठीक है, you need to understand numbers, ठीक है ना, आपका बिजनेस अगेन एक्यूमेन अच्छा होना चाहिए, स्टैटिस्टिक्स थोड़ी बहुत you need to learn that, ठीक है, ताकि आप इन्फ्लुएंसिंग कर सकें। सो इट्स नॉट ऑल हार्डकोर टेक्नोलॉजी, ठीक है ना, इट्स नॉट जस्ट being good at technology, being good at Python, being good at SQL is not going to make you a great data analyst, ठीक है ना, but actually packaging this together, with data literacy along with the technology skill set and business acumen is actually what's going to make you a very good combination for the organization, or very desirable for the organization, because the business is actually going to be looking at you as a person who has the ability to translate business requirements into technical jargon, take technical jargon and translate that back to the business as something that the business can understand. ये बहुत ज़्यादा important है. This is extremely important. I mean, all the senior people that I work with, they are good at technology, but they are even better at communicating. They are even better at getting a good grip on the business perspective and the problem. काम तो आप किसी से भी करवा सकते हैं, ठीक है ना, you can always direct, but if you do not know to communicate effectively and resultantly आप गलत requirements ले लें तो आप काम खुद भी गलत करेंगे और करवाएंगे भी गलत, ठीक है। तो आई मीन मेरे जनरली जो बॉस हैं वो यही कहता है कि यार यू इन ऑर्डर टू एक्चुअली एट द लेवल वेयर वी ऑपरेट, मतलब यानी कि मैं अगर अपनी बात करूं या वो एमडी ऑर्गेनाइजेशन का, तो वो जो अपनी बात करता है तो व्हेन ही सेज कि यार यू डोंट नीड टू नो 100% ऑफ एवरीथिंग, probably you just need to have a grip on 40-50% of how something is going to happen, and then the rest you can always make people do it, ठीक है ना। I mean, but that is for somebody who has like 13-14 years already in the industry. As an analyst जो कि बिल्कुल bottom से शुरू कर रहा हो, technical skills are important, but data literacy skills are actually equally important if you want to graduate up the ladder, ठीक है। उसके बाद we have इसमें अच्छा, when I share this when I share this slide set with you, it is kindly requested कि आप डाइस एनालिटिक्स की जो YouTube का जो चैनल है उस पे हमारी ना फ्री डेटा लिटरेसी की ना पूरा एक प्लेलिस्ट है, गो थ्रू इट व्हेन यू हैव द टाइम। इसमें कोई 13-14-15 वीडियोस हैं, ये सारे सेमिनार्स हैं जो हमने कंडक्ट करवाए थे, इनमें मैंने भी कंडक्ट करवाया था एंड देन देयर वर अदर पीपल एज वेल जिन्होंने डिफरेंट टेक्नोलॉजीज और उनके एस्पेक्ट्स को कवर किया था, और इससे आपकी बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है ना वो बेहतर होगी। तो आई वुड सीरियसली रिकमेंड कि इन्वेस्ट सम टाइम, और ये आपको दिस इज फ्री, देयर इज नथिंग, इट्स नॉट गोना कॉस्ट यू अ डाइम, ठीक है। सो जस्ट गो थ्रू ऑल ऑफ दीज, ठीक है। उसमें आपको यूज केसेस मिलेंगे व्हेन यू एक्चुअली स्टार्ट गोइंग थ्रू दीज डिफरेंट सेमिनार। एक घंटे के सेमिनार है, तो 13 दिन अगर आप एक घंटा लगाएं तो यू वुड बी एबल टू go through all of them, and this is going to give you a very good deep perspective कि डेटा लिटरेसी होती क्या चीज है, इसको कैसे बिल्डअप किया जाता है, उसके यूज केसेस क्या आते हैं, कहाँ पे वो जरूरी होती है। सो प्लीज डू दैट, अगर आप लोगों को मौका मिले, आई वुड रियली रिकमेंड दैट। अच्छा, उसके बाद द लास्ट थिंग दैट आई वांट टू एक्चुअली डिस्कस फ्रॉम दिस स्लाइड सेट इज कि आपके डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग का जो एक के फ्रेमवर्क्स होते हैं डिफरेंट, ठीक है। ये जो फ्रेमवर्क है ये हार्वर्ड का जो है ना, हार्वर्ड अपने कोर्सेज में ये पढ़ाता है, और
किसी का कोई सवाल है? Anyone who has any questions? अच्छा, और ये दिस इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट फ्रेमवर्क्स बट इट्स वेरी इफेक्टिव। ठीक है, कि आपने डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग को इंग्रेन कैसे करना है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, और उसको इंग्रेन करने के बाद क्या प्रोसेसेस, जब आप क्या आपने स्टेप्स अडॉप्ट करने हैं इन ऑर्डर टू एक्चुअली से कि हाँ यार मैंने डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग। ठीक है, सो अगेन देयर आर डिफरेंट फ्रेमवर्क्स दैट कैन बी बेनिफिशियल व्हेन यूजिंग डेटा. One is the data-driven decision-making framework, which is explained in the Harvard online course Data Sciences for Business. This framework presents 6 steps for using data to drive business decision-making. Number 1, understand the business problem. So, quoting the question correctly, and again, यहाँ पर फिर communication is very important, because and when I say communication, it doesn't really मीन कि मैं यहां से इंफॉर्मेशन ले रहा हूं और आगे रिले कर रहा हूं. दैट इज यस वन फेसेट ऑफ द कम्युनिकेशन. मैं जनरली इसको डाकखाना कहता हूं कि यार यहां से इंफॉर्मेशन ली और आगे कम्युनिकेट कर दी. यस, दिस इज वन पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन, बट एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम डीपली रिक्वायर्स बीइंग गुड एट कम्युनिकेशन एज वेल, बिकॉज व्हेन यू वांट टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम यू नीड टू आस्क क्वेश्चंस, and in order to actually ask questions you need to be good at communication, because that is a back and forth process. You need to understand, you need to answer back, you need to understand more, you need to question back. So ये जो communication का process है, it's a back and forth thing. ठीक है, so understand the business problem कि यार आप क्या solve करना चाह रहे हैं. What are you trying to solve? What are you trying to accomplish? It all starts from that. Then you collect the data अगर available है, you wrangle the data, आप उसको साफ करते हैं, वैलिडेट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं. उसके ऊपर किसी किस्म की आपने अगर रिपोर्टिंग करनी है, विजुअलाइजेशंस बनानी है, यू डू दैट. यू प्रेजेंट द डेटा इन अ वे दैट शोस ट्रेंड्स एंड रिलेशनशिप्स ऑफ इंटरेस्ट. देन यू जनरेट सम सॉर्ट ऑफ हाइपोथेसिस. ठीक है, फॉर्मुलेट प्रेडिक्शंस बेस्ड ऑन इमर्जिंग ट्रेंड्स. अच्छा, मैं हाइपोथेसिस बाद में क्यों ला रहा हूं यार? तो आपने डेटा को देखा एंड दैट अरोज अ लॉट ऑफ अदर क्वेश्चंस. अच्छा यार, ये भी तो हो सकता है, ये भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकती है चीज, ये भी हम करके देख सकते हैं. तो उसके लिए आप हाइपोथेसिस सेटअप करेंगे, राइट? देन यू कंडक्ट द एनालिसिस बेस्ड ऑन दोज हाइपोथेसिस या क्वेश्चंस जो कि आपके हाइपोथेसिस से जनरेट किए हैं, एंड देन यू सिंपली कम्युनिकेट द रिजल्ट्स. इट्स अ वेरी सिंपल फ्रेमवर्क. 6 जो है ना इसके स्टेप्स हैं, और ये आपको आउट ऑफ ऑर्डर लग रहा होगा क्योंकि इसमें जनरेट हाइपोथेसिस चौथे नंबर पे आ रहा है. हालांकि हमने स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा था कि आप हाइपोथेसिस से शुरू करते हैं, लेकिन दिस इज जस्ट द वे द बिजनेस द डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क इज सेटअप. वो सेटअप इस तरह हुआ है. यू अंडरस्टैंड अ प्रॉब्लम, यू रैंगल द डेटा, यू क्रिएट अ विजुअलाइजेशन, और यू नो कम्युनिकेट द डेटा जो भी आपने ढूंढा उसके अंदर, एंड देन यू जनरेट द हाइपोथेसिस, देन यू कंडक्ट द एनालिसिस, एंड देन यू कम्युनिकेट द रिजल्ट्स. ठीक है. अच्छा, इसमें एक मिसाल मैं जो दे सकता हूँ वो ये है कि let me give you an example. Just a second. It's not going to accept. जैसे ये हमारा एक और प्रोडक्ट है जिस इज कॉल्ड आर मार्कर, और इसके अंदर जो व्हाट वी ट्राइड टू अचीव वाज, ये चल रहा है प्रोडक्ट अभी, इसके ऊपर ही एक्टिविटीज हो रही हैं काफी सारी. व्हाट वी ट्राई टू डू इज कि हम जो है बेसिकली ऑनलाइन ऑन स्क्रीन मार्किंग जो है ना पेपर्स की, वो इसके ऊपर कंडक्ट करते हैं. तो क्योंकि हमारी एक एड टेक कंपनी है तो हम प्रोडक्ट सारे एजुकेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बनाते हैं. अच्छा, अब व्हाट वी रियलाइज वाज कि जब भी हमारे मार्कर्स जो है ना
आते हैं हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर और वो इन पेपर्स को चेक करने जाते हैं इनटू द प्रोडक्ट, ठीक है। सो दे नेवर व्हाट वी वर सीइंग वाज के वो इंस्ट्रक्शंस नहीं पढ़ते। यहाँ पे राइट हैंड साइड ये जो आपको ये हिलती हुई नजर आ रही है, क्वेश्चंस एंड पॉसिबल सॉल्यूशंस एंड मार्किंग गाइड, ये पढ़ना लाजमी है। जब भी आप कोई सवाल जो है वो मार्क करने लगे उससे पहली दफा मार्क करने लगे तो इट इज नेसेसरी कि ये आप यहाँ पर ये आप पढ़ें। अब ये बटन यहाँ पे स्टैटिक आ रहे होते थे तो हमने देखा कि यार ये लोग इसको पढ़ नहीं रहे, जिसकी वजह से उनकी मार्किंग की एफिशिएंसी डिक्रीज हो रही है। सो व्हाट वी डिड वाज कि आई डिसाइडेड कि अच्छा यार हम एक काम करते हैं, हम एक इरिटेंट क्रिएट करते हैं स्क्रीन के ऊपर। वो इरिटेंट क्या होगा, इसको अभी हम इनहेंस करने लगे हैं। ये खैर अभी ये बड़े बड़े आ रहे हैं। व्हाट वी आर गोइंग टू डू सून इज कि हम इसको कन्वर्ट कर देंगे आइकॉन्स के अंदर, जो कि ये शेक करेंगे और साथ में आपको आवाज का पिंग देते हैं। सो ये एक इरिटेंट है स्क्रीन के ऊपर जो कि कंसिस्टेंटली मूव कर रहा है। अब यू नीड टू क्लिक इट इन ऑर्डर टू मेक इट स्टॉप। अभी तो यहाँ पे खैर कुछ नजर नहीं आ रहा, बट इसको अगर मैंने रोकना है ना तो आई नीड टू क्लिक इट, ठीक है। एंड दैट एक्चुअली शोड अस कि यार ये जो इरिटेंट है जो साउंड के साथ है, ये बेसिकली जब लोग आते हैं ना तो ये टिंग टिंग जो हो रही होती है तो लोग इसको बेसिकली फिर क्लिक करते हैं एंड रिजल्टेंटली दे आर एक्चुअली एबल टू रीड द मार्किंग गाइड एंड द क्वेश्चन एंड पॉसिबल सॉल्यूशन। तो हमारा प्रॉब्लम क्या था, क्या प्रॉब्लम था, कोई मुझे बता सकता है? व्हाट वाज द प्रॉब्लम दैट यू वर ट्राइंग टू सॉल्व? Evaluators were not reading the marking scheme. Exactly. And then we looked at the data. Yeah, they were actually not, because we looked at the data. हमें ये कहाँ से शुरू हुआ? शुरू यहाँ से हुआ कि हमें जो मार्किंग एफिशिएंसी है उसमें प्रॉब्लम थी डेटा की, ठीक है। हमें मार्किंग एफिशिएंसी रिड्यूस होती हुई नजर आ रही थी, हमें गलतियां ज्यादा नजर आ रही थी। और वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? हमारे पास एक AMD या एवरेज मार्किंग डिफरेंस का एक KPI है जिसको मॉनिटर कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब AMD क्योंकि ज्यादा था, हमने कहा कि अच्छा यार इसकी एक पॉसिबिलिटी हमें ये नजर आ रही है कि लोग जो हैं ये पढ़ नहीं रहे, तो उनको समझ ही नहीं आ रही कि हमने मार्किंग करनी कैसे। अच्छा, नाउ दैट वाज अ प्रॉब्लम। अच्छा, अब ऑन द बेसिस ऑफ द डेटा वी एक्चुअली फाउंड आउट कि हाँ वाकई वो क्लिक नहीं कर रहे उसके ऊपर, ठीक है, दे आर नॉट रीडिंग इट। देन व्हाट वी डिड वाज कि ओके फाइन, तो आवर हाइपोथेसिस वाज कि अगर हम कोई इरिटेंट क्रिएट करें ऑन द स्क्रीन तो दैट इज गोइंग टू फोर्स पीपल टू रीड दिस, ठीक है। तो हम कहाँ पे पहुंच गए इस प्रोसेस के अंदर? हम यहाँ पे पहुंच गए ना, हमने एक हाइपोथेसिस जनरेट किया एंड देन वी वंस द हाइपोथेसिस वाज पुट इनटू प्लेस, वी क्रिएटेड द चेंजेस, वी मॉनिटर्ड देम एंड वी फाउंड आउट कि यस एग्जैक्टली ये वो जो रीड नहीं कर रहे थे तो ये इरिटेंट जो है इट एक्चुअली वर्क्स, because now whoever is actually logging in for the first time and is actually going to start checking a question for the first time, one question for the first time, तो वो जो है इरिटेट होता है इससे, तो यहाँ पे फिर वो क्लिक करता है and then he is forced to read this, ठीक है। तो ये एक सॉर्ट ऑफ हमने जो है ना प्रोसेस जो है ना इसको फॉलो किया था। दिस इज एग्जांपल जस्ट केम टू माय माइंड। सो एनी क्वेश्चंस दिस फार? जी गाइस, कोई सवाल? कोई तो सवाल होगा यार, ठीक है, तो सवाल ना हो। ओके, नो प्रॉब्लम। अगर क्वेश्चन नहीं है तो shut this down. Okay, so ये यहीं तक था। Now I'm actually going to move to another slide set क्योंकि इससे थोड़ा सा डिफरेंट है और वो थोड़ा सा आपके पर्सपेक्टिव को मजीद जो है ना वो इनहांस करेगा। I mean, this is like a different presentation जो कि मैंने कहीं और दी थी, लेकिन ये I think कि जो है ना it is important कि इसके अंदर से कुछ एलिमेंट्स जो है ना मैं आपको एटलीस्ट जो है बताऊं। I'll share this with you as well. What I wanted to talk about really was कि एक ऑर्गेनाइजेशन का एनालिटिकल इकोसिस्टम जो है वो एक मतलब एक कंप्लीट इकोसिस्टम कैसा दिखता है
ठीक है, और उसमें क्या क्या टेक्नोलॉजीज जनरली यूज हो सकती हैं। ठीक है, इस स्लाइड का मकसद ये है। ठीक है, और ये मैं डेटा के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगेन ये चीजें हमने पहले भी पढ़ी हैं, लेकिन इस तरह शायद नहीं पढ़ी। ठीक है ना, एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड जो है ना, यहाँ पर यू हैव द फाउंडेशन, जो कि आपकी रॉ डेटा की लेयर है, जो डेटा वेयर हाउस। ओके, अब यहां पर यू ट्रेडिशनली हैड ऑन प्रेम डेटाबेसेस या मैनेज्ड सर्विसेज जो थी। नाउ अगेन एज आई सेड कि ये बहुत तेजी से तब्दील हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशंस आर क्विकली मूविंग टू द क्लाउड। ठीक है, बड़ी तेजी से जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्लाउड बेस्ड सॉल्यूशंस की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें हमारे पास जो मेजर प्लेयर्स हैं दे आर गूगल बिग क्यूरी, AWS, एजर और टेराडाटा। ठीक है, अच्छा, अब इस फाउंडेशन के ऊपर आपने किसी किस्म की जो है ना, अब अगेन ये फाउंडेशन जो है रॉ भी हो सकती है, ये फाउंडेशन जो है आपकी एनालिटिकल फाउंडेशन भी हो सकती है। तो हो सकता है कि इसके और इस स्टेप के दरमियान में यहां पर, जिस तरह कि मैंने आपको पहले कहा था कि एक और लेयर पड़ी हुई हो जो कि आपकी एनालिटिकल डीबी की लेयर, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो हम अज्यूम करते हैं कि ये एनालिटिकल डीबी की एक लेयर पड़ी हुई है जो कि इसी किसी टेक्नोलॉजी को या इसी तरह की कोई टेक्नोलॉजी को यूज कर रही होगी, लेकिन वो एक ज्यादा रिफाइंड डेटाबेस। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद देयर कम्स द रिपोर्टिंग लेयर, द क्यूरिंग एंड द ETL के जो टूल्स हैं उनकी जो लेयर आती है। अब व्हाई डू आई लव पावर BI सो मच? इट्स बिकॉज ऑफ इट्स रोबस्टनेस, बिकॉज ETL के प्रोसेस में आप यहां पर भी पावर BI को देख रहे हैं और यहां पर भी देख रहे हैं, इन दोनों स्टेप्स के दरमियान में, बिकॉज इट्स सच अ पावरफुल टूल। ठीक है, सो पावर BI जो है वो आपकी रिपोर्टिंग की और ETL की जो रिक्वायरमेंट्स है उनको बहुत आराम से पूरा कर सकता है। But on top of that, you also have, SQL server या SSMS. You have MySQL as well. अब ये सारे वो क्लाइंट्स हैं जो कि आपको अलाउ करते हैं कि आप जो है इनको यूज करके इस एनवायरनमेंट के साथ कनेक्ट कर सके किसी ना किसी तरह। अच्छा, अब मजे की बात यह है कि ये MySQL और SSMS जो है ये जनरली प्रेमिसेस बेस्ड हार्ड जो डीबीज होती हैं उनके साथ कनेक्ट करने में आपको मदद देता है। फॉर एग्जांपल, जो मैं यहाँ पर अगर आपको मिसाल दूं SQL की, वर्कबेंच की, तो ये देखें, ये जो है बेसिकली ये एक्चुअल डीबीज हैं। माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर पीछे चल रहा है कहीं पे, ठीक है, जिनके साथ ये जाके कनेक्ट हो रही है। अब ये आगे सिर्फ क्लाइंट्स हैं जिनके अंदर फिर मैं एसक्यूएल लिख सकता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर जो चीज मैं ऐड करना भूल गया और मैं शायद अगली दफा कर लूंगा वो ये है कि ऑन क्लाउड मैनेज करने के लिए ना क्यूरिंग को फिर उसके अपने टूल्स हैं जो कि ऑनलाइन ही, जो ऑन क्लाउड ही। तो आप लेट्स से कि अगर आप गूगल बिग क्यूरी को यूज कर रहे हैं तो गूगल बिग क्यूरी जो है उसकी एक्चुअली आपको सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट भी अवेलेबल है। अगर कोई इंटरेस्टेड हो गूगल बिग क्यूरी को सीखने में, तो यू कैन एक्चुअली गो ओवर हियर एंड इट वर्क्स वेरी वेरी मच लाइक एसक्यूएल। ठीक है ना, ये देखें फॉर एग्जांपल गूगल बिग क्यूरी में लिखूं अगर यहाँ पे, I remember having an account. I should probably search it as something different. Sorry, big query sandbox.
I just want to show you the environment जहाँ पे जो है ना basically आप मुझे वही पे दिया है. That's a startup. Nope, यहाँ पे नहीं है. Just want to be sure. I hope this comes in because ये मैंने एक सैंडबॉक्स में यूज किया हुआ लेकिन अभी मुझे उसको एक्सेस नहीं दे रहा. I don't know why, but यार आई एम सो सॉरी. ये पता नहीं क्यों मुझे इसकी एक्सेस नहीं दे रहा. मैं शायद भूल गया हूँ या मुझे याद नहीं आ रहा. लेकिन ये है कि इट एक्चुअली गिव्स यू एक्सेस टू लाइक मेरा मतलब यानी कि एक एसएसएमएस की तरह की एक चीज की एक्सेस आपको देता है जहां पर आप डायरेक्टली क्यूरिंग कर सकते हैं. ये देख रहे हैं ना आप. Look at this. Yeah, look at this syntax over here. If you guys can see this. I don't know if you guys can see this or not. अब ये देखें ये किस किस्म का syntax लिखा हुआ है यहाँ पे. Anybody can recall this syntax or not? Yes sir, SQL की तरह. Absolutely. So the BigQuery actually, this is an online editor that allows you to write queries directly into the web interface and fetch data from the Google BigQuery, which is in the cloud. ठीक है ना? Go to BigQuery. ये देख रहे हैं. हाँ, so this is it actually. This is the SQL workspace. इसके बाद मैंने थोड़ा सा काम किया था, but then I again like usually short on time, so but it is very similar to SQL. ठीक है ना. ये आप देखते हैं बिग डेटा है. ये एक पब्लिक डेटा है जो कि पड़ा हुआ है और I can actually इसके अंदर ये these are different so I can actually just go over here and select star from अगर ये DB जो है ना लोड हुई है. अब ये देखें, look at this. Just works like SSMS. Sorry, Austin. Right. Austin. AUSTN underscore CRIM AUSTN underscore with qualified. Okay, fine. So yeah, but again, I think you guys get the idea. Jana, इसको basically so this is how it works. So I mean it's extremely convenient. मेरा मतलब कि आप Jana think about it ना, scalability, आपको installation की problems नहीं है. You just log in and then you just simply start queuing.
ठीक है, तो extremely convenient, and this is where the whole ecosystem has started to move to. ठीक है ना, and then you can directly connect your ETL tools like Power BI to these results and generate जो भी आप generate करना चाहते हैं. ठीक है, तो again at the reporting layer we have MySQL, we have now SQL की querying के tools हैं, SQL SSMS है जो कि हमने जिसके अंदर अपनी सारी SQL सीखी थी. फिर then Power BI as well, because Power BI भी ETL का काम करता है. जो Power BI में Power Query है that actually allows you to perform ETL processes. Then there is the visualization part. Yeah, that's the third layer, and again you would see Power BI over there as well. ठीक है ना, अगेन यहाँ पर जो है ना आपके ETL के टूल्स लाइक पावर BI, Tableau, क्लिक, सेंसे, माइक्रो स्ट्रैटेजी, ये सारे के सारे जो है ना यहाँ पर यूज होते हैं और दे फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग. अच्छा, अब इससे ऊपर देन इज द एनालिटिक्स पार्ट. अब ये Tableau, Jupyter नोटबुक्स 9 जिसका मैंने ऑलरेडी जिक्र किया था और पावर BI, ये अगेन दे आर they can help you not only with the reporting part but the visualization part and the analytics part as well. So आप ये देख रहे हैं कि Power BI इसी वजह से एक बहुत powerful tool है, and that is why I think that it's very loved in the analytics community. ठीक है ना, because of its ability to attach itself to different roles जो कि experiment में आपको नजर आ रहे हैं या tasks. Or on top of all of this technology stack is generally any sort of decision making or action जो कि एक organization perform करे. That all of it is on top of that. ठीक है, so ये एक complete ecosystem है जो कि sort of जो है ना अभी जो जिसके अंदर हर लेयर के अंदर जो है ना एक मुख्तलिफ किस्म की टेक्नोलॉजी यूज हो रही है. कुछ सिमिलर टेक्नोलॉजीज भी हो रही हैं लेकिन मुख्तलिफ किस्म की जनरली टेक्नोलॉजी यूज हो रही है. And the future trend is primarily movement towards the cloud. इस सारा कुछ जो है I'd say another 6 years, 5 to 6 years में सारा कुछ जो है probably cloud पे ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो cloud के ऊपर मूव कर देंगे. ठीक है, लोकली भी और इंटरनेशनली भी. लोकली भी अब ये ट्रेंड बहुत ज्यादा बढ़ गया. Any questions regarding this? जी गाइस, कोई सवाल? कोई सवाल नहीं है? Do you guys have no question? बिल्कुल भी नहीं. Okay. Moving ahead, what are the different types of analytics? ठीक है ना, एनालिटिक्स की किस्में कौन कौन सी? We have descriptive analytics, we have diagnostic analytics, we have predictive analytics, and then we have prescriptive analytics. Descriptive analytics is all about descriptive and diagnostic analytics is all about looking at the past data. ठीक है, ये पीछे के डेटा को देखने के लिए होता है. This is all the past data. And what does descriptive analytics tell you? It tells you what happened in the past. Diagnostic analytics tells you कि जो past में हुआ वो क्यों हुआ. Then once you have this layer, then you can actually perform some sort of a predictive and prescriptive analytics, which is all about what might happen in the future and what should we do in the future once we know कि क्या क्या हो सकता है. अब ऑर्गेनाइजेशंस जो है ना वो यूजुअली ग्रेजुएट करती हैं हर स्टेप पे वन बाय वन. ऐसे नहीं होता कि आप यहाँ से डायरेक्टली प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स शुरू कर देंगे. अगर आपके पास ये फाउंडेशन नहीं होगी बॉटम पे तो आप प्रिस्क्रिप्टिव या प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स नहीं कर सकेंगे. ठीक है, बिकॉज दिस रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ डेटा एट अ वेरी डिटेल्ड लेवल ऑफ ग्रैनुलैरिटी. वो आप कलेक्ट करेंगे तो कुछ आगे जाएंगे. इसकी मिसाल अगर मैं एक एग्जांपल के जरिए देने की कोशिश करूं, ये एडिबल अरेंजमेंट्स का ही डेटा है और डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स में क्या सवाल हो सकते हैं कि व्हाट हैपेंड इन फरवरी ऑफ 2019, व्हाई डू आई सी दिस स्पाइक, व्हाट वाज द डॉलर वैल्यू अर्न्ड इन दिस पीरियड,
ये जो स्पाइक आया था उसमें क्या डॉलर वैल्यू थी, ये डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। ऑन द अदर हैंड डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स ये हो सकता है कि व्हाई वाज देयर अ स्पाइक इन द सेल्स ऑफ 2000 फरवरी में क्यों स्पाइक आया था, या दिसंबर में ये स्पाइक क्यों आ रहा है। What was there a similar spike in the sale of December 2018? तो ये जो स्पाइक है, क्या ऐसा कोई स्पाइक मुझे 2018 में भी नजर आता है दिसंबर में? बिल्कुल आता है। You see that over here, ठीक है। Reasons driving these spikes, क्यों हो रहा है जी ये? This is diagnostic analytics. आप डायग्नोज कर रहे हैं, you're attaching a reason to these spikes or these trends. Then there is predictive analytics कि अच्छा यार ये मेरे पुराना डेटा था सारे का सारा, on the basis of this I want to look into the future. That is prediction, but for that, as I said, you need high granularity data that you have from the past. On the basis of this past data only you can look into the future. Does that make sense या नहीं? कितने Yes, लोगों sir. को ये बात समझ आई है, या कितनों को नहीं आई? चलिए यूं बता दें। Anyone who did not understand this or these 3 or 4 types? अच्छा सर, एक क्वेश्चन है जी थोड़ा जी सा। ये जो प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स का बेसिकली फोरकास्ट की है, इज जी दिस जी बेस्ड ऑन सम मॉडल लाइक अरीमा है या मूविंग जी एवरेज जी है, या मतलब व्हाट्स द बेसिस फॉर दैट? आई रियली अच्छा वांटेड टू अंडरस्टैंड कि वो क्या हाँ जी चीज है इसके ठीक बैक हो पे, बिकॉज़ सीजनल स्पाइक्स तो हैं, ठीक है, उसकी बेस पे आपने आगे उसको यूज किया। अच्छा देखें, जो पावर बीआई के अंदर जो सीजनैलिटी, सॉरी, पावर बीआई के अंदर जो प्रेडिक्टिव मॉडलिंग हो रही होती है ना, दैट इज एन ऑफ द शेल्फ फीचर जो कि आप यूज करते हैं। उसमें ये इनकॉर्पोरेट करना अरीमा और जो है ना ये जो सारे ऑटो रिग्रेसिव जो है ना ये जो मॉडल्स की टाइप्स हैं जो आप बोल रहे हैं, ये इनकॉर्पोरेट करना, ये आपको खुद बनाना पड़ेगा। ऑफ द शेल्फ कैपेबिलिटी में ये नहीं मिलता, और एक्चुअली में मुझे मालूम भी नहीं है कि ये कौन सा मॉडल यूज कर रहा था, बल्कि इनफैक्ट आई गूगल इट राइट नाउ। दिस इज अ गुड क्वेश्चन। व्हाट मॉडल डज पावर बीआई forecasting tool use? एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग को यूज करता है, सही, गॉट इट। ठीक है ना। लेकिन ये अरीमा वगैरह के जो मॉडल्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, खासतौर पे टाइम सीरीज डेटा के लिए, ठीक है ना, बिकॉज वो उसमें बिकॉज ऑटो रिग्रेशन को जो है ना बेसिकली वो एडजस्ट करते हैं, और बट ये ऑफ द सेल्फ जो आपको मॉडल मिलेगा उसमें एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मिलेगी। लेकिन अगर आपने बिल्ड करना है, आप बिल्ड कर सकते हैं। उसके लिए फिर आपको जारी बात है डैक्स लिखनी पड़ेगी, सही होगी। ठीक है ना। एंड इज पावर बीआई कैपेबल ऑफ दिस डैक्स थिंग? मतलब उसमें पावर बीआई जी में जी आप जी कर सकते हैं? जी पावर बीआई में आप कर सकते हैं, पावर बीआई में आप डैक्स लिख सकते हैं। दूसरी बात ये है कि पावर बीआई के अंदर आप पाइथन की स्क्रिप्टिंग भी कर सकते हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। सो आपने अगर ये मॉडल्स जो हैं वो पाइथन के स्क्रिप्ट में बनाए हुए हैं तो आप वो कॉल कर सकते हैं इनटू पावर बीआई। ये खैर मैं इस कोर्स में ये कवर नहीं करता, मेरा मतलब पाइथन की स्क्रिप्टिंग कैसे करते हैं मैंने एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट बहुत ज्यादा की हुई भी नहीं है, लेकिन ये मैं आई विल जस्ट शो इट टू यू। अगर आपने पाइथन की स्क्रिप्टिंग करनी हो तो पाइथन और आर के स्क्रिप्ट्स जो हैं वो आप डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं इनटू, ये देखिए दिस, डायरेक्टली इनटू पावर बीआई। तो जैसे ही आपके पास डेटा होगा आप इसको दबाते हैं तो यहाँ पे स्क्रिप्टिंग विंडो खुल जाती है, तो यू कैन स्क्रिप्ट ओवर हियर, एंड देन व्हाट इट डज इज कि वो आपके जो भी स्क्रिप्ट होता है उसको मॉडल के तौर पे, क्यूरी के तौर पे यहाँ पर ले आता है, एंड देन यू कैन टेक इट फॉरवर्ड एंड बिल्ड सम सॉर्ट ऑफ अ विजुअलाइजेशन ओवर हियर, या जो भी आपने एनालिसिस करना उसको, ठीक है। राइट। एक सेकंड गाइस, मैं जस्ट लॉस्ट पावर, नीड टू चेंज द विंडोज। शेयर कर दूं विंडोज।
आप लोगों से विंडो दोबारा शेयर करता हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके, आई होप माय विंडो इज विजिबल। मेरी स्क्रीन नजर आ रही है सबको? यस सर। अच्छा, अब देन वी टॉक अबाउट प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। अच्छा, अब मैंने प्रिडिक्ट तो कर दिया किसी भी मॉडल को यूज करते हुए कि अच्छा यार इन द फ्यूचर जो है पॉसिबिलिटीज ये हैं, मेरी ट्रेजेक्टरी ये होगी बेस्ड ऑन जो भी मेरा पास्ट है, ठीक है। लेकिन प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स के अंदर आप जो है ना ऑन द बेसिस ऑफ द आउटकम दैट यू आर सीइंग इन द फ्यूचर, ठीक है, कंपनी अपने कोर्स ऑफ एक्शन को डिटरमिन करने की कोशिश करेगी। अच्छा यार, मैं व्हाट कैन आई डू टू ईदर डू बेटर और ईदर जो है बेसिकली व्हाट एवर वर्स सिनेरियो जो जिसकी तरफ हम जा रहे हैं उसको मैं कैसे रोक सकता हूं या रोक सकता हूं, ये रोक सकती हूँ। कोई भी कंपनी प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स जो है ना आपको ये ऑप्शंस जनरेट करने में हेल्प करेगी, ठीक है। तो इस तरह के जो टूल्स हैं वो टू बी ऑनेस्ट मैंने वैसे जो आपकी जनरली मैंने ये ह्यूमन ड्रिवन देखा है प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स को, ठीक है। लेकिन बिजनेस को अगर हम साइड पे रख दें, प्रिस्क्रिप्टिव टूल्स और इंडस्ट्रीज में यूज हो रहे हैं अलबत्ता। फॉर एग्जांपल, हाँ, फॉर एग्जांपल यूएसए में कुछ कोर्ट्स ऐसी हैं जो कि बेस्ड ऑन किसी भी फेलन की हिस्ट्री की बेस पे उसको सजा प्रिस्क्राइब करती हैं। नाउ दैट्स अ प्रिस्क्रिप्टिव सिस्टम, बाइस्ड और नॉट मुझे ये नहीं पता, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि दैट्स अ प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड सिस्टम। वो प्रिस्क्राइब कर रहा है कि इसको ये सजा हो सकती है या देनी चाहिए। तो इट इज अ टूल दैट जजेस यूज, और ये कुछ कोर्ट्स में है। ये मैंने कुछ एक आधी केस स्टडी पढ़ी थी आज से कोई साल 2 साल पहले। उसके बाद वॉर गेम सिस्टम्स जो होते हैं जो कि मिलिट्रीज यूज करती हैं। वॉर गेमिंग के बारे में पता है किसी को क्या होती है? एनीबडी हु अंडरस्टैंड्स वॉर गेम्स क्या होती हैं? किसी का आर्मी का थोड़ा बहुत बैकग्राउंड हो, और does anybody understand what war gaming is? War gaming is scenario based जो है ना, आप वॉर गेम्स करते हैं, ये फिजिकली भी होती हैं, हम अक्सर सुनते हैं जी वॉर गेम्स होती हैं, लेकिन एक्चुअल में ये सिमुलेटेड भी होती हैं। तो सिमुलेटेड वॉर गेम्स में आप डिफरेंट सिनेरियोज इंसर्ट करते हैं और फिर कंप्यूटर्स और सुपर कंप्यूटर्स होते हैं जो कि आपको पॉसिबल रिटेलिएटरी मूव्स निकाल के प्रिस्क्राइब करती हैं कि अच्छा यार, इफ समबडी हैज न्यूक्ड यू, या उसने आपकी लेट्स से कि 5 शिप्स तबाह करनी है या कुछ भी किया है, किसी न्यूक्लियर रिएक्टर के ऊपर हमला कर दिया है, तो आई प्रिस्क्राइब दीज एक्शंस, ठीक है। एंड दिस इज एक्चुअली व्हाट मिलिट्रीज डू यूज। दैट्स अ प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड सिस्टम। दैट्स नॉट एग्जैक्टली एनालिटिक्स, बट दैट्स अ प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड सिस्टम। दैट्स एन एग्जांपल ऑफ अ प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड सिस्टम। तीसरी एग्जांपल, मेडिसिन के अंदर जो है डॉक्टर्स जो हैं अब जो है ना प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड टूल्स यूज करते हैं कि वो सिम्टम्स डालते हैं और पॉसिबल जो हेल्थ इश्यूज हैं और उनकी जो रेमेडियल मेडिसिन है वो सिस्टम प्रिस्क्राइब कर देता है। नाउ दैट इज अ प्रिस्क्रिप्टिव सिस्टम, ठीक है ना। जनरली बिजनेस में दिस इज ड्रिवन by using a combination of predictive analytics and business acumen जो कि humans के पास होता है। अगर किसी और ने वैसे कोई प्रिस्क्रिप्टिव सिस्टम अगर देखा है किसी ने, तो यू कैन एक्चुअली ऑलवेज गिव एन एग्जांपल, अनम्यूट योरसेल्फ एंड गिव एन एग्जांपल। लेकिन अभी तक मैंने प्रिस्क्रिप्टिव सिस्टम जो है ना वो बिजनेस के अंदर जो है ना डायरेक्टली इस्तेमाल होता हुए नहीं देखे। एनी क्वेश्चंस? जी गाइस, कोई सवाल? सो इसमें जैसे मोहसिन अभी आपने ये मेडिकल इंडस्ट्री के बारे जो एग्जांपल दी, तो फॉर एग्जांपल व्हेन वी बाय एनी काइंड ऑफ मेडिसिन,
तो उसमें जो लिटरेचर आता है उसके साथ उसमें लिखा होता है कि इस दवाई खाने के पॉसिबल साइड इफेक्ट्स हैं. सो दो साइड इफेक्ट्स आर एक्चुअली बेस्ड ऑन अ प्रिस्क्रिप्टिव मॉडल के विच दे हैव स्टडी ऑन लेट्स से अ सर्टेन पॉपुलेशन कि हाँ भी अगर उनको Absolutely. दवाई एडमिनिस्टर हुई है तो उनमें क्या क्या साइड इफेक्ट्स हैं, एंड देन दैट इज लाइक देन कम्युनिकेटेड टू द पीपल. इज दैट वुड दैट बी करेक्ट? That could be an example. मुझे नहीं पता कि ऐसे होता है नहीं होता, बिकॉज जन मुझे लगता है शायद मेडिसिन के केस में यूं होता होगा कि जब भी कोई मेडिसिन लॉन्च होती है ना तो उसके जो इफेक्ट्स हैं, आई मीन नॉट आई मीन कोरोना वायरस में तो खैर ये चीज बिल्कुल तब्दील हो गई थी कि मेडिकल इंडस्ट्री ने ड्रग्स को वेट करने का जो प्रोसीजर है ना वो कंप्लीटली चेंज कर दिया था. और जनरली होता ये था कि कोई भी जो नई ड्रग है ना उसको उसके जो इफेक्ट्स हैं वो 18 से 20 साल जो है ना उनको पहले मॉनिटर किया जाता था, कंट्रोल्ड मॉनिटरिंग उसकी की जाती थी, और फिर जो है ना ड्रग अवेलेबल की जाती थी. लेकिन कोरोना वायरस के अंदर या कोविड के अंदर दी रिक्वायरमेंट वाज सो अर्जेंट दैट ये जो ड्रग कंपनीज है दे स्टार्टेड यूटिलाइजिंग मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस in order to accelerate this process. And this is one of the reasons कि हमें कोविड की जो वैक्सीन है वो इतनी जल्दी मिली है. ठीक है, तो हो सकता है कि जो है ना ये साइड इफेक्ट्स जो हैं वो उस तरह होते हो, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने ऐसे सिस्टम्स जरूर देखे हैं जो कि बेसिकली बेस्ड ऑन जो सिम्टम्स बताए जाते हैं. फॉर एग्जांपल यार मुझे कफ हो रही है, मुझे सीने में दर्द है, तो आप ये जो सिम्टम्स होते हैं ये सिस्टम के अंदर डालते हैं तो ऑटोमेटिकली वो आपको पॉसिबिलिटीज निकाल के देते हैं कि यार इसको ये प्रॉब्लम है. आप उसको फर्दर जो है ना फिल्टर डाउन करते हैं तो वो एंड पे आपको ये भी प्रिस्क्राइब करता है कि यार उसको ये प्रॉब्लम है, तो आप ये एक्शन या ये फलां 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 दवाई जो है ना रिकमेंड कर सकते हैं. सो दैट इज अ प्रिस्क्रिप्शन, राइट? आप प्रिस्क्राइब कर रहे हैं टू द डॉक्टर कि अच्छा यार तुम्हें क्या करना चाहिए. ओके. ओके, ये खैर मैंने आपको सारा करा दिया. सेकंड जी गाइस, एनी क्वेश्चंस, एनी कमेंट्स व्हिच यू वांट टू ऐड ओवर हियर? सर मुझे एक चीज पूछनी थी. मैं क्योंकि लॉन्ड्री इंडस्ट्री से रही हूँ एसोसिएटेड, उस टर्म्स में ज्यादा सोचती हूँ. तो उसमें अगर हम ये कहते थे कि हमारा ब्रांड जो है 500 ग्राम नहीं है, उसके पास 500 ग्राम का SKU, और बाकी जगह जो है कंज्यूमर्स जो है दूसरे ब्रांड्स का 500 जो प्रेफर करता है खरीदना. तो अगर हम 500 लॉन्च कर देते हैं 500 ग्राम तो हमारे बिजनेस को प्रॉफिट हो सकता है. तो प्रेडिक्टिव में आएगा या प्रिस्क्रिप्टिव में आएगा? ये एब्सेंस ऑफ SKU है और हम चाह रहे हैं लॉन्च कर दें क्योंकि कंज्यूमर प्रेफर करता है. अच्छा देखें, अच्छा मैं आपका सवाल रीट्रेट करता हूँ. आपका सवाल ये है कि एक SKU है जो कि आपकी लाइन में से मिसिंग है. यस सर. जैसे कि वो एक छोटी डिनोमिनेशन का SKU था, 500 ग्राम है, 250 ग्राम है, ठीक. और आप लोगों को ये लगता है कि ये जो है दिस इज एक्चुअली हैविंग अ डेंट ऑन योर सेल्स. एग्जैक्टली. और कंज्यूमर प्रेफर्स दिस इन अदर ब्रांड्स. और अगर आप ये लॉन्च करेंगे तो आपको फायदा होगा. यस सर. अच्छा, पहले तो मुझे ये बताएं कि आपको कैसे पता है कि इट हैज अ डेंट ऑन योर सेल? बिकॉज इट्स एब्सेंट और कंज्यूमर बहुत ज्यादा वही. हाँ, हमारे पास वो SKU मिसिंग है और उसका जब डेटा हम दूसरे ब्रांड्स पे देखते हैं तो उनको काफी प्रॉफिट हो रहा है. अच्छा एक सेकंड, ओके फाइन. जब आप ये कहती हैं कि इट इज मिसिंग, दैट्स व्हाई डेंट है सेल्स के ऊपर, तो isn't that an assumption? It could be something else as well. Yes, it's just a possibility. It's a possibility. Okay. अच्छा, I exactly do not know कि मैं इस प्रॉब्लम को किस डब्बे में डालूंगा, लेकिन मुझे ये ज्यादा डिस्क्रिप्टिव और डायग्नोस्टिक लेवल की प्रॉब्लम लग रही है. ठीक है. एंड हाउ वुड आई गो अबाउट इट? देखें, आप जब SKU लॉन्च करेंगे ना उससे पहले आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालेंगे ना, मेरा तो ये ख्याल है.
जब ओके आपने SKU लॉन्च करना है तो उसकी प्रोडक्शन लाइन के ऊपर एक केपेक्स आएगी, ओपेक्स आएगा, मार्केटिंग कॉस्ट आएगी, डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट आएगी। हो सकता है जिन SKUs के साथ आप कंपेयर कर रहे हैं, अलग से कि आपका रीजनल डिटर्जेंट ब्रांड था, सॉरी पूरे पाकिस्तान में मशहूर है, और जिन SKUs को आप के साथ आप कंपेयर कर रहे हैं वो खाली सांगड़ के अंदर बिकता है, या वो मेरा मतलब गुजरांवाला का एक लोकल ब्रांड है, सही है। तो आपके और उसके डायनामिक्स डिफरेंट है ना। तो हो सकता है उसको होम एडवांटेज इतना बड़ा हो कि आप जो है बेसिकली उसके साथ कंपीट ही ना कर सकें, तो आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सबसे पहले निकालेंगे कि ओके फाइन, मैं 500 ग्राम का जो है ना लो इनकम स्मॉलर लोकेलिटीज के लिए एक जो है SKU लॉन्च कर देता हूं, ठीक है, बट वुड आई बी एबल टू compete विद द लोकल प्लेयर्स जिनको छोटे साइज का और मोर एजिलिटी का एडवांटेज है, जो कि ऑलरेडी फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले चुके हैं उन लोकेलिटीज के अंदर। तो नहीं सर, लोकेलिटी के अंदर फॉर एग्जांपल ना भी जाएं, फॉर एग्जांपल एरियल है, एरियल 500 ग्राम अगर नहीं है रखता और यूनिलीवर जो है 500 ग्राम पे बहुत ज्यादा कमा रहा है, तो हम कह दें कि जी एरियल को भी 500 ग्राम लॉन्च करना चाहिए। ठीक है, अच्छा तो ये एक सेकेंड, प्रिस्क्रिप्टिव में आएगा या प्रेडिक्टिव में आएगा? अगर हम लोकेलिटी में नहीं जाते या टारगेट मार्केट में नहीं जाते, बिग पिक्चर देख रहे हैं, ये प्रिस्क्रिप्शन में नहीं आएगा, ये प्रेडिक्टिव में भी नहीं आएगा। मुझे नहीं लग रहा कि ये प्रेडिक्टिव, मुझे नहीं लग रहा कि प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स है ये। ठीक है। मुझे प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स शायद उस केस में होती कि आप 500 ग्राम लॉन्च कर चुके थे और आप प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे होते कि यार इनटू द फ्यूचर जो है ना मेरी ये ट्रेजेक्टरी रहेगी सिंस आई हैव ऑलरेडी लॉन्च्ड, और मैं कब जो है वो एरियल से आगे निकल जाऊंगा या पीछे रह जाऊंगा। दैट कुड हैव बीन प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स, बट व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू इज यू आर एक्चुअली ट्राइंग टू लॉन्च बेस्ड ऑन एन अजम्पशन कि आपको सेल्स की डेंट जो है वो इस वजह से लग रही है बिकॉज आपने 500 ग्राम की SKU नहीं रखी हुई। Whereas the problem could be your marketing, could be your merchandising, could be your sales and distribution. Could be So many things. It could be many things. So it would be either descriptive or diagnostic analytics, जिनके अंदर आपकी एक enumerated reason ये हो सकती है कि 500 ग्राम की SKU नहीं है, ठीक है, लेकिन हो सकती है कि मेरी S&D ठीक नहीं है इसलिए मुझे सेल्स पे डेंट लग रही है, हो सकता है मेरी मार्केटिंग ठीक ना हो। अब ये सारे हाइपोथेसिस आपको सेपरेटली टेस्ट करने पड़ेंगे। ओके सर, ठीक है, एनी अदर क्वेश्चंस? किसी का कोई और सवाल? ओके गाइस, आई एम गोना शेयर, मैं आप लोगों के साथ एक जो है ना एक्सेल की फाइल शेयर करता हूँ और उसको हम थोड़ा सा डिस्क्राइब कर लेते हैं। आज हम बेसिकली उस अच्छा दिस एंड्स द फर्स्ट पार्ट। व्हाट आई एम गोना डू नाउ इज आई एम गोइंग टू शेयर द एक्सेल फाइल जिसके अंदर हमने जो फोरकास्टिंग वाली एग्जांपल है वो शुरू कर दी। सो आज जो है हम सिर्फ डेटा को थोड़ा बहुत देख लेते हैं एंड ऑन टॉप ऑफ दैट जो है कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं डेटा की, और कल जो है फिर हम वो पूरी की पूरी एग्जांपल कर लेंगे। बट बिफोर आई मूव ऑन टू दैट, आई थिंक मुझे फारीना का भी मैसेज आया है, उन्होंने कहा है कि सर जो हमारी वो है अपना फीडबैक है, मिड कोर्स फीडबैक, वो पेंडिंग है। तो फारीना थोड़ा सा प्लीज गाइड कर देंगे फीडबैक कहाँ पे होगी और कैसे भरनी है, इफ यू कुड प्लीज। If you're still with us, I think she has, अभी वो इधर नहीं है। खैर तो प्लीज मिड कोर्स जो फीडबैक है वो प्लीज मुझे हमें जरूर दीजिएगा। वो एक लिंक है, 5 मिनट का भी क्वेश्चन नहीं है, उसको सिर्फ फिल करना है
तो आप लोगों को कहीं पे नजर आ रहा है अपने पोर्टल के अंदर फीडबैक का कोई प्रॉम्प्ट या नहीं? यू गाइस सी दैट ऑन योर पोर्टल? तो गाइस अच्छा सोएब साहब को तो सोएब थोड़ा सा जरा गाइड कर देंगे कि कहाँ पर ये कहाँ पर नजर आ रहा है आपको? मेन पेज पे नजर आ रहा है या आपको किसी टैब के अंदर जाना पड़ता है? सर ये लर्न के टैब में आता है। लर्न के टैब में आता है, अच्छा ठीक है। सो गाइस लर्न के टैब में प्लीज जो है फीडबैक का हमने लिंक एक्टिवेट कर दिया है, तो आप लोगों ने फीडबैक जरूर देना है, ठीक है ना? हमें बिकॉज इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि अगर हमने कोई अलाइनमेंट करनी है, री अलाइनमेंट करनी है तो हम कर सकें। वो तो फीडबैक मिलेगा तो हम करेंगे। अच्छा, इसमें अभी मैंने आप लोगों से शेयर करना है, I'm going to share तो गाइस ये मैंने एक्सेल की फाइल आप लोगों से शेयर की है, इसको काइंडली डाउनलोड कर लें, ठीक है? एंड लेट्स ओपन इट अप। जब ऑन द चैट शेयर कर दूं? अच्छा यार इशू ये है सुहेब कि, अच्छा मैं एक में कोशिश करता हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकंड। I didn't used to usually allow me to do that ऐसे। How do I share this? Oh man. Can't see the option of actually sharing this, unfortunately. But just a second, guys, just a second। मुझे सिर्फ एक चीज जरा नोट करने दें। मैंने आई थिंक ये ऑलरेडी फाइल जो है लोड भी की हुई है। Fine. Just give me a second. अच्छा ये यहाँ पर नहीं हुई गाइस, ये मैं इसको लोड कर देता हूँ, आप वहां से डाउनलोड कर लें सोएब, बिकॉज ओके फाइन, ठीक है चलिए ओके। अच्छा सबने डाउनलोड कर लीजिए फिर। हैज एवरीबॉडी डाउनलोडेड द एक्सेल फाइल? यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा आप इसमें मुझे कोई एक्सप्लेन कर सकता है कि डेटा जो है अच्छा ये बात याद रखें कि इस फॉर दिस एक्सरसाइज वी वुड बी यूजिंग डेटा फ्रॉम 2013-14 टिल 2018-19, ठीक है? इससे पीछे का डेटा हम यूज नहीं करेंगे। लेकिन कैन एनीबॉडी गिव मी लाइक अ सिनॉप्सिस ऑफ द डेटा? डेटा क्या है, क्या पड़ा हुआ है इसके अंदर, क्या चीज है, व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट ओवर हियर? सर मंथ वाइज प्रोडक्शन और सेल्स की जस्ट वैल्यूज कितनी प्रोड्यूस हुई, कितनी सेल्स और मंथ वाइज और ईयर वाइज जस्ट शीट्स बनी। ठीक है, और ये गाड़ियों की सेल है राइट? गाड़ियां हैं, ट्रक्स हैं, नीचे वेरियस मॉडल्स हैं। ठीक है, और ठीक हो गया। सो वी हैव different cars, car brands,
उनकी डिफरेंट डिफरेंट कार ब्रांड्स और उनकी डिफरेंट कार्स हैं. So the brand would be Honda. प्रोडक्शन और सेल्स दोनों का डेटा है. प्रोडक्शन और सेल्स दोनों का डेटा. अच्छा, अब इसमें गोइंग थ्रू द शीट्स, डू यू गाइस सी एनी प्रॉब्लम ओवर हियर? हम होंडा को ही यूज करेंगे, होंडा सिविक और होंडा सिटी को. तो डू यू गाइस सी एनी प्रॉब्लम्स ओवर हियर? वो सर इसमें एक डेटा जो के बीच एट क्विक क्लास जो डेटा जो है उसको अगर हम ऑर्गेनाइज अगर हम देखें कि ऑर्गेनाइज फॉर्म है, सो व्हाइल इट शोज कार्स, अब शुरू में जो दो तीन सेक्शंस हैं वो उन्होंने सेग्रीगेशन की हुई है बेस्ड ऑन हॉर्स पावर. उसके बाद अगर इफ यू गो डाउन तो देन देयर इज नो हॉर्स पावर मेंशन इन द डेटा, देयर आर जनरल व्हीकल्स लिस्टेड. फिर उसके बाद नीचे हम जाते हैं तो फिर उसके बाद मोटरसाइकिल शुरू हो जाती हैं, फार्म ट्रैक्टर्स शुरू हो जाते हैं, थ्री व्हीलर्स वगैरह. So that's just a general observation कि maybe we need to further clean the data as per whatever prescriptive or predictive modeling that we need to do. बिल्कुल ठीक है. अच्छा जी, कोई और साहब भी बोल रहे थे. इससे ब्लैंक्स भी हैं डेटा के भी, एज इन मतलब ऑर्गेनाइज नहीं है, इसको ना ट्रांसपोज नहीं होगा सही, बीच में ब्लैंक फील. ठीक है. अच्छा, हम अगर होंडा सिविक और सिटी की बात करें ना खाली, और इफ यू मूव फॉरवर्ड, हम होंडा सिविक और सिटी को लेंगे, हम बाकी को छोड़ देते हैं एक को. 2014 2015 में जैसे ही आप पहुंचते हैं तो यहाँ पे आपको कोई फर्क नजर आता है होंडा सिटी के अंदर? accumulate कर दिया उसने, एक्यूमुलेट कर दिए. एग्जैक्टली. और ये दिस इज वन ऑफ द प्रॉब्लम्स जो कि वही जो बात कर रहे थे सर कि ये डेटा जो है वो स्टैंडर्डाइज नहीं है. और इवन फॉर द कार्स विच आर द कार्स ऑफ आवर इंटरेस्ट, लेट्स से होंडा सिविक और होंडा सिटी हैं, वो उसमें जो डेटा है वो एक खास पॉइंट पे आकर मर्ज हो जाता है. अच्छा, अब क्योंकि हमने इसके ऊपर जो है ना रिग्रेशन बेस्ड फोरकास्टिंग करनी है, तो इस डेटा को जो है ना मैं इसकी जो साख है ना उसको एटलीस्ट तब्दील करना चाहूंगा. आई वुड वॉन्ट टू सी दिस एज अ वर्टिकल स्टेट कॉलम. ठीक है ना, और मल्टीपल वर्टिकल कॉलम, नॉट लाइक दिस, वरना मैं इसके ऊपर कोई एनालिसिस रन नहीं कर सकूंगा. तो हाउ डू आई डू दैट? मैंने शुरू कहां से करना है? मैंने जुलाई 2013 से डेटा उठाना है और जून 2019 तक डेटा लेकर आना है. ठीक है. आई कैन ऐड अ न्यू शीट. आई कैन से मंथ. सबसे पहले यहाँ पे जुलाई 2013, अगस्त 2013, and then I drag and drop all the way down to जून 2019, right? ऐसे ही है ना, या नहीं? Yes. जून 2019 तक मैंने डेटा लाना है. ठीक है. तो मैंने यहाँ तक एक सीरीज बना दी है डेटा की. अच्छा, अब जो है मैं क्या लाना चाहता हूँ जी? आई वांट टू ब्रिंग थ्रू, let's say I want to bring through Honda City or Honda Civic. Now I would say इसको हम कर देते हैं, let's insert this over here. यहाँ पे मैं I would merge these. So it is Honda Civic first. Sorry, it is Honda Civic first. And then there is, कॉपी करता हूँ मैं यहीं पे, and Honda City को मैं यहाँ पर ले आता हूँ. इसके बाद what do I need? I need the production numbers and the sales numbers for both the brands. So production. Actually मैं use sales ही करूँगा बाद में, लेकिन the point is कि मैं just wanna, बल्कि इनफैक्ट एक काम करते हैं, प्रोडक्शन सेल्स दोनों को लाऊंगे, खाली सेल्स को लेकर तो मैं दोनों को ही ले आता हूँ. यूज जैसे हम सेल्स के नंबर्स करेंगे, प्रोडक्शन एंड सेल्स, होंडा सिटी एंड. अच्छा, अब इनको लाना कैसे है? एनी आइडियाज कि जल्दी से अगर लाना हो तो कैसे लेकर आऊंगा?
फिर ट्रांसपोज कर दूं, कंट्रोल कॉपी करके ट्रांसपोज कर दूं फिर। हाँ बिल्कुल ठीक है, इसमें ट्रांसपोज ही आप करेंगे। आप इसको जस्ट टेक दिस फ्रॉम ओवर हियर, तो हम सिविक, ठीक है, कॉपी एंड I do this. Yeah. And then I can actually change, right, transpose. नहीं यार, ये मैं गलत कर रहा हूँ सर ट्रांसपोज आप करने के इसको कंट्रोल ऑल्ट वी करें ना, तो पे स्पेशल कर दीजिए ना, जस्ट लिए प्रेस स्पेशल कंट्रोल कर। ऑल्ट वी, ये वैल्यू सेलेक्ट करके ट्रांसपोर्ट सेलेक्ट कर ये दीजिए, कंट्रोल ऑल्ट। you're actually you're right actually. यहाँ कंट्रोल पे से वैल्यू सेलेक्ट कर लें, नीचे ट्रांसपोर्ट सेलेक्ट करें, पेज में ट्रांसपोज हो वैल्यू गया सेलेक्ट जी, और वैल्यूज हो गया ना ये। हाँ बिल्कुल, या अच्छा, इसका एक और तरीका भी है। You can actually use the transpose function as well, ठीक है, and that saves you all this formatting trouble। ये देखें, just call the transpose, ये पूरी अरे उठा कर ले आएगा। शीट 1 को मैं डिलीट कर दूंगा, ये जरा जी गाइस प्लीज मुझे फॉलो करते रहें, साथ साथ आप लोग भी करें इसको अपने पास। या सो आप लोगों ने कर लिया? हैव यू गाइस फॉलोड दिस? सो इसका क्विक सा सैनिटी चेक अगर हम कर लें तो होंडा सिविक प्रोडक्शन, सॉरी होंडा सिविक सेल्स 800 से शुरू हो रही थी। होंडा सिविक सेल्स जो हैं वो 800 से शुरू हो रही हैं, और एंड कहां पर हो रही हैं? 4609 पर। 4609, हाँ 4609 पर हो रही हैं। हाँ एक्चुअली आखिरी वैल्यू देखनी चाहिए थी ना मुझे। हाँ 2106 देखना चाहिए था। 2106 है, 2106 है, या सो ये मेरी एरे तो ठीक आई है। व्हाट अबाउट यू गाइस, आप लोगों ने भी कर लिया? जी सर। अच्छा अब इसमें प्रॉब्लम क्या है जी? इसमें प्रॉब्लम है 2013-14 H7 से S8 नहीं होगा ना ये। मोस्टली इसमें थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम आ रहा था, ये जो मैंने फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ तो उस रिटर्निंग नल वैल्यू तो अच्छा सर, आप जब ये फॉर्मूला यूज करते हैं उसके बाद ना आप ट्राई करें कंट्रोल शिफ्ट एंटर दबाएं जरा। सर मेरा भी नल वैल्यू आ रहा है। जी आप भी इंस्टेड ऑफ एक्चुअली जस्ट प्रेसिंग एंटर, प्रेस कंट्रोल शिफ्ट एंटर। And let me know if that solves the problem.
जी गाइस, सर हुआ आपका? वैल्यूज तो आना शुरू हो गई कंट्रोल शिफ्ट एंटर से, लेकिन इसमें आई एम जस्ट सीइंग कि देयर आर सम जीरोस इन द डेटा जब वो ट्रांसपोज होकर आ रहा है। सपोज आप अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते हैं? मैं जी जी, एक्चुअली श्योर मेरी श्योर। लाइट आ गई है, सो आई एम गोना स्टॉप शेयरिंग एंड यू कैन शेयर योर स्क्रीन और मैं फिर वहां से देख पाऊंगा। जी, यू कैन प्रोवाइड मी द राइट्स प्लीज। हाँ जी जी, आई जस्ट सर आपके पास राइट्स आ गए। अच्छा सर, ये जरा जहाँ पर आपसे ट्रांसपोज कर रहे हैं वहां पे जाइएगा। जी वहीं जा रहा हूँ। ठीक है, जीरो वैल्यूज सो आ रही है सर। जी तो अगर आप देखें तो सो I've used ट्रांसपोज 13-14 की जो शीट थी उस पर लगाया था, एंड वही कंट्रोल शिफ्ट एंटर किया है। सो व्हेन आई सर, ड्रैग एंड सर ड्रैग एंड ड्रॉप ना करें, एक मिनट मैं आपको बताता हूँ। आप इसको क्लियर आउट करें, ये जो आपने लिख किया है सारे को, पानी ऑल द वे टू द बॉटम। अच्छा, इसके बाद लिखिएगा इक्वल्स टू ट्रांसपोज। हाँ जी, अब इसको हाँ जी अरे 2013-14 में जाएं, हाँ जी, और अब यहाँ से क्या जस्ट जी अब एंटर दबाइएगा खाली। कंट्रोल शिफ्ट एंटर, सॉरी नॉट एंटर, कंट्रोल शिफ्ट। ठीक है। अच्छा, ये खाली एक ला रहा है, ठीक है। अच्छा, आपका पुराना एक्सेल है शायद, उस वजह से सर जैसा मेरे इसको को सिर्फ पहली वैल्यू ला रहा है। ठीक हो गया। सर अच्छा वो सर, मैं उस एक और तरह कर रहा हूँ पे स्पेशल करके, तो मेरा सही आ रहा है। जी, वैसे भी हो सकता है। अच्छा, इसका एक और तरीका कार है। सर 2013-14 पे दोबारा जाएं। अच्छा, इसमें जून 2014 में खत्म हो रही है ना। अच्छा, अब वापस इसी एक्सेल की शीट पे जाएं, और वो जो सिंगल शीट थी, या अब यहाँ पे ट्रांसपोज दोबारा लिखें। अ, इस सारे को ना, सॉरी, ये जून 2014 तक सारे एरिया को सिलेक्ट करें। सो हाँ जी, इस फॉर्मूले को हटा दें। हटा दो, ठीक है। हाँ जी, इधर आगे लिखें। हाँ जी, अब इस सारे एरिया को सिलेक्ट करें जरा, प्रोडक्शन और सेल्स से लेके जून 2014 तक। हाँ जी, अब डबल क्लिक करें पहले वाइट सेल के ऊपर और लिखें ट्रांसपोज। अच्छा जी, यहाँ पे लिखें ट्रांसपोज। यहाँ नहीं नहीं, तो ट्रांसपोज सर ये सिलेक्ट करके करना पड़ेगा। सॉरी, ये इसका नहीं होगा, ये एक्चुअली एक्सेल का पुराना जो वर्जन है ना, वो अरे को डिफाइन नहीं करता। सर तीनों को ना कीजिएगा, दो को करें। हाँ जी, बस। सॉरी, एक मिनट जस्ट। नो वरीज, नो वरीज, इट्स अ लिटिल ट्रिकी। ये जो नए एक्सेल है उसमें इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है। ट्रांसपोज बैक। अब नाउ गो टू दैट प्लेस, select the area, select the whole, yes, yep, and then press enter. एंटर और ये शिफ्ट कंट्रोल एंटर? कंट्रोल शिफ्ट एंटर। हाँ जी, अब वो आई थिंक वो पॉपुलेट हो गई है वहाँ पे। आई थिंक दे हैव पॉपुलेटेड। हाँ जी, अब ये देखिए ना, हाँ ये हाँ जी, ये एक्चुअल प्रॉब्लम ये है कि ये आई थिंक आपका एक्सेल का जो वर्जन है ना पुराना है, ठीक है। उसमें जो है ना आपको एग्जैक्टली अरे की स्पेसिफिकेशंस देनी होती थी कि कौन सा डेटा कहाँ पर लाकर डालना है, पूरे का पूरा। ओके ओके, तो गॉट इट। जो जो सोर्स है और जो ट्रांसपोजिंग एरिया है, वो दोनों बराबर होने चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही। जो चल, नया एक्सेल है उसमें ये केस नहीं है, वो अब ऑटोमेटिकली कर देता है। चलें, ठीक है, सही। थैंक यू सो मच। नो नो वरीज मैम, आप भी इसी तरह कीजिएगा, ये हो जाएगा। ओके। इसमें पोस्ट गाइस, आप लोगों को अगर मेरी स्क्रीन नजर आना शुरू हो जाए तो बताइएगा प्लीज। सो 1179 से ही शुरू हो रही है मेरी। कहाँ पे गया? ठीक, 1179 से शुरू। सो मैं अब दूसरी जो होंडा सिटी है उसको भी जो है ना, आई एम एक्चुअली ट्राइंग टू ब्रिंग दैट इन। सपोज होंडा सिटी, सपोज
अब यहाँ पे वो मर्ज हमने जो डिस्कस किया था वो मर्ज यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो गया है. सो आई सी अ सडन स्पाइक इन द नंबर्स प्लस अ सिमिलैरिटी इन द नंबर्स. ठीक है ना, ये देखें आप, ये दोनों तरफ अब एक ही नंबर जो है ना इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे, बिकॉज हमने सिविक के लिए भी यही किया और सिटी के लिए भी जो है ना एक ही नंबर हम ला रहे हैं क्योंकि ये मर्ज हुए हैं. तो गाइस हमारे पास ये स्ट्रक्चर जो है ना बन जाना चाहिए, जिसमें हमारे पास होंडा, सिविक और सिटी दोनों की प्रोडक्शन और सेल्स के नंबर्स होंगे. सर ये दे सॉरी, ये मर्ज वाला नहीं समझ आया सर, ये जो आप कह रहे थे, ये जी 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 15 के अंदर जाके कोई कुछ होता है ना, दोनों के नंबर्स मर्ज, इसको हम कैसे 15 लेंगे? जी 15 और 16 के अंदर जब जाएंगे ना, तो ये दोनों नंबर्स इकट्ठे हो रहे हैं सिटी और सिविक के. ठीक है, तो हम इनको ऐसे ही लिखेंगे. 2000 देखेंगे, मैं आपको बताता हूँ, ये वो पॉइंट है जहां से ये मर्ज शुरू हो रहा है जुलाई 2015 में, ऐसे ही है ना, यहां से. आई मार्क दिस एज, ये दोनों जो नंबर्स हैं ये इकट्ठे एक जैसे ही आएंगे, बिकॉज आप एक ही जगह से ला रहे हैं ना, तो मर्ज हो गया. अब हमने इन्हें स्प्लिट करना है. तो एक्चुअल में हम ये इस टास्क का हिस्सा है कि मैंने एक्चुअली इन नंबर्स को स्प्लिट भी करना है किसी न किसी रैशनल की बेसिस के ऊपर. आई हैव टू यूज सम सॉर्ट ऑफ अ रैशनल बिफोर आई कैन फोरकास्ट सिविक या सिटी की सेल्स. आई नीड टू इसमें फर्स्ट एक्चुअली ये होगा, फॉर एग्जांपल जुलाई 15 है, 1840 प्रोडक्शन में, ये 1840 में से कुछ पोर्शन सिविक का होगा, कुछ पोर्शन जी सिटी जी का होगा. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. लेकिन ये स्प्लिट जो है मेरे पास, लेट्स से डेटा मिसिंग है, मैं एक तो ये कर सकता हूँ कि सोर्स पे जाऊं और उनसे बाइफरकेशन ले लेता हूँ. हो सकता है कि मैं, मेरे पास ये लिमिटेशन है कि सोर्स पे हम ये बाइफरकेशन नहीं ले सकते. ठीक है, तो हाउ वुड आई देन हाउ वुड आई स्प्लिट देम? तो आई नीड टू स्प्लिट देम ऑन द बेसिस ऑफ सम सॉर्ट ऑफ अ रैशनल. ठीक है, सो मैं तो सबने कर लिया जी, ये अरे बना लिया सबने. हैज एवरीबॉडी बीन एबल टू एक्चुअली क्रिएट दिस अरे? सर अगर आप काइंडली 2-5 मिनट दे दें तो ये कंप्लीट हो जी जाएगा. जी जी श्योर, आराम से आप अपना करें. इसी असना में जो है ना, मैं यहाँ से आई थिंक ये फीडबैक जो है ना, मैं इसको एक्टिवेट कर देता हूँ. तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ फीडबैक को. गाइज ये प्लीज आप लोगों ने जो है ना आज फिल करके जाना है. ठीक है ना, यू नो, बिकॉज इसके बगैर मैं अपनी क्लास पॉइंट नहीं कर सकूंगा. तो आई स्टार्टेड द फीडबैक. आप लोग उतनी देर में ये जो भी आप लोग इसको कर रहे हैं, जस्ट कंप्लीट द अरे. एंड इससे आगे मैं नहीं कराऊंगा, बाकी जो है ना मैं फिर कल कराऊंगा स्प्लिट करना, और जो फोरकास्टिंग हमने करनी है रिग्रेशन की बेस पर, सॉरी लीनियर फोरकास्टिंग हमने करनी है वो रिग्रेशन का फार्मूला यूज करता है, वो बेसिकली फार्मूला ऑफ द लाइन यूज करेंगे हम. लेकिन ये है कि वो बाकी का काम जो है ना, आई एम एक्चुअली गोइंग टू शो यू गाइस टुमारो. जिन लोगों ने अगर तो ये अरे बना ली हुई है, तो मैं आपसे प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा दोबारा कि प्लीज जो है ना ये फीडबैक जो है ना, जो मैंने अभी रिलीज किया है इसको जो है ना प्लीज अगर आप लोग फिल कर दें. ठीक है, तो आज मैं इससे ज्यादा नहीं कराऊंगा आगे. आई एम नॉट गोइंग टू टीच एनीथिंग एल्स. सो गाइज आप लोग जो है ना ये फीडबैक करें, और ये जो है ना बेसिकली अरेज बनाएं. मैं सिर्फ एक सेकंड में पानी लेकर आता हूँ. आई जस्ट वांट सम वाटर. तो आई विल बी बैक. आप लोग उतनी देर में कंप्लीट करें, एंड देन आई कैन एक्चुअली टेक एनी क्वेश्चंस इफ यू हैव. जी मोहसिन सर, सर. मोहसिन सर सर, मुझे सिर्फ ये बता दें, अपने फीडबैक में लिखा हुआ है लिस्ट डाउन मैक्सिमम 3 रीजंस फॉर योर रेटिंग अगेंस्ट इंटरएक्टिविटी. ठीक है हम रीजंस लिखे, क्या रेटिंग किस तरह करेंगे हम इधर? सर. आपने इसी सवाल के ऊपर रेटिंग दे दी है ना? नहीं, रेटिंग राइट साइड पे वो लिखा हुआ है आंसर. अच्छा ठीक है, लिखा हुआ है आंसर्ड, नॉट आंसर्ड, आंसर्ड 0, नॉट आंसर्ड 24.
Answered 0, not answered 24. आंसर्ड का ये ब्लू बॉक्स है, नॉट आंसर्ड का रेड सा है। ये क्या चीज है, मुझे समझ नहीं आ रही इसको। सर ये मुझे अपनी स्क्रीन दिखाएं सर। मैं इस मामले में ना मेरी बड़ी लिमिटेड वो है, बिकॉज मुझे एक्सेस जो है ना वो नहीं है। अच्छा, जो है आप ना मुझे शेयर आप करेंगे लोग, जरा। मैं जी मैं करता हूँ। ये मैं को होस्ट बना रहा हूँ, आपको अपनी स्क्रीन शेयर करके। जी जी। सर नजर आ रहा है आपको? जी जी जी, अब आ रहा है, एक सेकंड सर। जी, ये क्या? हाँ हाँ, अच्छा देखिए, आप अभी क्वेश्चन नंबर, आपने कोई भी क्वेश्चन आंसर नहीं किया। 24 टोटल सवाल है, जी जी। और आप जो है लिस्ट डाउन मैक्सिमम रीजन फॉर योर रेटिंग अगेंस्ट इंटरएक्टिविटी। आपने 41 इंटरएक्टिविटी है। का, अच्छा आपने कोई इंटरएक्टिविटी का सवाल का भी जवाब तो नहीं दिया? ये पहला सवाल है आपका। जी जी, पहला सवाल है ना, अभी क्वेश्चन 1 पे हुआ। सर इसको NA कर दें, N-A कर दें। खुलते ही सही है यार है। ऐसे? जी हाँ जी, एंड अच्छा, देन मूव ऑन, एंड देन हाँ जी, अब ये जो है ना इसकी रैंकिंग है फिर। ठीक है सर ठीक है, ठीक थैंक है यू। सर इसमें जी। एनए करने की भी जरूरत नहीं है। अगर हम सिंपली अगर उसको नेक्स्ट कर दें तो वो नेक्स्ट पे चला जाता है, क्योंकि खाली सिंस खाली, हाँ अगर जी हम जी हाँ जी। जी अगर हम अगेंस्ट बोल रहे हैं तो फिर हमने जो है ना 3 रीजंस देनी है। अगर नहीं करना तो हम नेक्स्ट कर दें तो वो आगे हाँ चला जाता है। अच्छा, सॉरी माय अपॉलॉजीज, मुझे नहीं पता था। लेकिन अगर किसी ने कुछ अगर कमेंट्स वगैरह देने हैं तो फील फ्री टू ऐड देम। लेकिन हाँ, ये आपकी बात दुरुस्त है कि अगर खाली भी छोड़ दें तो वो आगे आपको जाने दें। इट्स नॉट मैंडेटरी कि आप इनको भरें। ठीक है गैस, मैं अभी सिर्फ जस्ट आई एम जस्ट गोना गो एंड फेच सम वाटर। तो उतनी देर में आप लोग अपना अरे और ये जो फीडबैक है इसको जो है ना कंप्लीट कर लें। जी सॉरी अबाउट दैट गाइस, आई एम बैक। एक्चुअली आई वो मेरा मैं मतलब क्योंकि सिकनेस पिछले हफ्ते थी, तो आई हैड लाइक अ थ्रोट इन्फेक्शन प्लस लाइक अ टूथ इन्फेक्शन। तो उसकी वजह से फीवर मुझे हो गया था, तो मैं इसलिए क्लास नहीं ले सका था। तो थ्रोट जो है वो अभी भी जो है ना इस लाइक सॉर्ट ऑफ रिकवरिंग, तो जल्दी खुश्क हो जाता है। मतलब बोले ना ज्यादा, सो हैव टू ड्रिंक वाटर अगेन एंड अगेन। सो कितने लोगों ने जी फीडबैक कंप्लीट कर लिया है, और अरे भी बना लिया है? has anybody completed both of them, या अभी है कुछ लोग जो कर रहे हैं? पर ये अरे नहीं बन रहा अभी ट्रांसपोज का। जब वो इज इक्वल टू ट्रांसपोज लिख के आगे जो अरे ठीक है, सिलेक्ट करते हैं वो ठीक। वैल्यू की ऑप्शन दे रहा हो, तो कुछ नंबर्स तो दे नहीं रहा वो। यानी कि वैल्यू का एरर दे रहा है इस तरह ना, जी जी सर। ऐसे? ठीक है हाँ। अच्छा, उसके लिए आप ये करें कि आपने भी कंट्रोल शिफ्ट और एंटर दबाएं, खाली एंटर ना दबाएं। तो जब आप ट्रांसपोज लिखते हैं ना यूं करके, ठीक है, और उसके बाद सिलेक्ट करते हैं वहां पे जाके सिलेक्शन, तो जी एंटर नहीं दबाना, आपने कंट्रोल शिफ्ट और एंटर दबाना है। फिर देखें कि आपको क्या जवाब आता है। ओके।
जी सर, वो आपका इशू रिजॉल्व हो गया, वो ये भी अब अरे बना रहा है? जी सर, बिल्कुल बना रहा है। ऑसम, ग्रेट। एक्सक्यूज मी सर, अब इसमें कुछ की ये 0 वैल्यूज दे रहा है, इसकी क्या रीजन है? 0 वैल्यूज दे रहा है। मुझे ये लग रहा है कि आपका अरे सही तरह सेलेक्ट नहीं हुआ। मुझे अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते हैं आप, अगर मैं आपको राइट्स दूं तो? जी प्लीज सर। और सॉरी, आपका नाम क्या था? सॉरी, मैंने देखा नहीं। अख्तर, राइट? बॉस, आपका नाम क्या था? सॉरी, सर अख्तर जावेद। अख्तर, अख्तर, सॉरी, माजरत में। ये मैंने आपको शेयर कर दिया, राइट? अब आप अपनी स्क्रीन शेयर करें। अच्छा सर, इसमें मुझे ये लग रहा है कि आपका ना वो हुआ हुआ है, अरे ठीक तरह जो है ना सिलेक्ट। अच्छा, ये इसको क्लियर आउट कर सकते हैं आप जरा? प्रोडक्शन होंडा सिविक के नीचे जितने नंबर्स हैं, इन सबको क्लियर आउट कर दें, उनको डिलीट कर दें, सिलेक्ट कर दें। मैं आपको दोबारा बताता हूँ इनको जल्दी कैसे करें। सबको डिलीट कर दें जी। अच्छा, अब सर जहाँ पे जाइएगा, यहाँ पे ट्रांसपोज लिखें जरा। ठीक है। अच्छा, अब वो जो पहला मंथ है, ये जो पहला साल है, उस पे जाएं जहाँ से हमने शुरू करना है, जुलाई 2013 में। जी, इन इनको इन सारे को सिलेक्ट करें दोबारा। हाँ जी, सारा, या ऑल द वे टू जून 2014 वाला जो नंबर है। सर, कम्युलेटिव को नहीं करना। हाँ जी, बिल्कुल। हाँ जी, अब दबाइएगा कंट्रोल शिफ्ट एंटर। हाँ जी, अब जरा शीट 2 पे जाएं। ठीक है। अच्छा सर, आपने ये करना है कि इसको एक दफा दोबारा डिलीट करें। हाँ जी, अब आपने सबसे पहले, बिकॉज ये आपका एक्सेल भी पुराना है, सबसे पहले आपने सिलेक्शन करनी है जुलाई 2013 से लेके प्रोडक्शन और सेल्स को ऑल द वे डाउन टिल ऑल द वे डाउन टिल एक सेकेंड कह रहे हैं, जुलाई अगस्त। सर, ये आपने जो ये बनाए हुए हैं, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इसके बाद तो जनवरी आना चाहिए था। ये जुलाई 2014 क्यों आ रहा है? अगर आप अपनी ये मंथ्स का कॉलम देखें, तो इसमें जो मंथ की सीक्वेंसिंग आ रही है वो ठीक नहीं आ रही। इसको ठीक कर लीजिएगा। जी ठीक हो गया सर, मैं कर लेता। अच्छा, उसके बाद फिर आपने पहले इसको ठीक कर लें, बिकॉज इससे वरना कंफ्यूजन रहेगी। अच्छा मोहसिन, जस्ट हैड अ क्वेश्चन। जी जी। मैंने वो फीडबैक वो कर दिया है पूरा। अच्छा, उसमें जो स्कोरिंग आ रही है, सर, तो परफॉर्मेंस तो
जी just जी wanted to highlight के it is also treating the questions that have qualitative inputs तो as a score as well, और उसको वो as a zero treat कर रहा है system जो है ना. तो I just wanted to highlight this particular क्योंकि वो ऐसा लग रहा है जैसा वो सिर्फ जहां पर आप रेटिंग कर रहे हैं सिलेक्ट वहां तो उसको पूरा फुल ले रहा है ऑन स्केल ऑफ 1 to 5, बट क्वालिटेटिव आंसर्स को वो 0 मार्क कर रहा है. सर वो ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. एक्चुअली में प्रॉब्लम ये है कि ये जो क्वेश्चनर है ना, क्वेश्चनर का जो मॉड्यूल है फीडबैक का, ये सिस्टम यूनिवर्सल है, ये कोर्स स्पेसिफिक नहीं है, जिसकी वजह से हम इसको ट्वीक नहीं कर सकते. अब ये सबको नजर आता है. अगर ये कोर्स स्पेसिफिक होता ना तो आई कुड हैव एक्चुअली ट्वीक्ड द क्वेश्चन स्पेसिफिकली टू अ पर्टिकुलर कोर्स. अनफॉर्चुनेटली दैट इज नॉट द केस. इस वजह से आपको ये रिडंडेंट सवाल भी नजर आ रहे होंगे बीच, जो कि बिल्कुल जिनका कोई सेंस भी नहीं बनती कि उन्हें यहाँ पे होना चाहिए. तो अगर दूसरा, हाँ आप सही कह रहे हैं, जैसे कुछ सवाल ऐसे हैं जैसे which I do not have any visibility, for example कि how was the payment handled and everything. जी जी सर उसको एनए कर दें, उसको एनए कर दें, बिकॉज वो एनए में कर ही नहीं सकता क्योंकि उसमें उन्होंने एक्चुअली हार्ड वो कोड करने को कहा है कि आप रेटिंग सेलेक्ट करें whether it's एवरेज, एक्सीलेंट, गुड, व्हाटएवर. तो सर 0 कर दें उसको, यानी कि अपनी मर्जी की कोई भी दे दें, बिकॉज जब हम इस वाले कोर्स के ऊपर एनालिसिस करेंगे ना तो वो फिर हम मैनुअली सवाल निकाल देंगे. अच्छा ठीक है, जो कि रिडंडेंट है. बिल्कुल ठीक है. अच्छा चलो सही. अच्छा आई जस्ट वांटेड टू चेक आर वी डन फॉर द डे देन? जी सर वी आर डन फॉर द डे. थैंक यू सो मच. थैंक यू. चलो सी यू टुमारो. सी यू इंशाल्लाह. अच्छा सर अब आपने ये करना है, आपने हाँ जी ड्रैग एंड ड्रॉप इसको कर सकते हैं. आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करें और ऑल द वे जो है ना आप नहीं ड्रैग एंड ड्रॉप भी नहीं होगा बिकॉज ये अरे लॉक नहीं हुआ होगा. सर इसको कंट्रोल जी कर दें. मैं आपको दूसरा आसान तरीका बताता हूँ. कंट्रोल जी करें, इन दोनों को रिमूव करें. हाँ जी सबसे पहले जुलाई 2013 से जून 2014 तक का जो एरिया है ना उसको माउस से सिलेक्ट कर लें. जुलाई 2013 से लेके यहाँ से जी इसी सेल से इसको माउस से सिलेक्ट करें जून 2014 तक, ऑल द वे डाउन. हाँ जी यहाँ तक एग्जैक्टली. अब जो जुलाई 2013 में प्रोडक्शन वाला सेल है उसके ऊपर डबल क्लिक करें. नहीं प्रोडक्शन वाले सेल के ऊपर, इधर ही व्हाइट वाला जो सेल आ रहा है इसके ऊपर डबल क्लिक करें. नहीं अच्छा ये सिलेक्शन रहनी चाहिए. इस सिलेक्शन को चलिए एक और दोबारा सिलेक्ट करें. जो सिलेक्ट द होल जो मैंने आपको बताया था एरिया जुलाई 2013 से जून 2014 तक का माउस से. वाला जो टर्म नहीं है वो इंडोर है. हाँ अच्छा इसके बाद अब सर ऊपर जो फॉर्मूला बार आ रहा है ना, इंडोर के लिए. हाँ जी फॉर्मूला बार जो आ रहा है ना इसके बाद जो है वो टर्फ वाला है. अगर रेड टर्फ वाला उसमें कोई और कलर है कि नहीं? एक सेकंड गाइस गिव मी 1 सेकंड. अच्छा हाँ जी अब यहाँ पे ट्रांसपोज लिखें, ब्रैकेट शुरू कीजिएगा, ब्रैकेट लगाइएगा. अच्छा ये फॉर्मूला ही कॉल नहीं कर रहा. सर इसको बैक करें. हाँ जी और बैक करें, बिल्कुल साफ कर दें. हाँ जी फिर इक्वल टू का साइन डालें. अब लिखें ट्रांसपोज TR. हाँ जी अब इसको सिलेक्ट करें. अब जाएं उस 2013-14 की अरे पे, इसको सिलेक्ट करें सारी को. हाँ जी कम्युलेटिव को नहीं करना जी. हाँ जी और कंट्रोल शिफ्ट एंटर दबाएं. अब जाइएगा उस शीट पे. अब आ रहा है ना ये इस तरह करना. डन सर समझ आ गया. ठीक है. हाँ ये इसकी वजह ये है कि ये अगेन आपका आई थिंक एक्सेल भी पुराना वाला है, तो इसमें ना आपको स्पेसिफिकली अरे का एरिया डेजिग्नेट करना पड़ता था. नए एक्सेल में ऐसे नहीं होता. आप वो ट्रांसपोज करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो डिसाइड कर लेता है अच्छा यार मैंने कहाँ डाला. जी ठीक हो गया सर. ठीक है डन सर. एक्सक्यूज मी सर. जी सर आई हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम असाइनमेंट 2. जी बताएं पूछें.
अच्छा सर, ये हमें असाइनमेंट के अंदर गिवन था, क्वेश्चन टास्क 10 था कि द प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी सुपरस्टिशियस दैट ही थिंक्स द नेम कंटेनिंग कैरेक्टर्स एज एंड एस वाला, जिस क्वेश्चन के अंदर हमने एज और एस वाले नाम निकालने थे और जी उनको कंपेयर करना था एवरेज सैलरीज के साथ। जी ठीक है, तो सर जो हमारे पास एसक्यूएल का जो टेबल गिवन था ना, जिधर हम ये काम कर रहे थे, क्यूरीज वगैरह लिख रहे थे, उस टेबल के अंदर सैलरी वाले पोर्शन के अंदर हमारे पास प्रेसिडेंट की भी सैलरी थी। जी जी ठीक है, और जी इस क्वेश्चन के अंदर गिवन ये था कि प्रेसिडेंट वांट्स टू फाइंड आउट के एम्प्लॉयज की एवरेज सैलरी क्या है और इन नेम बेस्ड एम्प्लॉयज की एवरेज सैलरी क्या है। तो जी सर जी जब एवरेज सैलरी हम निकाल रहे होंगे तो जी उसके जी अंदर प्रेसिडेंट की सैलरी तो उस चीज के लिए आउटलायर होगी या नहीं होगी? होगी। और फिर आपने इज नॉट करना है ना, आपने जब एवरेज सैलरी निकालनी है सारे सेट की, तो आपने इज नॉट करके निकालनी है। यहाँ पे नीचे आप एक क्लॉज देंगे कि द नेम इज या द रोल इज नॉट प्रेसिडेंट। मतलब इसके अंदर हम प्रेसिडेंट की सैलरी को एक्सक्लूड कर देंगे तो हमारे पास बाकी एम्प्लॉयज की एवरेज जी सैलरी आ जाएगी। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली ठीक है, अब एब्सोल्युटली। सर मैंने असाइनमेंट में सिमिलर इसी तरह क्यूरी यूज की थी, जहाँ पे मैंने नीचे एक कमांड दे दी थी कि जहाँ पे जो जॉब नेम है वो प्रेसिडेंट इज नॉट इक्वल टू प्रेसिडेंट हो। ठीक तो मेरे ठीक है, पास एक एवरेज सैलरी आ गई थी एम्प्लॉयज की और एक नेम बेस्ड एवरेज सैलरी आ गई थी। ठीक तो ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मेरे उस क्वेश्चन को इनकरेक्ट मार्क किया गया, अच्छा, इनकरेक्ट क्वेश्चन मार्क नंबर किया 10 गया। और क्वेश्चन। हाँ जी, चलिए वो और मैं जो सर मैंने जी जी बोले। जब मैंने उसको कंपेयर किया है, जो हमें किट दी जाती है, जब सोल्यूशन हाँ 2 हाँ जो दिया है हमें असाइनमेंट का, उस हाँ सोल्यूशन हाँ 2 के अंदर जो टास्क 10 और टास्क 11 के अंदर उन्होंने एवरेज सैलरीज निकाली उसमें हैं, उसके अंदर उन्होंने प्रेसिडेंट की सैलरी हाँ इंक्लूड नहीं, की वो हुई है। प्रेसिडेंट को नहीं ऐड करना, वो दैट इज एरर ऑन माय बिहाफ, उसको मैं ठीक कर दूंगा। थैंक यू, अच्छा आपने पॉइंट आउट कर दिया और मैं इसको ठीक है करेक्टेड, सर, लेकिन उसमें प्रेसिडेंट को नहीं होना चाहिए, इसलिए क्योंकि प्रेसिडेंट इटसेल्फ एक आउटलायर है। तो आई करेक्ट इट, जी वो हम रिकमेंड कर देंगे उसका। अब फरीना आई थिंक उसके ऊपर हमें रिकमेंड कर देना चाहिए, उसको हम एडजस्ट कर लेते हैं। एक्चुअली इसमें प्रेसिडेंट को नहीं ऐड करना चाहिए। ठीक है सर, मैंने बस यही कहना था क्योंकि मुझे ठीक है, लगा था कि मैंने सही किया और फिर वो गलत था, फिर मैंने ये दोनों कंपेयर किए तो आई थॉट शुड आस्क यू। नहीं नहीं, नो प्रॉब्लम, थैंक यू सो वेरी मच, आपने अच्छा किया, ये पिन ठीक, पॉइंट कर दिए, दैट्स एन एरर ऑन आवर बिहाफ। चलें ठीक है सर, थैंक क्योंकि यू। वो एक्चुअली मैंने ही किट जो है ना वो बना के आगे गलत दी हुई है, तो वो फारीना का भी कसूर नहीं है, वो उन्होंने वो जिस तरह किट है उसी तरह उनको आंसर किया, तो वो मेरी साइड से ही गलती, उसमें प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। चलें ठीक है सर, वो फिर मार्क्स वगैरह अपडेट कर जी दीजिए। जी, मैं करवा देता चलें, थैंक यू सो मच, थैंक यू हूँ। सो नो 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 वरीज। मच। जी गाइस, कितने लोगों ने वो अरे तो बना ही लिया होगा, लेकिन साथ में आप लोगों ने क्या, अगर फीडबैक भर दिया है तो दैट इज द एंड ऑफ द क्लास। तो जिन लोगों ने कर दिया है यू कैन एक्चुअली लीव। तो अगर जल्दी से प्लीज अपना फीडबैक दे दें तो देन वी कैन एक्चुअली क्लोज द सेशन। अस्सलाम वालेकुम सर। मेरा एक क्वेश्चन था कि आपने जॉइन की एक्सरसाइजेस देनी थी। जी जी जी, वो मैं इंशाल्लाह आज दूंगा यार। मैं एक्चुअली थोड़ा बीमार हो गया था, इसी वजह से मैं नहीं दे सका पिछले हफ्ते, कोई इरादा इशू मेरा पिछले हफ्ते का था, तो इंशाल्लाह मैं इस हफ्ते में आप लोगों को दे दूंगा ज्वाइन की एक्सरसाइज। ओके सर, थैंक यू। नो वरीज, नो वरीज। सो गाइज, ये जो लोग जो हैं बेसिकली पेंडिंग जो रह गए हैं, जिनका जो है ना फीडबैक रह गया, प्लीज अपना फीडबैक दे दें। तो आई कॉल इट अ डेट। ठीक है, मैं क्लोज कर रहा हूँ आज के सेशन को, इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। जो फाइलें आप लोगों ने बनाई हैं इसको प्लीज सेव कर लें, और इंशाल्लाह हम कल फिर यहीं से शुरू करेंगे, और प्लीज फीडबैक जरूर दें, ठीक है ना। तो आई बी ग्रेटफुल, थैंक यू सो वेरी मच। अपना ध्यान रखें, इंशाल्लाह कल मुलाकात हो। थैंक यू। Thank you, sir. अल्लाह Allah हाफिज। Hafiz. अल्लाह हाफिज।